rest kind of a, a relaxful session with us. So to begin with, respected Honorable Director Sir, Dr. Srinivas Sir, Dr. Kochar Ma'am, distinguished dignitaries of the dais, esteemed guests, esteemed panelists, ladies and gentlemen. We would like to welcome Master Ji, who's there with us, with a big round of applause. On behalf of Master Ji and AIIMS, I'm honored and delighted to welcome you all on this enriching and perhaps unparalleled masterclass on fusion of spirituality with healthcare. We may request Master Ji to kindly take the dais. Can I also request Kochar Ma'am, please? I request the panelists for the first session, Shalini Mittal Ma'am as a moderator from All India Radio, Akashvani with us. Can I request Yadav Sir as a chair to kindly take the seat on the dais? Thank you, sir. May I request Dr. Patwardhan Sir, Bhushan Patwardhan Sir, an eminent academician, and we are honored to have you, sir. Sir, please. Your presence here today is a true testament to the significance of this occasion for this unparalleled masterclass on fusion of spirituality with healthcare. We are honored to have you all with us. The field of healthcare often focuses on the diagnosis and treatment of diseases, modern medical practices, and technological tools. Spirituality, though deeply individual, plays a universal role in how people find meaning, navigate health, life's challenges by maintaining resilience during difficult times. For many, it provides comfort and strength in the face of illness, recovery, or caregiving. स्वास्थ्य केवल शरीर की देखभाल तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण व्यक्ति की देखभाल है जिसमें मन, शरीर और आत्मा सभी शामिल है. Allow me a minute to introduce to Master Ji Shri Rajesh Kamra Ji. Master Ji, a spiritual guru and a life coach, has transformed the lives of millions of people across different countries through his life-changing spiritual discourses known as Vanis, which teach us not only the way of living but also the art of dying, by his mool mantra being relax in all states. यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति, विशेष रूप से जब व्यक्ति बीमारी, उपचार या किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना कर रहा होता है, तब मास्टर जी की वाणी जीवन के अर्थ को समझने की दिशा और सबसे इम्पोर्टेंट कठिन समय में संतुलन बनाए रखने का आधार प्रदान करती है. मास्टर जी, MAASTER कैपिटल G represents loving माँ. माँ का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी शर्त के देखभाल और हर परिस्थिति में अपने बच्चे को साथ देना. With his Vani, he stirs the inner truth and brings out the purity of our soul, which is G, God within us. 17 years ago, Master Ji underwent life transformation experience, unlocking a state of peace and bliss which remains unshaken amidst all kinds of life situations. So what he talks is not a concept understanding, but unka apna anubhav hai. He has been regularly invited at various international and national forums and prestigious institutes, which are like
the Defense, Maulana Azad Medical College, of course, AIMS, Delhi, AIMS Kalyani. To name a few, he was invited as a keynote speaker at Global Spiritual Mahotsav during inauguration by Honorable President of India, which was attended by over 1 million participants from over 100 countries. Master Ji's greatest strength is his ability to connect deeply with individuals from all walks of life. His mission is to reach out to the last person on earth, which is Mission 800 Crores, to spread his message of happiness guaranteed or sustainable happiness. It does not matter what religion does one believe in, what choices you profess on food, drink or clothing, उन्होंने कभी नहीं पूछा. His spiritual gyan goes deep beyond these mundane choices of life to touch our core within. He always says, follow whatever you're following and his gyan will help you in progressing our journey. आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच मास्टर जी उपस्थित हैं. So एक बार let's applaud for him for being with us. Thank you. Today we are fortunate to have a distinguished panel of experts who bring a wealth of knowledge and diverse perspectives on this vital subject. Together with Master Ji, they will be discussing how spirituality complements healthcare practices and how it can be guiding hand to handle modern day physical and emotional challenge faced by many of us. Before we begin, I'd like to express gratitude to our panelists, the team at AIMS led by Dr. Kochhar ma'am, and others behind the scenes to make this event possible. Big round of applause for ma'am. Director sir has made this possible. Of course, it's, yes. And we are so grateful to the director, sir. He's always been as a pillar of strength for every kind of, these events. So further ado, alongside Master Ji, of course, we welcome the chair, Dr. Rajkumar Yadav from AIMS Physiology Department with us. He has over 2 decades of experience. And the session moderator, Ms. Shalini Mittal, a program executive with All India Radio. And of course, she'll take the liberty to introduce the other panelists. And we commence the first session about guiding and nourishing emotional aspects of budding intellects. अध्यात्म द्वारा नवोदित बुद्धिजीवियों के भावनात्मक पहलुओं का मार्गदर्शन. Ma'am, over to you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Hope I am audible. Backside. Everybody can listen. No, I'm not audible. I'm getting that indication from that side. No. Thank you so much, ma'am, for the introduction and inviting me for this session. This is a real an opportunity. Thank you so much. Good morning, everyone. Welcome all of you in this session of Bridging the Gap, Integrating Healthcare and Spirituality. Very important topic. Healthcare और spirituality को मिलाकर treatment करने का मतलब है. I am coming right on the topic because we have very limited time. So I don't want to waste a minute and हम सीधे बात करते हैं because intellectuals are there on the dais and young intellects are there who are listening to us. So this mutual correspondence should be very interesting to witness. So I would like to welcome all of you. हेल्थ केयर और स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो जो मिलकर ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या होता है उसकी बात हम ज़रूर यहाँ इस पैनल डिस्कशन में करना चाहेंगे. सिर्फ बॉडी का नहीं, जब ट्रीटमेंट किया जाता है, फिज़िकल एलिमेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो हम माइंड पे फोकस नहीं करते हैं, हम बॉडी पे फोकस करते हैं. क्या बीमारी है और फिज़िकल सिम्टम्स देख के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, आप लोगों से बेहतर और कौन जानता है. तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी वी टेक इनटू कंसिडरेशन द माइंड एंड द सोल, उसका भी ध्यान रखा जाता है. इससे इंसान का जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेटर होता है. क्योंकि अगर हम कहीं भी जाएं और डिक्शनरी में सर्च करें व्हाट इज़ हेल्थ, तो कभी भी उसमें ये नहीं आ पाएंगे कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ का मेंशन हो. फिज़िकल के साथ साथ इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सारे हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं टू नेम अ पर्सन टोटली फिट. तो आज हम इसी पे बात करना चाहेंगे
इस पैनल डिस्कशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाउ टू गाइड एंड नॉरिश इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बडिंग इंटेलेक्ट्स. सो इस पैनल डिस्कशन में आई एम सो हैप्पी टू मॉडरेट इट. हमारे साथ मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ फिर से, प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. कोचर. आप इंचार्ज ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोफिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन हैं, लैब न्यूट्रिशन लैब, हेड ऑफ फिजियोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली में. और डॉक्टर राजकुमार यादव हमारे साथ हैं, आप चेयर कर रहे हैं इस पैनल को. आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली में. And we will be happy to if you join us in the panel. And जो हम discussion कर रहे हैं सर, आपका भी input very important for us and for all those who are here to gain something from whatever you can share. हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन सर, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर हैं आयुष में, प्रोफेसर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी. तो मैं सभी का स्वागत करना चाहती हूँ. हमारे एक पैनलिस्ट अभी नहीं हैं और मास्टर जी हमारे बीच हैं. बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मास्टर जी हमारे साथ हैं और इस पैनल में पार्टिसिपेंट हैं. इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी गर्व और सम्मान की बात नहीं हो सकती है. तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी डॉक्टर कमलप्रीत कोचर मैम आपसे. She is a doctor, teacher, scientist with special interest in traditional diet, lifestyle, integrative medicine, and cognitive neuroscience. A much-loved teacher, she is fond of medical humanities, ethics, and medical education. She has a love for literature and languages. And ma'am, अभी मैं नीचे आपको सुन रही थी, स्मृति मैम से आप बात कर रही थी, and you have love for English literature, you told. I was just overhearing what you said. So let me start from here only. What is the importance of different languages if you try to inculcate, apart from, because we are talking about health, we are talking about doctors, we are talking about those budding intellects who are sitting across. But then when we talk about something different, mind, soul, spirituality, so language and expression becomes very important. तो उसका रोल क्या होता है, आपसे जरूर जानना चाहेंगे. Ma'am, language, yeah, Vani. So that is really important to connect. And we always tell in medical teaching or providing clinical service or Yes. even doing research on our subjects, even doing corporate social responsibility activities, unless we can connect to the person, because language is what defines us as humans or the highest level of primates. So therefore, unless we can come down to that level, it will be really difficult and there will always be barriers. Yes. So to get what we call immersive learning for students and immersive history taking or connect with our patients, language is really, really important. जी. And even for students who come from what we call poor social capital or marginalized communities, the government of India also wants that if we can take their oral viva voce in that kind of culture, that kind of connect, and therefore language becomes very important. And everybody knows, Professor Siddharth Sarkar is sitting here, psychologically also, we connect with our mother tongue better. So सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम अपनी भाषा में, और वैसे गाली तो देना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी अपनी भाषा में ही निकलता है. बिल्कुल सही है, लेकिन कंफर्ट लेवल की बात है. तो कौन किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज जैसा मैम ने कहा, कंफर्टेबल होता है तो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर, एंड दैट इज़ वॉट कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ better, to be recipient also, because it's a both way process. We teach also that Yes. the motor part of language, whether written or spoken, and the sensory part of language, whether written or spoken, both are important. And from the other side also, language, because that connects us with what we call the truth of the lived experience, which we have to do an appraisal before we prescribe. वेरी राइटली सेड. मैम, एक बात और जानना चाहेंगे, बडिंग इंटेलेक्ट्स की बात कर रहे हैं आज हम इस पैनल में.
बच्चे, टीनेजर्स, युवा, ये सारे इसमें आते हैं और उनके इमोशनल पहलुओं को गाइड करना, नरिश करना, जो हमारा विषय है, वो समग्र विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बारे में क्या टेक है आपका? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। When a child of 16 plus or 17 joins a medical school, they have to break a lot of taboos. 4 साल के बच्चे को सिखाया जाता है मल मूत्र से दूर रहना है, ठीक है? So they are told to shun body excreta, body effluvium. They are told to be away from the dying and the deviant. And that is all which a child of 16 plus or 17 plus sees when they enter the dissection hall. They have to do cadaver dissection. And when they see the lab tests on various samples, starting from saliva to pus. Okay? So how we as medical teachers have to see that this social erosion doesn't occur. They have to maintain their self intact, their humanity intact, and also the empathy training that whatever is happening to this patient could have happened to us. That is where we teach them compassion along with competence. AIMS is renowned for competence, but we want AIMS also, Director Sir's mandate, and everybody, the society's mandate, compassion with competence and no scope for contempt or looking down upon others. And this happens, ma'am, more importantly, even in mental difficult condition. No, we don't look down upon, Siddharth Sarkar is sitting here, addicts. We consider them as victims, whether they are addicts of alcohol, substance abuse, or even food addiction. That's why Professor Vadva is here, Dr. Yadav is here. We do not say people who are obese. We do not say people who are schizophrenic. We tell them people with obesity, people with schizophrenia. So that blame giving, so guilt, regret, blame, they are all negative emotions. So that is the charge of a medical teacher and a medical trainer during ward rounds, to tell them to respect the subject, to respect the triad of the subject, his caregiver, and the treating team. And also teach the whole treating team, whether we be doctors or nurses or lab staff or technical help or the support staff, we are all one. We all get our tankha from the same source. So there is no hierarchy. It is a group and a teamwork approach, sir. Sada parivar hai, that is has to take care. बिल्कुल, एक परिवार है और परिवार में सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, यही परिवार का मतलब होता है। बहुत अच्छी बात मैम आपने बोली। हम फिर लौटेंगे आपके पास, कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेकिन मैं डॉक्टर राजकुमार यादव से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप यू आर फिर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं जब हम इमोशनल ग्रोथ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि आप यहाँ ट्रेन करते हैं बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो जब आप स्पिरिचुअल लेवल की बात करते हैं तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? Good morning, the dignitaries and especially Master Ji and friends. And because this panel is primarily for the budding intellects, जो हमारे पास especially क्योंकि this is All India Institute of Medical Sciences, तो हमारे पास जो young बच्चे आते हैं, medical students आते हैं, and you know जब भी MBBS करने या किसी और ग्रेजुएशन के लिए आते हैं हमारे पास एट दिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो उन्होंने उससे पहले 12th किया होता है यूजुअली। 12th तक यूजुअली वो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपने घर पे होते हैं, बट वंस दे कम टू दिस एम्स, हेयर द सिस्टम, एटमॉस्फेयर, environment is very different. As our madam has said, Professor Kochar ma'am has already said, कि शुरू में जब बच्चा छोटा होता है एज ए किड हम उनसे कहते हैं कि यूरिन फेसेस, मल मूत्र से दूर रहो। यहाँ पे आके हम कहते हैं अब इनके पास आ जाओ। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द यूरिन, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द सलाइवा,
ऑल द बॉडी फ्लूइड्स, जिससे हम पहले कहते हैं दूर रहना है, अब हम उसी के पास आ जाते हैं. सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज द बच्चे हमारे 12th के बाद आते हैं, पेरेंट्स से दूर आते हैं, यहाँ पे उन्हें हॉस्टल में रहना होता है. हॉस्टल इज कंपल्सरी. एकदम से उनको सब कुछ बदला हुआ दिखने लगता है. सो ऐसे में हम लोग अक्सर देखते हैं बहुत से बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड इन सम ऑफ द केसेस, इन फ्यू ऑफ द केसेस, एक सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा आने लगती है. तो ऐसे में हमें उनको इमोशनली सपोर्ट करना है, इमोशनली उनको चेंजेस लाने हैं, एंड ऑफ कोर्स वी प्रोवाइड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. एंड एज द today's theme is the happiness, the health, the spirituality, and finally this budding interns, budding intellects, इनके हम इमोशनल को कितनी ब्यूटिफुली कंट्रोल कर सकें, that is what we are learning, that is what we are teaching, and today Master Ji will also tell something more about that. Thank you, sir. Thank you so much for the insight. हमारे साथ पैनल में हैं डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी. सर, पैनल में स्वागत है आपका. आप नेशनल रिसर्च प्रोफेसर हैं आयुष में, डिस्टिंग्विश प्रोफेसर IIT खड़गपुर एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. Professor Bhushan Patwardhan is a distinguished academician and having an experience of more than 4 decades in higher education, biomedical research and institutional governance. और सबसे अच्छी बात मुझे जो बहुत सारी अच्छी बातें हैं लेकिन जो यहाँ पर मेरे इंटरेस्ट की है और जो पैनल की और जो लोगों के इंटरेस्ट की आज के हिसाब से है, वो सर आपकी किताब है. और जिनोम से ओम तक ये किताब सर ने लिखी है. सबसे पहले तो क्लैप, और ज़रूर इस बात में कि हम सब पढ़ें इस किताब को. बहुत कुछ जानने को मिलेगा. जो आज हम छोटे उसमें कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आसानी से उस किताब के ज़रिए हम समझ सकते हैं. सर, इस किताब में आपने आधुनिक विज्ञान और मेटा साइंस के बीच के संबंधों पर चर्चा की है. आपने विज्ञान और आध्यात्म के मिलन पर प्रकाश डाला है. ये किताब वैज्ञानिक प्रगति और मानवीय मूल्यों के बीच सामंजस्य की वकालत करती है. बहुत सारी और बातें इस किताब में ज़रूर होंगे और हम सब पढ़ना चाहेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा चाहूँगी आप थोड़ा एक्सप्लेन करें आपकी ये किताब का कैसे शुरुआत हुई और इसमें आपने क्या क्या इंक्लूड किया. धन्यवाद जी. सबसे पहले मैं ये किताब की कॉपी मास्टर जी को प्रेजेंट करना चाहूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं एम्स संचालक और डॉक्टर कोचर, डॉक्टर यादव और सभी एम्स के वैज्ञानिकों को सबसे पहले बहुत धन्यवाद करूंगा कि यह विषय पे ये पैनल आज एम्स में हो रहा है. ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है. मास्टर जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये और भी खुशी की बात है. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. पूना बॉम्बे की हिंदी आप जानते हैं इतनी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए मैं वापस अंग्रेज़ी पे आ जाऊंगा. ये बुक व्हाट यू मेंशन्ड, जीनोम टू ओम, my background is biochemistry pharmacology. So when I was actually studying Ayurveda from science point of view, in 2000 I hypothesized that Ayurvedic concept of Prakriti, जो वात पित्त कफ है, it has genetic connotation. लेकिन साइंस में हाइपोथेसिस करके काम नहीं बनता है. So we have to actually study that. So we had a cohort of rheumatoid arthritis patient at that time. And then I wrote an article named Ayurveda is personalized medicine. That time, personalized medicine was just emerging. Human genome was just on horizon, you know. And then we did a small study of rheumatoid arthritis patient taking one gene called HLA-DRB1 gene. आप सबको पता रहेगा उसके बारे में, because we know its relationship with rheumatoid arthritis, you know. And then we did a study, polymorphism study. Blind study, and then we showed that
the allele distribution of this gene was statistically different in Vat Pitta Kapha. For the first time, a solid scientific evidence emerged in support of our own traditional concepts like Vat Pitta Kapha. We presented this work at Cold Spring Harbor Symposium in Pharmacogenomics in 2003, and subsequently we published a lot. Now, this has emerged into a new discipline known as Ayurgenomics. Multi-crore projects have become in Ayurgenomics now. So a small idea coming from our own knowledge system could become so big. So our point in this book, that time I was also reading in 2000 Upanishads, and I got stuck at one profound aphorism from Ishavasya Upanishad. It says that Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevaya Shishyate. And I started thinking, Masterji, that what this aphorism is telling us, And then I also realized that this is a definition of genome also. Because the Ishavasya is telling us this is complete, that is complete. If you remove something from what remains is complete, what has removed also has potential to become complete, So from that point of time, I realized, and actually I wouldn't say that we have written this book, it has evolved. It has practically evolved, and we have explained this, why we are saying so. So there are 4 or 5 major aphorisms we have taken, primarily from Upanishad, and we wanted to bring this wisdom in a contemporary fashion in a very interesting way, And in this we have raised more questions than giving answers, but we have given information necessary for readers to reach to some questions. So Pindi Brahmandi Nyaya, Purush Prakriti, Shiva Shakti, what are all these they are talking about? In science we have taught empirism. Whatever we can see through our Jnanendriya karma is true. What we cannot measure, there are 2 streams. One stream says that it is not true, it doesn't exist. Other stream says that we don't know. I belong to the stream, I don't know. Because science is a continuous process, continuously evolving. Today we may not be able to measure. But Dr. Mahajan will tell you, radiology, like maybe some years ago we never believed that we could do that. Today we are able to do that, So we are saying if Gyan, we can equate to some extent, not completely, as information or knowledge. The second stage is Vigyan, which is Vishesha Gyan, But is it enough? We are saying in this book that Gyan, Vigyan, we have to go to Pragyan. And that Dr. Kochhar rightly mentioned, when Gyan or science walks with passion or compassion, it becomes Pragyan. So there is a need now. In this book we are saying that modern science, there is a need now to take a pause and look back, what trajectory we have taken. Because the purpose of science is not creating weapons of mass destruction, Purpose of science is in search of truth. Purpose of science is welfare. Vasudhaiva Kutumbakam principle should be there at the backdrop of science, So in this book we are saying that when this book evolved first, the first name of the book was Om to Genome. And then we said that this trajectory is not correct, Genome should go back to Om. And why it should be so, that has been narrated in the book by raising Mahaprashnas. Another aphorism from Taittiriya Upanishad, I got stopped, Prajnanam Brahma, what does it mean? So we have tried to take these questions and tried to address them from our current understanding of science, but even going beyond. What is mind? What is difference between thinking and knowing? What is consciousness? These are the questions today top of the top scientists and top of the top laboratories are working on, When this book was evolving, we had a series of discussions with Professor Brian Josephson, who today in Cambridge is a Nobel laureate, one of the youngest Nobel laureate in physics, His current project is mind-matter unification. So the world is going in this direction, but the knowledge is with us. We are not really. So I am happy, Masterji, that you have given this inspiration, and which I can see that because AIIMS is a leadership institute. What happens in AIIMS goes not only in the country but worldwide. So this thought and this beginning which is happening here, I'm sure it will grow more. I wouldn't talk much about the book now, but I'll say that this book is an attempt
to add a one drop in a whole ocean of a knowledge. But we have seen and we have taken care that this one drop is as pure as possible. And this was a tight walk, to not even touch the border of pseudoscience, which we have done. So this book is a completely agnostic book, scientific book, without compromising the spirit of Shastra, as well as without compromising the spirit of science. We hope you'll like it. Thank you so very much. Sir. Thank you for your inputs. Now coming back again to topic which is very important for us. ये जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, कोचर मैम आपसे जानना चाहूँगी, आपके हिसाब से क्या है स्पिरिचुअलिटी और क्या क्या होना चाहिए, व्हाट इंक्लूड्स स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या आता है जो हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कैसे उसमें इंटेलेक्ट्स, बडिंग इंटेलेक्ट्स में उसको डेवलप किया जा सके. पहले समझें कि क्या आता है आपके हिसाब से. जी, थैंक यू. आपने बड़ा गहन सवाल किया है, पर उससे पहले जो भूषण सर बता रहे थे, तो बडिंग इंटेलेक्ट्स को चाहिए होता है दो और चीज़. एक है प्रमाण, हाँ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और दूसरा है संज्ञान, कि समाज इस बात का संज्ञान ले कि टुडे साइंस कैन नॉट वॉक अलोन विदाउट द सपोर्ट ऑफ physical, mental, social, emotional, spiritual and financial well-being. This is really important when we have neurodevelopmental disorders, when we have neurodegenerative disorders, when we have maladies like cancer, which sap away everything, including the financial capitals. So financial pain is a very important thing. So our students today have to be taught and delivered the training in such a way that spiritual well-being is part of it. So before we heal the patients, the physician has to heal himself. Therefore, this is in alignment with the Sustainable Development Goals, ma'am. The SDG 3 by WHO and UNESCO state that it is our responsibility to look after the good health and well-being, and where well-being is where what you have asked comes, because good health can be mapped by some certain parameters. Those parameters, as everybody in the first rows who are related to science and medicine would say, biomarkers have a standard deviation. Sir would say, and I would say, that is physiologic individuality. So the youngsters today have to be taught that in the language of physics, as sir said, in the concept of E is equal to mc square, in the concept of quantum entanglement, sometimes we say, but there is a great wisdom, sir, hidden behind it. Like I said, that how did you know I'll be wearing this coat and therefore you have brought this? But we didn't talk, nothing. But it happens. And those are the kind of mystery-seeking, exploring imprints by which we invoke our students so that their curiosity now should be to get into this. Yesterday we were watching Mahakumbh, and many students from medicine, from IIT are there, because that is the root answer everybody is seeking. One. Second, spiritual well-being was very much a part of WHO in the 1940s. Sometime, as sir very wisely said, in the early 60s, the spirituality and what we call formalized ritualistic religion came to be synonymous, understood, and therefore that was removed. So it is our charge today, and we as our country should be providing these kind of teachings to our budding intellects, because as the famous poet T.S. Eliot said, what we have gained in data, we have lost in information. What we have gained in information, we lose in knowledge. What we have gained in knowledge, we lose in wisdom. And beyond wisdom lies spirituality. बहुत बहुत धन्यवाद. और क्योंकि समय की सीमाएं हैं, और भी पैनल डिस्कशंस होने हैं और बहुत कुछ लोग सुनना चाहते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचेंगी. मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद दूंगी.
और मास्टर जी हमारे साथ हैं, उनके वचनों को सुनने के लिए हम सब वेट कर रहे हैं। हम सबका मन है कि आप कुछ बताएं, क्योंकि आपकी वाणी हम तक पहुँचे, हम कुछ समझें, सीखें स्पिरिचुअलिटी के बारे में। प्लीज़ सर। Director AIMS, ma'am, Kochar ma'am, and all dignitaries, my dear brothers and sisters, friends. सबसे पहले तो इतनी खुशी है मेरे को that 1 month back only I was here in our AIMS कि इंडिया का, भारत का जो कहते हैं ध्रुव तारा एम्स जो है, एक इतना बड़ा जो है जो स्टेप है स्पिरिचुअलिटी। हालांकि सब फील्ड्स के अंदर जो है एम्स ने काम कर रहे हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, अब स्पिरिचुअलिटी जो है उस पर भी इतना कहीं रिसर्च करने के लिए बुलाया है, रिसर्च करने के लिए। मुझे मालूम है मेडिकल साइंस जो है साइंस को रिसर्च करके लाना है, तो उन्होंने कहा भाई स्पिरिचुअलिटी है क्या ये, क्योंकि जनरली जो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग लिया जाता है हमारे देश में और विश्व में, वो लिया जाता है जैसे रिलीजन। वो रिलीजन जो है हम उसे स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं। इन फैक्ट रिलीजन इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द न्यूक्लियस ऑफ रिलीजन। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला नहीं जा सकता। स्पिरिचुअलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। रिलीजन के बारे में आप बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अध्यात्म, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहा, मुझे भी 17 साल पहले जो ये अनुभव हुआ जीवन का, अब उस अनुभव को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं फॉर लास्ट 17 ईयर्स। 16 साल पहले जैसे कहा ना साइंस को रिसर्च चाहिए, वो कहेंगे ऐसे कैसे बताओ। तो 16 साल मैंने पहले कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं किया। मैंने कहा नहीं, पहले एक एक कर कर मैं हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट करूंगा, ताकि जो है दुनिया को बता सकूं कि देखो क्या लेके आया हूं। सो फॉर 16 ईयर्स आई नेवर शेयर्ड एनी डायस, कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म। पहले एक एक कर कर हजारों से लाखों तक पूरी दुनिया में पहुंचा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू दुबई, फिलीपींस, रशिया। तो मैं 16 साल के बाद, आफ्टर 16 ईयर, लास्ट दिसंबर ओनली आई डिसाइडेड टू गिव इट टू द वर्ल्ड, मेकिंग इट द मिशन 800 करोड़। क्यों? क्योंकि देखा ये संसार जो है इतना दुखी है यार, इतना परेशान है, इतना अशांत है। वाई? 16 साल इसलिए एक्सपेरिमेंट किया, मुझे मालूम है आए नहीं तो कल कहीं ना कहीं पूछे कैसे भाई, हाउ। तो जीवन का ये अनुभव है स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले मैं क्योंकि डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूं कि 17 साल के अंदर कितने भी जगहों गया, और एक साल में 150 से 200 प्लेटफॉर्म पे गया ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, लॉ चैम्बर्स एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स, सब जगह गया हूं। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ही किसी को नहीं मालूम। आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इवन ऑल इंटेलेक्चुअल पीपल आई हैव मेट ड्यूरिंग द 16 years टू। स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहले मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट यू कैन रीड इन बुक्स, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट यू कैन टेल इन वर्ड्स। मैं 17 साल से बोले जा रहा हूं, 20 से 22 घंटे, 20 to 22 hours नॉन स्टॉप फॉर लास्ट 16 years आई वाज देयर। और स्पिरिचुअलिटी का जो अनुभव है मुझे हुआ, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं सबको। यार सुनो, सुने, हजारों से लाखों तक पहुंचा। ऑल आर हैप्पी बाय जस्ट लिसनिंग ओनली, जस्ट बाय लिसनिंग ओनली, जिसको हम कहते हैं वाणी, लेक्चर। लेक्चर नहीं है ये, मैं कोई किसी किताब से पढ़कर नहीं बोल रहा। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, एंड दैट माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ मैचेस विद ऑल द स्पिरिचुअल एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड। गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद जिसको कहते हैं, क्योंकि हमने उनको समझा कि सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ लो यार, थोड़ी पूजा पाठ कर लो। और हमने यही गलत लिया कि वो पूजा पाठ इसलिए कही गई थी
जो मंदिर गुरुद्वारे चर्च वगैरह इसलिए बने कि यार आप वहां जाकर बैठो, यू विल हैव सम टाइम, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम देयर, कि किस तरह बैठ जाओ, नहीं तुम जल्दी जाएंगे, भाग जाएंगे। तो देखो यार, ये कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, गीता क्या कह रही है, ये गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में क्या कहा है, ये जीसस ने बाइबल में क्या कहा है, ये मोहम्मद साहब कुरान में क्या कहकर चले गए। इसके लिए उन्होंने जो कहा है, दैट इज ऑल दे एक्सपीरियंस्ड of Buddha, experience of Mahavira, experience of Jesus, experience of Guru Nanak Dev, experience of Sai Baba, experience of Ram Paramahansa, Mirabai, Sahajabai, Lallabai, Laoju, Socrates and so many. उन्होंने अपना अनुभव बताया है, और जो उन्होंने अनुभव बताया है, that is called spirituality. Spirituality connected with the spirit, energy, conscious soul जिसको हम कहते हैं, जिससे हमारी dead body चल रही है. We were born dead. माँ की नाभि से कटते ही शरीर मरा हुआ था, उसमें एनर्जी कॉन्शियस सोल आई, बच्चा रोया तो का जन्म, वही एनर्जी लास्ट में निकलती है तो वही कहते हैं डेथ. देयर इज नो बर्थ एंड डेथ, इट इज ओनली वी आर ट्रैवलिंग इन दिस डेड बॉडी एंड देन वी हैव टू गो नेक्स्ट. आज हम इस संसार में आए तो कैसे है भाई, माँ के गर्भ में 9 महीने सब एक से जन्म लिए, एक भिखारी के यहाँ पैदा और एक शाहूकार के यहाँ, एक डॉक्टर बनता है, कोई इतनी प्रैक्टिस करता है, कोशिश करता है, नीट के एग्जाम देता, नहीं हो पाता. इज इट द रोल ऑफ द ब्रेन? Is there something else? So there is something else. That something else is said by all the spiritual masters, जिनको आज हम भगवान कहते हैं. There is no God. Buddha, he was Siddhartha before 29. 35 he got that nirvana. 35 में उनको कहा कि अरे ये तो भगवान हो गए. Vardhaman 30 years at age, he was in the same as you and me. 42 we said Mahavira Bhagwana. Nanak at 36 said Guru Nanak Bhagwan. Jesus at 30 said Jesus Christ, God, Son. Muhammad Sahib at 40, Muhammad Sahib, God's messenger, Allah के messenger, and so on. Kabira, Meera, Sahaj, Lalla, all the same. हमारे तरह ही जन्म लिया था, हमारी तरफ ही उनकी मृत्यु भी हुई. There is a date of enlightenment, liberation. Jesus कह रहे हैं, बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, महावीर केवल्य कह रहे हैं, गुरु नानक सचियार कह रहे हैं, हिंदू शास्त्र मुक्ति मोक्ष कह रहे हैं. So this is what they said. I went into the deep of it. जो कबीर ने भी कहा, हमने स्कूल में पढ़ा, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट. गहराई में जाना पड़ेगा भाई, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है. दिस इज नॉट द बुक के एग्जाम में मार्क्स लेने, डिग्री मिल गई हमारे को हो गया. नो, यू हैव टू गो इन एक्सपीरियंस इट. तो जब उन्होंने जो कहा वही 40 आज से 17 साल पहले वो भी सडन हुआ, क्योंकि आज बैठा हूँ मैं. हमेशा मैं कहता भी डॉक्टर्स आर द गॉड्स राइट हैंड, क्योंकि ये शरीर जहाँ से बना है इसकी कोई नाम नहीं पता कहाँ से आया, तो हम उसको जिसने नहीं किया हम कहते गॉड. तो गॉड की वर्कशॉप में पूरी रिपेयरिंग वर्क जो से है, डॉक्टर्स ही जिनको दिया गया. तो आई ऑलवेज से भी गॉड्स राइट हैंड. तो अगर हम उस मैन्युफैक्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हम कहें गॉड के ऊपर आकाश में बैठा हुआ है, देयर इज नो गॉड, इट इज अवर फाइनल एवोल्यूशन अप टू दिस ह्यूमन बॉडी. डार्विन हैड सेड, प्रूव्ड इट. नेक्स्ट एवोल्यूशन सेट बाय बुद्धा, महावीरा, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहज, लल्ला, लॉजिस, कुरैट एंड सो ऑन, कि भाई भगवान हो जाना है. भगवान, हु इज गॉड? यू. लाइक MBBS, MD, DM, दिस इज द डिग्री. व्हेन यू गेट टू द फाइनल एवोल्यूशन गॉडिज्म, देयर आर सो मेनी गॉड, बट दिस गॉड इज वन. एक ही अल्लाह, सबका मालिक एक ओंकार सतनाम अद्वैत. सो यू हैव टू गो डीप इनटू दिस सब्जेक्ट. तो जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो द सेम इंस्ट्रूमेंट नॉलेज. दिस इज इंस्ट्रूमेंट हैड कम फ्रॉम द डस्ट, विल गोइंग टू द डस्ट. माँ की गर्भ में एक ड्रॉप की तरह गए थे हम लोग, और माँ ने मिट्टी खाई, जो भी खाया, चावल गेहूँ जो भी खाया, और वो मिट्टी चिपकी. बाहर आए तो फिर मिट्टी खा रहे हैं, आखिरी में वही लकड़ी जलेगी, फिर मिट्टी. शमशान में जाकर तो कोई नहीं देखता कि भिखारी है, शाहूकार है, डॉक्टर है, कंपाउंडर है, मनिस्टर है या चपड़ासी है, ऑल आर गेटिंग टू द सेम क्रिएशन ग्राउंड. तो ये सिर्फ समझना है. यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, दैट व्हाट आई एक्सपीरियंस 7 years बैक. नहीं तो 120-200 BP, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना ही, डॉक्टर साहब ने कहा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर. नहीं तो मेरे पास आना नहीं पड़ेगा. मैं कहा यार ये लाइफ क्या है भाई, हम पंजाबी जो है ब्रॉट अप इन दिल्ली, पराठे के नीचे माँ अगर मक्खन नहीं डालती, मम्मी नीचे नहीं डाला, तो हम वो खाने वाले लोग. डॉक्टर ने कह दिया भाई, मैंने कहा कोई नहीं, मरने से तो बढ़िया खा ही लें. दैट टाइम आई थॉट ये ज़िंदगी है क्या, हम तो सोचते अपनी एयरलाइंस होगी, 13 hours नॉन स्टॉप फोन गोइंग. और फिर वो रिसर्च के लिए गया था फॉर ओनली
4 days, extended to 9 days. I was not in this world for 9 days. Everything what I say, remember, it is all witnessing. You can get the witness. That's why it took 16 years to come to the any public platform. कि मैं कहता हूँ भाई जाके रिसर्च करो. यहाँ भी मेरे सैकड़ों लोग बैठे हैं, उन हजारों जो है लाखों में से कोई 100-150 लोग यहाँ भी आए हुए हैं. You ask anyone, क्या हुआ जिंदगी में भाई? Not only physical, mental problems, all are fine. That's why I came with the tagline happiness guaranteed. Last year December. मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा. काम नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, तू बीमार है, तू मर रहा है, तुझे दुखी नहीं होने दूंगा. ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है. करना क्या है? कुछ भी नहीं. छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं. पकड़ना क्या है? कुछ भी नहीं. लेना देना क्या है? कुछ नहीं. 1 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं. जो है जाए, सिर्फ समझना है. क्या करना है? समझना है. नथिंग एल्स. इसलिए मैंने अपने साथ कोई ऐसी टैगलाइन लगाई जो मुझे संत से मैच कर जाए. मैं आज में कहता हूँ यार मैं आपके जैसा ही हूँ. मेरे बच्चे हैं, बिजनेस करते थे भाई. 2007 एक्सपीरियंस, 2017 आई गॉट रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, हैंडेड ओवर टू द सन. मैंने कहा संसार को कुछ देते हैं. 2023 when Corona was there, I was going all around country. 2 years non-stop I thought of going all around. Otherwise I could do and go back to my home. मुंबई घर में ही रहते थे, बच्चे परिवार सब, कुछ नहीं छोड़ा. बच्चे कहते चलो होटल चलो, पापा पिक्चर चलो. चलो क्यों? आई वॉन्टेड टू शो टू द वर्ल्ड दैट नथिंग टू लिव. ये नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते कि यार हम गॉडिज्म, हम भगवान हो सकते हैं. भगवान इज नथिंग लाइक, अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज नथिंग लाइक गॉड. फाइनल इवोल्यूशन ऑफ यूर इज द गॉडिज्म. यू आर द गॉड लाइक डिग्री. पर हम उस तरफ, क्योंकि हमारे को बताया ही नहीं गया कभी. हमें बताया गया यार गाना छोड़ना पड़ेगा, भगवा पीले पहन के हमें पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा. तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं. सिर्फ क्या छोड़ना है? वन थिंग, यू हैव टू लिव योर ईगो. मैं को छोड़ना है. मैं नो मैं कौन है भाई? सिर के बाल से पाँव के नखून तक तू लाया कहाँ से? कुछ भी. कहाँ से लाया? आँख खरीद कर. पेरिस से लाया चीख अपने. दिमाग बहुत तेज है. आई एम डॉक्टर, आई एम मिनिस्टर, आई एम दिस. न्यूयॉर्क से खरीदा है. यू हैव नथिंग ऑफ यूर. सब कुछ मुफ्त में मिला है. जो मुफ्त में मिला है तो देर इज समथिंग विच इज इनसाइड मूविंग दिस बॉडी. तो कुछ गेम तो है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ दिस गेम. रूल्स ऑफ द गेम इज किंग. गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, इन्होंने एक्सपीरियंस किया, बताया. मेरा भी एक्सपीरियंस है. दैट व्हाट आई से. सो 100 to 1000 to lakh people are enjoying. फिजिकल मेंटली प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. कितनी तकलीफें खत्म हो गई. एंड आई एम द एग्जाम्पल फॉर देन एक्सपेरिमेंट ऑन 1000 to lakh. कि मैं को कहेंगे यार आप तो झूठ बोल रहे हो भाई, हजारों लोग हैं. पूछो आप 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी, ऑल आर डांसिंग एंड एंजॉइंग द लाइफ. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेडिकल साइंस यानी खोज, स्पिरिचुअलिटी यानी जैसे खिंडा हुआ ट्रेजर पूरे ब्रह्मांड में साइंस खोजती है. ये गेम है. दिस इज अ गेम. वो हाइड एंड स्लीक गेम था ना, तो हमें ये मिल गया, मोबाइल मिल गया, देखो भाई, तो खुश हो गए. बट एट लास्ट गेम इज ओवर. फिर नई गेम शुरू हो जाएगी. दिस इज गेम वी आर प्लेइंग. राम लीला, कृष्ण लीला, गुरु नानक देव लीला. सो दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड. तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रियली कि डायरेक्टर सर लास्ट टाइम आया इतने, और ये पूरी टीम जो सी जैसे मेडिकल प्रोफेशनल बैठे हैं, अमृत सर सब, संजय सर सब मिले मुझे. तो मैं सो खुश था कि यार इंडिया का बड़ा जो सा रिसर्च सेंटर ने मुझे बुलाया है और कब बड़ा हम करेंगे. और इतनी हैप्पीनेस हुई कि अब जरूर 800 करोड़ तक मैं पहुंचूंगा, विच इज माई मिशन. एंड विद द हैप्पीनेस फॉर ऑल गारंटेड. कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं. थैंक यू. Spirituality is to be experienced, it cannot be spoken of or read in books. सर बहुत बहुत धन्यवाद. आपने कहा कुछ नहीं छोड़ना है, सिर्फ ईगो छोड़ना है. तो कोशिश करनी है कि ईगो छोड़ें और सब कुछ अपने आप ठीक हो सकता है. ऐसा सर ने इतनी पॉजिटिव बातें हमें बताई हैं. बहुत सारी और बातें सुनने के लिए अभी हमें दिन भर इंतज़ार करना होगा. आपका सानिध्य मिलता रहेगा. इसी तरह से हम आपको सुनते रहें और सुन के आपको फॉलो करते रहें. बस यही हम चाहते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मास्टर जी को कि आपने अपने विचारों से हमको नवाजा. और अब मैं सभी पैनलिस्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगी. डॉक्टर कोचर मैम, डॉक्टर राजकुमार यादव और डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब ने पार्टिसिपेट किया इस पैनल डिस्कशन में. अब शालिनी मित्तल को भी दीजिए इजाज़त. नमस्कार. Thank you so Master ji. Perfect.
Shukrana Master Ji. How the importance of having the understanding, the deep knowledge, and transcending the ego. Thank you so much, Co-Chair Ma'am, Dr. Yadav Sir, Shalini Ma'am, and the panelists, Bhushan Sir. Now I request Master Ji to kindly felicitate and distinguished panelists with us. आगे आ जाइए. May we have a big round of applause for such a wonderful insights to the beautifully resounding round of applause would really recommend out. Thank you so much, Bhushan sir, for being with us, and he's traveled from all over from Pune to be with us, and for an insightful. Thank you so much, Co-Chair ma'am. She has been a kind of, a brick for the entire foundation, such a strong foundation to bring forward the significance of this discussion today, ma'am. We're highly honored and obliged to be with us. Can we have a group photograph of the panelists, please? Thank you. Shalini ma'am, I have been... Thank you, everyone. I request Master Ji to kindly stay with us for the next panel discussion, Master Ji. And Shalini ma'am ka ho gaya? Yeah, Rajkumar Yadav sir. I'm sorry, I could not see that. So. Thank you so much, Yadav sir, for being with us and an eminent panelist. Thank you, sir. Thank you. Aapka ho gaya? Also, Shalini ma'am ka. The memento symbolizes the global reach to be a mission of 800 crores. So yeah. इनकी आवाज़ हम ऑल इंडिया रेडियो में सुनते हैं. So and a very famous program about radio doctor. Thank you, Shalini ma'am, for wonderfully moderating the session. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Honored. Now I request, we have amongst us Dr. Pankaj Gupta. You're welcome, sir. And may I request the second panelist with us? So we have the chair for the second panel. Can I request Dr. Suman Jain? She is from Department of Physiology. Ma'am, can you kindly join us for the, yeah. Aye, ma'am. So ma'am has a special interest to have been the synaptic plasticity and neuroregeneration. And her other research interest is the transcranial magnetic field stimulation and nanomedicine applications in neurotraumatic and neurodegenerative disorders. We welcome you, ma'am. I request Professor Dr. Naresh Gupta, sir,
an alumnus of AIMS with 4 decades of experience, and he's been a director professor, former director professor at Maulana Azad Medical College, and head of Department of Medicine. Can we have a huge round of applause, sir? And we also request Dr. Pankaj Gupta sir, to be with us for this panel. Would you like to be for this? Because sir got held up. He was supposed to be in the first panel, but ma'am, can we have sir? Yeah. This one, next one. Next one. All right, sir. It's like, I think because he was traveling from Sonipat and the nature, he wanted probably to be a little delayed out. Now I hand over the mic to Dr. Naresh Gupta sir, and to take the second panel forward, which is very, very interesting. अध्यात्म कैसे दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बना सकता है, enhancing the lives of differently abled through spirituality. I also request Smriti ma'am, a very special panelist with us. She's a professor with Maitri College. On the right, we have just next to Master. Over to you, sir. Thank you, Dr. Sunita, and thank you other organizers. Thank you, Director AIMS, Dr. Srinivasan. Thank you, my panelists, और आप सबका बहुत धन्यवाद. अच्छा, Arvind Malik. Yeah, I think Professor Arvind Malik, can we invite you up here? The precious things come in the last. Icing on the cake, sir. Apologies for the same, sir. I think it was probably, I thought, thank you, sir, thank you. He's a, yes, ma'am. इतनी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ. एक कहानी मेरे को याद आ रही है. कहानी नहीं है एक्चुअली, इट्स ए रियल रिसर्च. एक नोबेल लॉरिएट रहे, उन्होंने लाइफ क्रिएट करी, और कोई 15 साल पहले उन्होंने बोला कि मैं जीन ट्रांसफ़र करूँगा. ये ग्लास पानी का रखा है, इसमें आप एक सीक्वेंस डालिए और उधर मैं ट्रांसफ़र करूँगा और कोई टच नहीं करूँगा. एंड नोबडी बिलीव्ड हिम. ही वेंट अराउंड टू ऑल द साइंटिस्ट एंड ही सेज आई हैव शोन इट, यू कैन रेप्लिकेट इट. उसने साइंस में वो पब्लिश करने के लिए अपना आर्टिकल भेजा, वो आज तक पब्लिश नहीं हुआ. ही सेड मैं 50 नोबेल लॉरिएट को इनवाइट करता हूँ कि मैं करूँगा और आप करिए. वो आए भी कुछ उसमें से, लेकिन कुछ माने नहीं. कुछ की जो मन की शंका थी उसकी वजह से वो आगे बढ़ा ही नहीं है वो 15 साल से. तो मुझे वही लग रहा था कि वो एनर्जी उधर है और नहीं भी है. हम उसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर ये एनर्जी है तो ये आगे चलेगी. तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँ कि आज जो हमारा सेशन है, मैं सीधा उस पर आ जाता हूँ. डिफरेंटली एबल्ड में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है. हम लोग समझते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड क्या है, उसके बारे में कैसे बताया जाए. लेकिन अगर आप देखेंगे डिफरेंटली एबल्ड में स्पिरिचुअलिटी का रोल हम जानेंगे अगर हम ये जाने कि डिसेबिलिटी है क्या. तो डिसेबिलिटी में जो हमारी फिज़िकल हेल्थ है उसके ऊपर जितनी प्रॉब्लम्स आती थी वो फिज़िकल डिसेबिलिटी में जाती थी. और हमारा राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में रिवाइज हो गया है और उसमें 4-5 चीज़ें नई भी जोड़ी गई हैं, वो हम बाद में बात करेंगे.
फिजिकल डिसेबिलिटी में ज़्यादातर सबसे मोटे तौर पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी मानी जाती थी। उसके बाद फिर न्यूरोलॉजिकल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मेंटल हैं, स्पिरिचुअल नहीं है, और उसके बाद लैंग्वेज की हैं। तो सारी चीज़ जो उस समय मानी जाती थी वो उसमें इंक्लूड करी हैं। इन फिजिकल डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बाद में कंबाइंड डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा, हमारे पैनलिस्ट हैं सर, मेरे साथ में हैं डॉक्टर संजय वाधवा, ही इज़ द हेड हियर एंड ही हैज़ हिमसेल्फ डन सम वर्क ऑन disability. He has done some presentations also. और डॉक्टर अमिंदर भी इतने हैं, उन्होंने भी लोड़ पाएगी। तो मैं डॉक्टर वाधवा आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी की जो हम बात करते हैं, किस तरह की और कितनी तादाद में देखी जाती है? थैंक यू। सबको नमस्कार। जो डिसेबिलिटी का डेटा है वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। अगर हम ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो इंडिया में जो लास्ट सेंसस हुआ था वो सन 2011 में हुआ था। 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण वो नहीं हो पाया। तो 2011 का जो सेंसस का डेटा है उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का भी एन्यूमरेशन हुआ था। उसके अनुसार लगभग 2.2% भारत की आबादी को एक या किसी और तरह की डिसेबिलिटी थी। लेकिन जब हम इंटरनेशनल डेटा और ग्लोबल एस्टीमेट्स की बात करते हैं तो सन 2011 में वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी पब्लिश हुई थी, जो जॉइंट पब्लिकेशन था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक का। उनके एस्टीमेट्स के हिसाब से लगभग 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उसको एक या अलग तरह की कोई डिसेबिलिटी है जिसमें उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो इंडिया में जो एस्टीमेट्स हैं वो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंडर एस्टीमेट है, लेकिन हम फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ये मान सकते हैं कि कम से कम 6 या 7% इंडिया की पॉपुलेशन विद डिसेबिलिटी है। और जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है, उसमें 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ लिस्टेड हैं जिनके टाइप्स हैं और नाम हैं, जिसमें प्रेवलेंस वाइज लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है। उसमें लेप्रोसी क्योर्ड इंडिविजुअल्स आते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी, एसिड अटैक विक्टिम्स वगैरह वगैरह। महेंद्र जी, ये जो डिसेबिलिटी की बात है, लोगों के मन में विचार रहता है ये क्या रेयर चीज़ है या कॉमन चीज़ है, या रेयर अलग है कॉमन अलग है? हाउ डू यू टेल देम? और सर आपका प्रश्न बहुत वैलिड है कि जो जितने भी डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी है, उसमें ये एक टैबू हमारे मतलब विश्व में और संसार में ये है टैबू कि यस ये एक डिफरेंशियली एबल्ड बच्चा है। बट मैं एग्जांपल दूंगा, अभी हाल ही में हैदराबाद की एक अभी राजकुमार की मूवी रिलीज़ हुई थी श्रीकांत। अगर आपको सबने देखी हो मूवी, उसमें बताया गया वो कैसे बच्चा वो ब्लाइंड था, ठीक है, ब्लाइंड होते हुए वो कहाँ तक पहुंचा, बोलेंट इंडस्ट्रीज का मालिक बना। उसने ही इज ए फाउंडर ऑफ बोलेंट इंडस्ट्रीज। तो उसने कैसे बताया कि कैसे उसने बताया हर कैसे चैलेंजेस फेस किए उसने, राइट फ्रॉम 10th तक कैसे पास किया उसने, उसके बाद उसने कैसे डिग्रीज हासिल की, उसने एक एक चीज उसने बताया गया। अब मैं मैडम से भी सुनना चाहूंगा कैसे शी इज फेसिंग ऑल दिस स्ट्रगल एंड हाउ शी हैंडल एवरीथिंग एंड शी कम बैक। कहते हैं कितनी संगदिल है दुनिया, कितनी संगदिल है दुनिया जिससे हर राज छुपाना पड़ता है, कितनी संगदिल है दुनिया जिससे हर राज छुपाना पड़ता है, दिल में कोई गम हो तो भी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। वाह वाह वाह। बात सिंपल है, देखो काम करना है, अगर जिसमें मन में लगन हो कि मैंने कुछ करना है और करके दिखाना है, वो करके दिखाता ही है। जिद पैशन अगर किसी में है तो वी कैन अचीव, ही और शी कैन अचीव एनी हाइट।
अगर वो श्रीकांत बन सकता है, एक छोटे से कस्बे से निकलता है, हैदराबाद के एक छोटे से गांव से निकल के कहां तक उसने पहुंच गया, वो डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट था, तो बाद में वो बोलेंड इंडस्ट्रीज का फाउंडर बना और फाउंडर बनके वो इंडस्ट्रीज, जबरदस्त इंडस्ट्री बना। तो वो क्यों बना? उसमें एक लगन थी, जील थी, यस आई कैन डू एंड आई हैव टू डू इट, दैट्स इट। सो थैंक यू। थैंक यू अमरिंदर जी। वाधवा जी, ये जो आते हैं आपके पास, आप जैसे देखते हैं, उनकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी और जो मेडिकल नीड्स हैं, उसके अलावा उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आर दे ओवर पावरिंग, और उनको ये चाहिए कि मेरे को यार मेरी मेडिकल जो नीड्स हैं वो पूरी करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा? इंसान की नीड्स हैं वो कई तरह से क्लासीफाई होती हैं। कुछ नीड्स होती हैं जो एक्सप्रेस की जाती हैं बाय द इंडिविजुअल, जिनको हम एक्सप्रेस्ड नीड्स कहते हैं। कुछ ज़रूरतों को हम जान पाते हैं जब उनका थोड़ा सा डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं। वो नीड्स वैसी नीड्स हो सकती हैं जो उन्होंने एक्सप्रेस ना की हों, उनको हम असेस्ड नीड्स कहते हैं। और उसके अलावा भी कई नीड्स होती हैं विच आर द फेल्ट नीड्स। सो इंटरनेशनली इंसानों की और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की भी नीड्स इस 3 कैटेगरीज में विभाजित की जा सकती हैं। तो उसमें जब हमारे पास साधन सीमित हों, हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले जो एक्सप्रेस्ड नीड्स हैं हम उनको अटेंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं शुरू में कहना चाहता हूँ कि ये जो शब्द है डिफरेंटली एबल्ड, इसका प्रयोग अवॉइड हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनली जो रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी है जिसको इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है ऑफिशियली, वो है पर्सन फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। जो रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ताकि आपको सिर्फ ध्यान उसकी लिमिटेशन पर नहीं ना रहे, पूरा इंसान आपको दिखे, और उसमें लिमिटेशन के अलावा बहुत सारी एबिलिटीज़ भी हैं। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ द रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी। उसमें स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ का प्रयोग रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन समाज में परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है। मुझे बताने में खुशी है कि हमारी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा मेट्रो ट्रेन के कोचेज़ में पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी, जो सीट रिजर्व्ड होती है, अब उसमें उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटी लिखना शुरू कर दिया है ऑफिशियली। दूसरी चीज़ें जो और हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई अलग पर्सन्स नहीं हैं, वो हमारे, मेरे जैसे, आप जैसे, हम सब के जैसे हैं। किसी इंजरी के कारण या किसी मेडिकल कंडीशन के कारण शरीर का कोई अंग या कोई सिस्टम प्रभावित हो सकता है। और आजकल जो डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा प्रेवलेंस में आ रही हैं, वो जैसे जैसे इंसान की लॉन्जेविलिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं। आपको समाज में बहुत सारे लोग 80, 85, 90 साल के बियॉन्ड एज के भी दिखेंगे। उनमें कुछ कार्य करने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। तो टोटल पूल जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का वो बढ़ता जा रहा है। और उसमें एजिंग के अलावा एक और फैक्टर भी है कि मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट्स की हैं। जो लोग पहले किसी बीमारी के कारण गुजर जाते थे, अब उनको भी बचाया जा सक रहा है। पहले 9 महीने के गर्भधारण के बाद बच्चा पैदा होता था, अब 7 महीने के बच्चे भी जीवित रहते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ उसमें लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की संख्या दुनिया भर में बढ़ रही है और उसमें भारत भी शामिल है। दुनिया भर में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की संख्या बढ़ रही है। इनफैक्ट जो डिसेबिलिटीज़ कम लोगों में होती हैं उनको हम रेयर डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। हमारे देश में भी डिफाइन नहीं है, पर दुनिया भर में 10,000 में अगर 1, 2, 4, 5 मरीज होते हैं तो उसको रेयर डिजीज़ कहते हैं। सवाल उसका नहीं, अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि क्योंकि हमने उनको डायग्नोज ही नहीं करा तो उनकी प्रॉब्लम पे हम बात ही ना करें, ये ठीक नहीं है। 7,000 रेयर डिजीज़ हैं, अगर उनकी थोड़ी थोड़ी तादाद भी हो तो वो जो कहते हैं मुट्ठी बन जाएंगे, 7,000 अगर इकट्ठे हो जाएंगे। तो अभी तक ये बताया जाता था, जब हमने यहाँ मेडिकल स्कूल में ज्वाइन करा था, 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में मेडिसिन में, एक फिजिकल डिसेबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और एक जेनेटिक प्रॉब्लम। एक जो आपको मिली हैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट वाली है वो मॉडिफाइबल है तो उसको कर सकते हैं। आज की तारीख में देखा गया कि ये दोनों का डुअलिटी जो है वो मर्ज कर रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है।
और ये भी मानते हैं कि एनवायरनमेंट की वजह से आप जीन भी बदल सकते हैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई डॉक्टर पटवर्धन जी ने जब अपना किताब बताई जिनोम टू ओम, और उसके साथ मेरे को एक किताब और याद आई जो कि मेरे ही बैचमेट ने लिखी है। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इन यूके एंड आफ्टर ही रिटायर्ड ही रोट दिस बुक कॉल्ड संस्कृत टू स्पिरिचुअलिटी। अभी लॉन्च करी थी, यहाँ एम्स में भी प्रोग्राम हुए थे, कई जगह हुए थे। उससे पहले एक आईआईटी के पीएचडी वाले थे, उन्होंने लिखी थी कोड नेम्ड गॉड। सो डॉक्टर सुमन जैन जी, आप मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी बड़ी रिसर्च है, जब मैं सुन रहा था आपके बारे में, आपका बायो, ये जो शिफ्ट हो रहा है, एंड दीज आर ऑल हाईली क्वालिफाइड, ऑल दीज पर्सन, डॉक्टर पटवर्धन, डॉक्टर यशपाल जो मेरे वो है साथी, और कोड नेम्ड गॉड जो उड़ीसा के एक पीएचडी थे, लेज़र में गए थे, ये सब शिफ्ट का क्या कारण है? आर दे dissatisfied with their life, or are they finding a vacuum, or are they looking for something new which they want to convey to the public? ये आपने बड़ा ही अच्छा ये बोला कि environment actually plays a बहुत ही crucial role play करता है कि हम कितने डिसेबल हैं या अपने आप को हम फील करा रहे हैं कि हम कितने डिसेबल हैं। तो जेनेटिक हो सकती हैं कुछ चीज़ें कि हमारी जेनेटिक चेंजेस हों, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है कि हम अपने आप को डिसेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे इंस्टीट्यूट में है या कहीं पे आजकल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इतना प्रमोट कर रहे हैं कि अगर उनको थोड़ा सा दे फील कि दे आर नॉट मेंटली हेल्दी या फिजिकली हेल्दी, तो जो एनवायरनमेंट अगर प्रोमोटिव एनवायरनमेंट है, अगर आपको हर सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं वो एनकरेज कर रहे हैं, तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। लेकिन ये अगर आपका पीयर प्रेशर इस तरह का है या आपके कलीग्स इस तरह के हैं या आपका माहौल घर में ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डाउन फील कराया जाए, कि आपको चाहे प्रॉब्लम उतनी नहीं भी है लेकिन फील हो रहा है कि समाज एक दूसरी नज़र से देख रहा है, जो शायद पहले ज़्यादा था, अब धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो रही हैं, कि अगर आपको ये फील कराया जा रहा है कि आप एक्चुअली डिफरेंट हैं, तो शायद वो इफ़ेक्ट इज़ मोर एनहांस्ड, फैसिलिटेटेड, और इसकी वजह से वो लोग जो थोड़ा सा शायद मेंटली चैलेंज भी हो सकते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि फिजिकली चैलेंज्ड हो, मेंटली चैलेंज्ड है या किसी को थोड़ा सा एंग्जाइटी भी हो रहा है, तो अगर हम उनको प्रोमोटिव एनवायरनमेंट दें तो वो सुधर सकते हैं। लेकिन शायद थोड़ा माहौल बदल रहा है या पीयर प्रेशर बदल रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो रहा है, और इन्वायरमेंट की वजह से जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस, जो आप भी बात कर रहे थे कि जीन पे इफेक्ट आ रहा है, तो वो जो एपिजेनेटिक चेंजेस आती हैं उसका एक्चुअली लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाता है फिर। तो मतलब दीज आर द फैक्टर्स, एनवायरमेंटल एट ऑफिस, एनवायरमेंटल इन योर कॉलेज, एनवायरमेंट एट होम, एंड एनवायरमेंट इन द प्लेग्राउंड विद योर पीयर्स, कि वो किस तरह का एनवायरमेंट है, एंड देयरफॉर जो चेंजेस हमारी इनहेरेंट बन रही हैं, एपिजेनेटिक जीन लेवल पे चेंजेस हो रही हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस जो आ रही हैं वो परमानेंट टाइप की आ रही हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि दे कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। तो मेरे को ये लगता है कि एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, कहीं का भी एनवायरनमेंट हो। थैंक यू डॉक्टर सुमन जी। बहुत अच्छा है सुमन जी ने बोला। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि कल मैं ना एक इंटरव्यू सुन रहा था, महाकुंभ का मेला चल रहा है, तो वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने एक रैंडमली किसी को पूछ लिया कि आप अपने सुझाव प्रकट करें, तो उसमें पता लगा कि ही वॉज बैकग्राउंड ऑफ IIT मुंबई। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ कैसे? कहते सब कुछ यही है, कहते मैं सब कुछ करा के देख के सब कुछ आ गया, मैंने आई गॉट टॉप रैंक इन IIT मुंबई एंड देन आई स्टडीड इन एज ए प्रोफेसर देयर एंड देन आई केम बैक। उन्होंने पूछा क्यों, ये रीज़न क्या है कि आपने ये चेंज किया? कहते मैंने जब एनवायरनमेंट को देखा, मैंने स्टडी किया, देखा यार सभी तो कभी कुछ कर रहा है, कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर कोई ना कोई कारण से कोई स्ट्रेस में है। अगर वो कहते हैं कि मेरे को जो संतुष्टि मिली, पीस मिला, वो मेडिटेशन करके मिला, माइंडफुलनेस करके मिला, एम्पैथी करके मिला, सबको लोगों को खुशी देने से मिला। गॉड, अब मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा एक लाइन, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स नहीं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। क्योंकि अगर किसी का आप दुख
समझ के उसको ठीक नहीं कर रहे ना, तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये चाहे कुरान में भी यही लिखा है, बाइबल में यही लिखा है, गीता में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में यही लिखा है। तो अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे तो आप इसका इधर आना आपका व्यर्थ है। थैंक यू। Thank you. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा था कि एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, इसी कारण चेंज हो रहा है, उसके कारण वो प्रभाव पड़ता है, जीन्स पे भी पड़ता है। अभी जीनोम टू होम, अभी मैंने बुक तो पढ़ी नहीं है, तो आई विल रीड अबाउट दैट बुक, बट यस, ये जो चेंजेस हो रही हैं एनवायरनमेंट के कारण ही चेंजेस हो रही हैं। थैंक यू। तो एक समय ऐसा आता है, उन्होंने कहा जो हमने अचीव करना था कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ वैक्यूम है। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग ऑन दैट। नाउ बैक टू दिस डिसेबिलिटी एक्ट, एज डॉक्टर वाधवा सेड, इट इज कॉल्ड द Right of Persons with Disability Act, and that is the name that has been given, and it has come with a big change in under 21 categories अभी 2016 में। उसमें 4-5 चीज़ें और जोड़ी गई हैं। उसमें एक हीमोफीलिया है, एक थैलेसीमिया है, एक सिकल सेल डिजीज़ है, एक ड्वार्फिज्म की कैटेगरी चेंज कर दी है, और कुछ माइनर चेंजेस हैं। इसमें जो हीमोफीलिया है उससे मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि हीमोफीलिया 500 साल पुरानी बीमारी जो हम जानते हैं, उसका इलाज होते हुए भी उनको नहीं मिल रहा था। और 2007 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमको मैंडेट दिया कि अब इसका इलाज शुरू कराएं सरकार में, और बड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि इसका इलाज एक्सपेंसिव होता था। अब एक्सपेंसिव में सरकार कहती है BPL को हम दे देंगे, दैट इज़ द टर्म दे यूज्ड इन द हाई कोर्ट ऑल्सो, and I smiled out because they had invited me. And when I told them कि कितनी इसकी कॉस्ट है, तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने, ये तो मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो बड़ी दिक्कत थी। जब उसका इलाज शुरू हो गया तो उसको हमने इसमें डलवाया था। ये जो बीमारियां हैं, इन सब की बात जैसे डॉक्टर अमरिंदर ने कहा, इनको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या इनकी दिक्कतें हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा। हीमोफीलिया का एक व्यक्ति सीवियर हीमोफीलिया इलाज ना मिले तो 8-10 साल में मर जाएगा। अगर उसको इलाज मिले तो वो 100 साल जिएगा। आज की तारीख में हीमोफीलिया में जो व्यक्ति जिया है वो 7 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुका है। तो अगर ऐसी हालत में कोई दवाई है उसको ना दी जाए तो आई थिंक इट इज़ क्रिमिनल। चाहे वो डॉक्टर करे, चाहे वो पॉलिटिशियन करे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर करे, यू मस्ट लुक एट द कॉस्ट बेनिफिट रेशो। और इसको देखते हुए एक चीज़ और उभर के आई कि उनकी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि आप उनका ट्रीटमेंट दे दो, फैक्टर लगा दो, उनकी जो बाकी प्रॉब्लम है वो बहुत दिक्कत करती हैं। एंड व्हेन दे यूज्ड टू कम, जब शुरू में हमने करा, 80% को इतनी डिसेबिलिटी होती थी कि आप दूर से आके देख सकते हैं। ऐसे ही चैलेंजिंग डिसेबिलिटी एक उसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में एक्ट में और है, it is called the vision impairment, and we have with us Dr. Smriti Singh. इनको मैं बहुत रिसेंटली मिला था, कुछ महीने पहले, बट इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है डॉक्टर स्मृति सिंह मैत्री कॉलेज से, जहाँ पे कि वो 2007 से हैं, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं। लेकिन इनकी आप इन्वॉल्वमेंट अगर देखेंगे, she has worked not only in English, she has also done diploma in gender studies, she has several welfare public assignments, private assignments, institutional assignments, and she has designed some teachers programs also. She has numerous publications. She is a wonderful person. She is visually. Yeah. She is visually impaired, but she has a great passion for music. She has a great passion for public benefits, and I was impressed, as Oscar Wilde said, this disability ये जो है ना, ये आपको अपने तक सीमित रखनी है और ये आपके लिए कोई restriction नहीं है। वो देख के इतना impress करा इन्होंने कि nothing is restricting her life. I would request Dr. Smriti to share some of her experience, some of the experience of the persons with disability for our public. Okay, good morning सब लोग, और respected co-chair मैम, भूषण सर जो हमारे कॉलेज में भी आए थे, संजय सर whom I know because he has also visited, I have heard him before, महाराज जी जिनको आज सुनने का हमें मौका मिला, and I will be talking to you in perspective of disabled women. एक
सबसे पहले इस डायरेक्टर सर और आप सारे लोगों को मेरा शत शत प्रणाम है, और इस धरती को मेरा शत शत प्रणाम है, क्योंकि आज जो स्मृति है वो एम्स की वजह से है। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आई थी, बिहार के बहुत छोटे से जगह पर। लड़की जन्म लेना हमारे प्रदेश में पहले भी पाप था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले ज़्यादा था, राइट? And on top of that, disabled women, as like it's biggest sin in the world you have committed, right? My parents came here for treatment, and I was asking Dr. Rajpal, if I'm not mistaking his name, right? Okay. So doctors treated me as much they could. My eye shape was not developed. So they treated me, and when it was not developed, and then they said कि लेकिन डॉक्टर को पता नहीं, मैं 3 साल की तो बच्ची थी, क्या समझ में आया? उन्होंने बोला ना, इसका ना ब्रेन बहुत शार्प है, ब्रेन बहुत शार्प है, पेरेंट्स के मन में हो पाया। उन्होंने मेरा एजुकेशन, और वो हर को रिप्लाई करते थे, डॉक्टर ने बोला है ना इसका ब्रेन बहुत शार्प है। So that way, like real sense of love I experienced from Dr. Anita Panda, and real sense of, really, I'm really grateful to her that, so you can break or make one person's life. Unfortunately, I have child who is congenital, who is like dealing with the rare disease. She has congenital pseudobone arthritis. So I'm lucky to have her, and lucky to explore many things because of her. So whatever. So what I'm talking about, disability is not altogether, like एक होती है acquired disability, उसमें हम help नहीं कर सकते। उसमें एक बार आपको दिखाई देता था, या आप चल सकते थे, या आप जो कर सकते थे, अचानक से आपका चीज चला गया, राइट? वो तो एक प्रोसेस है। दूसरी चीज होती है, एक नेचुरल डिसेबिलिटी होती है, राइट? नेचुरल डिसेबिलिटी क्या होती है? एक बच्चा, जब आप डॉक्टर्स हो, अगर आप मेरे से डिसएग्री करोगे, यू आर फ्री टू डिसएग्री विथ मी, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता होता है कि वो डिसेबल है, वो अपनी दुनिया में खुश है, राइट? इट्स सोशल कंस्ट्रक्शन, सोसाइटी उसको बताती है, यस यू आर डिफरेंट। हमारे लिए टच करना देखना होता है, आपके लिए देखना होता है, लेकिन हम टच करने से शायद कम, मोर और लेस वही परसेप्शन फॉर्मुलेट कर आप पाते हैं जो आप देख के करते हो। सो व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट, हम लोगों की चीज़ें डेवलप होती हैं, हमारी थिंकिंग डेवलप होती हैं, तो हमारे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि हम डिसेबल हैं। हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, मस्त हैं, खुश हैं, राइट? फिर क्या होता है, आप बोलते हो अच्छा बेचारी के साथ ऐसा हो गया, या इसके साथ ऐसा हो गया, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड में जाता है कि मैं किसी से अलग हूं। अब वो स्पिरिचुअलिटी का रोल यहां आता है। वो स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है, नो, यू आर वांटेड, यू आर यूनाइटेड विद गॉड। आप नेचर में वांटेड हो, नहीं तो नेचर इतनी अलग चीजें क्यों बनाते? क्लाइंबर, क्रीपर, ट्री हमेशा पावरफुल नहीं है, क्लाइंबर और क्रीपर भी उतने ही यूजफुल है ना, श्रब्स भी उतने ही यूजफुल है ना। सो दैट वे नेचर ने इतना डिफरेंस बनाया, वो सब कॉन्शियस माइंड से आता है। मेरे साथ भी ऐसा था, और इट्स नॉट इजी टू बी डिसेबल वुमेन स्पेशली, क्योंकि आपके पास हर तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर नरेश जैसे लोग मिले, और डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस हु इज ट्रीटिंग माय डॉटर, क्योंकि मैंने ये 2 बार फेस किया, एक बार अपने साथ फेस किया, अपने बच्चे के साथ फेस किया। तो
बहुत ज़्यादा पड़ा कि अच्छा डिसेबल है इसलिए इसका बच्चा ऐसा हो गया, तो पड़ोसियों से भी मिलने से डरती थी, किसी से भी मिलने से डरती थी कि कोई ये ना पूछ ले कि मेरा बच्चा कैसा है, क्योंकि मुझे पता वो फिर बोलेगा तुम डिसेबल हो ना, लुक आफ्टर नहीं कर रहे हो, जबकि वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है. बीइंग अ डॉक्टर यू ऑल नो अबाउट इट. सो आई वेंट, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू सर. ही सेड तुम्हारी क्या गलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है. देन ही मेड मी अंडरस्टैंड डिसीज. डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, ही मेड मी अंडरस्टैंड डिजीज एंड हिज सेंटेंस वाज यू आर नॉट गिल्टी. आप बिल्कुल गिल्टी नहीं हो, और इट हैड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ यू, इट हैड हैपन बिकॉज इट इज सपोज टू हैपन, बट दैट दिस विल मेक यू वेरी पावरफुल पर्सन. सो डॉक्टर्स हैव, मैं बीइंग द मदर बहुत डिस्ट्रेस में थी उस टाइम पर. डॉक्टर्स हैव पावर टू चेंज एवरीथिंग, एवरी वर्ड ऑफ अस. डॉक्टर्स हूँ, आप डिसाइड करते हो कौन डिसेबल है, आप असिस्ट करो. उसकी कैपेबिलिटी वो कहाँ वो हिंडर करेगा, उसकी कैपेबिलिटी कहाँ लैक करेगी. हो सकता है वो देख ना पाए, हो सकता है उसको समझने में आम इंसान की तरह प्रॉब्लम हो, लेकिन डॉक्टर नरेश जैसे लोग मिले जो पावर पहचाने, और हम आई एम ऑनर्ड एट द सेम टाइम. मेरे लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है कि मैं आप सबके बीच में हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो दुनिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं. तो आप लोगों के पास पावर है, आप चेंज कीजिए दुनिया को, आप दुनिया को समझाइए. आप बच्चे की कैपेबिलिटी देखिए, आप ये देखिए कि उस डिसेबिलिटी के साथ ये नहीं कर सकता है, ये पेरेंट्स को पता है, लेकिन क्या कर सकता है ये भी बताना आप ही की ड्यूटी है. थैंक यू सो मच. So humble, Dr. Smriti. We are really moved. You are not guilty. That is the crux. And I think this has to be learned by the doctors as also by the other community. Dr. Smriti, मैं आपके पेपर्स देख रहा था, आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, और उसमें आपने 4 पेपर्स में अलग अलग भी लिया है. एक हिंदू स्क्रिप्चर्स, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ये क्रिश्चियनिटी. आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहेंगे? कैन यू हियर मी नाउ? राइट. हम सबकी ऐसी फीलिंग्स होती है. एक तो कर्म थ्योरी के बारे में हम लोग मतलब हिंदुइज्म में सबसे पहले आता है, तो सब लोग बोलते हैं पाप पुण्य, ये वो कर्म पिछले जन्म का. लेकिन बहुत सारी जगह पर भगवान ने लिखा है, कृष्ण जी ने भी बोला है कि उनकी लीला अपरंपार है. वो अपनी लीला किस तरीके से किस में दिखाते हैं वो देखने की चीज़ है. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आपने सबने वो सुना है स्टोरीज जिसमें वर्धराज आता है और पाणिनि बन जाता है. क्योंकि ये भी एक तरीके का ईश्वर का पावर है. मनुस्मृति में बहुत सारी जगहों पर मतलब मिक्स ओपिनियन है, जैसे क्योंकि हिंदुइज्म हम सबको फ्रीडम देता है अपने आप को. जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है वो भी हिंदू है, राइट. तो वो हमें फ्रीडम देता है. तो डिसेबिलिटी के बारे में भी कुछ लोग मानते हैं कि पूर्व कर्म की सजा है, कर्म का बंधन है, लेकिन मेरा अपना मानना है और बहुत सारे हिंदू धर्मशास्त्रों का ही सार है जिसकी वजह से मैं मानती हूँ. पूर्व कर्म का बंधन ईश्वर सजा देते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर अपनी महिमा हम सबके द्वारा प्रकट करते हैं. अगर ये सिर्फ पूर्व कर्म की सजा होती तो आज मैं इतनी सारी चीज़ें अचीव करके यहाँ पर नहीं होती. इस्लाम में कोई पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट है नहीं. सो वहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें हैं. वो भी बहुत बार पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन वो डिसेबिलिटी को बहुत बार डिनाई करते हैं, इस क्वेश्चन को डिनाई करते हैं कुरान हदीस वगैरह में.
और वो भी अच्छी अप्रोच करते हैं डिसेबिलिटी को, वो भी ईश्वर अल्लाह की मर्जी मानते हैं, ईश्वर को डिसेबल पर्सन के थ्रू ईश्वर की ग्लोरिफिकेशन होती है ये भी मानते हैं। क्रिश्चियनिटी में पूर्व में भी जैसे ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन जीसस ने डिसेबल को एक्सेप्ट किया। इट्स वेरी सिमिलर टू हिंदुइज्म कि ईश्वर अपनी महिमा दिखाने के लिए लोगों को किसी तरीके से अपनी महिमा उनके थ्रू प्रकट करना चाहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पेपर्स में मैंने लिखा है। आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑल द रिलीजन स्पेसिफिकली डील विथ डिसेबिलिटी एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिसेबल विमेन। बट सर भी बात कर रहे थे श्रीकांत की, और बहुत सारी बातें हम डिसेबल मेन की करते हैं। मेरा सक्सेसफुल दिन ये होगा जिस दिन नरेश सर की तरह हम डिसेबल विमेन की कैपेबिलिटी पहचानेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को पहचानेंगे। और एक बहुत छोटी सी बात है जो मैंने भी यहाँ भी नोटिस किया, हर जगह नोटिस कर रही हूँ। When you create toilet for disabled men, right? A disabled person with disability के लिए आप बनाते हो, वहाँ पर आप वुमेनहुड पूरे तरीके से भूल जाते हो और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक चीज़ें या बेसिक तरीके से जो डिसेबल्ड वुमेन फेस कर रही हैं, that very few people have understanding. So basically when we talk about religion and religious problem, तो of course religion आप सिर्फ उस चीज़ पर मत जाओ कि बैड डीड या गुड डीड, लेकिन रिलीजन आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको इवॉल्व कर रहा है। एट द सेम टाइम आपकी हेल्प करने की कैपेबिलिटी से एक पर्सन विथ डिसेबिलिटी को भी इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि वो ईश्वर की महिमा आप में देख रहा है, ग्लोरी देख रहा है भगवान का, एक सोल की एक सोल करने की, समझने की, दया नहीं एम्पैथी रखने की भावना देख रहा है, और वो उस सोल से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। उससे आपका भी आप भी इवॉल्व करते हो और पर्सन विथ डिसेबिलिटी भी इवॉल्व करता है। और जब आप उसकी कैपेबिलिटी बताते हो तो क्या होता है, तो उस पर्सन के साथ पूरी, जब लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी बड़ी होती है तो पूरी सोसाइटी बड़ी होती है और पूरी सोसाइटी महान होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके में अमरिंदर जी, एक छोटी सी बात है, डिसेबिलिटी की या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की काफ़ी बात करी। मैं ये देख रहा हूँ रिसेंटली हमारे कॉलेज में हर हफ्ते कोई सुसाइड की न्यूज़ आती है और मेरे को बहुत तंग करती है वो। कॉलेज एम्स हो, मौलाना आज़ाद हो, JNU हो, BHU हो, कोई भी हो, इंजीनियरिंग हो। इनफैक्ट जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें से है कि 1-2 हज़ार में से एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, जो यंग बडिंग इंटेलेक्ट। और स्कूल पे जाएं तो उससे 10 ज़्यादा गुना उसकी प्रकोप है, सुसाइड की जो टेंडेंसी की है, और उनमें से 1/10 जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये जो है सारे इंटेलेक्ट वाले हैं। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि ज़्यादा जो डिसेबिलिटी वो है, तो इनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक तरह से डिसेबिलिटी भी है। बिल्कुल। क्या या दोनों कहना चाहेंगे? I think Siviti ji want to answer this question, right? You please go ahead, then I will say. पहले I think आप करो, ladies first. पर कुछ दिनों के लिए मैंने काम किया है। मैं खुद चाहती थी स्कूल में एज अ सुसाइड प्रिवेंशन के लिए टॉक देने के लिए। हम स्कूल में हर तरीके के प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को। भूकंप रोज नहीं आता है ना, अर्थक्वेक रोज नहीं आता है ना, आप प्रिपेयर करते हो। फायर फाइटिंग रोज नहीं आता, अभी लॉस एंजलिस में आया मुझे भी पता है, लेकिन रोज नहीं आता है, राइट? आप प्रिपेयर करते हो उसके लिए। हाउ मच टाइम इट हैपन्स कि हम पर्सन को डिसेबिलिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं या उसके फेलियर के लिए प्रिपेयर करते हैं? डू वी डू दैट? क्या हमारा कोर्स स्ट्रक्चर इस तरीके का है? बहुत बार मैं देखती हूँ पर्सन सड़क पर गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत डिप्रेस हो गया, और वो अल्टीमेटली
पैर नहीं चल रहा था या कुछ नहीं चल रहा था, वो सुसाइड कर लेता है. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, बिकॉज दैट पर्सन वॉज नेवर प्रिपेयर्ड कि इस चीज के नहीं होने के बाद भी तुम्हारे पास एक रास्ता है. उसी तरीके से जब कोई हमारी प्रॉब्लम आती है तो हमें ये नहीं समझाया जाता है यस यू आर इन फेलियर, बट उस फेलियर के बाद भी आपके पास कोई रास्ता है. स्पेशली व्हेन वी टेल पीपल नो यू कांट डू दिस, और पूरी सोसाइटी बोलना शुरू करती है नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे, या ऐसा ही है, तुम्हारे साथ गलत ही हो रहा है. तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे ये सब बताते हैं, आपके लिमिटेशंस क्या है ये सब बताते हैं, बट यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी. आज महाराज जी ने बताया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अमरिंदर जी. देखो, अगर मैं डॉक्टर्स की ही बात करूं, पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल्स सबकी, तो एक स्टडी कंडक्ट की थी IMA ने, तो उसमें ये बताया गया था कि 70% के करीब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो किसी ना किसी कारण या एंजाइटी में या डिप्रेशन में या OCD या कुछ तरह की एक साइकोलॉजिकल बीमारी से गूंज रहे हैं. और जो आपने सुसाइड की बात की, खासकर मैं उससे बताऊंगा कि जितने भी हाईली इंटेलेक्ट पीपल हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, साथ ज़्यादा डॉक्टर्स मैं देखे. अभी हाल ही में आपने जस्ट 3-4 महीने पहले की बात है, एक रेडियोलॉजिस्ट, ही गॉट फर्स्ट रैंक इन नीट PG फॉर MBBS एंड देन ही बिकम रेडियोलॉजिस्ट. उसमें भी वो टॉप रैंकर था, तो उसने अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया. तो बड़ी एक तो दुख की बात है. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, एक मैंने वाणी लिखी थी कि जब आप सपोज करो, ये उनकी तरफ से है जो पेरेंट्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी तरफ से उसके लिए है जिस दिल विच सजना वस जाइए. मतलब जो जिसके आप दिल में वस जाते हो, जैसे वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका टीचर हो सकता है, कोई आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके गुरु हैं, उनके जिस दिल विच सजना वस जाइए, उस दिल ते जुल्म कमाईदा नहीं, उस दिल पे चोट नहीं पहुंचाते. जिस दिल विच सजना वस जाइए, उस दिल ते जुल्म कमाईदा नहीं, ਜਦੋਂ प्यार किसी ना पा लिए ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ के जाईदा नहीं. मीन्स कि आप आज प्रण लो कि आपको नर्चर करते हैं आपके पेरेंट्स, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम दी नर्सरी से आप 10th, फिर +1, +2, उसके बाद आप चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल कुछ भी सब्जेक्ट लेते हो, आपको नर्चर करते हैं 30 साल के बाद. 30 साल के बाद आप सडन एक कोई इंपल्सिव डिसीजन लेके आप ये काम कर देते हो, दैट इज़ वेरी एक निंदनीय है. हाँ, मैं आप कभी भी जैसे कहते हैं ना कि सुबह उठ के कई बार हम हर रोज़ एक मल्टीविटामिन लेते हैं, तो हर रोज़ उठ के आपको कैसे मोटिवेट करना है, वो कैसे आएगा? मेडिटेशन करके. आपको कैसे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर हर रोज रहे, वो आपको हर रोज वो लेना पड़ेगा. तो अपने आप में वो आपको रखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने आप को और पॉजिटिव हर वक्त, जहाँ बैठा हूँ, जहाँ चल रहा हूँ, जहाँ कुछ भी कर रहा हूँ, तो आपको कैसे पॉजिटिव रहना है वो आपको अंदर आना चाहिए. दूसरी बात कि आज मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि अपने पर्स में आप जो भी कैरी करते हो, उसमें अपने पेरेंट्स की, जहाँ आपके टीचर की, जहाँ जिसको आप मानते हो, उसकी फोटो लगाओ और हर रोज देखो कि कल को ये डिसीजन लेने से पहले आप सोचो कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो किसका नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है कि सोसाइटी का नुकसान हो रहा है. कि 30 साल तक मैंने सब कुछ सीखा, पढ़ा, तो अब सोसाइटी को देने का टाइम आया तो मैंने ये काम कर लिया. तो ये चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, हमको बताना पड़ेगा. दूसरी बात, अब हर स्कूल में, हर कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट रहते हैं. पहले आप पीयर ग्रुप से बात करो, अपने जो पास वाले कोई भी आपका फ्रेंड है उससे बात करो, वो नहीं तो सीनियर से बात करो, सीनियर नहीं तो साइकोलॉजिस्ट से बात करो, साइकोलॉजिस्ट नहीं तो साइकेट्रिस्ट से बात करो, पर बात करो. अपनी बात ही नहीं हम बता पा रहे. जब तक हम बात बताएंगे नहीं तो कैसे उनको पता लगेगा कि तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम चल रही है. किसी को सपना तो नहीं आएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है. तो हम बात ही नहीं कर पा रहे एक दूसरे से. जब तक बात नहीं करेंगे तो तब तक ये हल नहीं होगा. तो ट्राई टू स्पीक टू समवन सो दैट आपकी अपनी पीड़ा खत्म हो. धन्यवाद. थैंक यू. आई एम अफ्रेड वी विल हैव टू वाइंड अप दिस पैनल डिस्कशन. लेकिन एक मेरे मन में बात आती है कि अगर हमारे पास ये डिसेबल्ड हैं, हेल्दी डिसेबल्ड हैं, इनका नंबर इतना ज़्यादा है कि कोई ये कहेगा कि शायद 70-80% हमारी पॉपुलेशन किसी तरह की विजिबल, इनविजिबल, फिजिकल और अदरवाइज डिसेबिलिटी से सफ़र करती है. तो इस कैटेगरी को क्या हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है?
भारत सरकार में एक बार मुद्दा उठा था कि हाइपरटेंशन डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है कि उसको फिजिकल फिटनेस का जो करते हैं रिक्रूटमेंट में उसे बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये सोचने का विषय हो जाएगा। लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट को थैंक यू करना चाहूँगा उस इतना लाइवली डिस्कशन के लिए। और अब जो है हम फाइनल वाणी पे आते हैं, गुरु जी की वाणी। ना गुरु जी की वाणी में हर चीज़ का आपको तोड़ मिलेगा, हर चीज़ का सारांश मिलेगा। हमने देखा है कि डिसेबिलिटी में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट आई है, जीन थेरेपी आई है कि डिसेबिलिटी का जो बच्चा था जो बैठ के खड़ा नहीं हो सकता था, आज वो चलता भी है और दौड़ता भी है। ऐसी थेरेपीज भी आ रही हैं, लेकिन उसके साथ में परेशानी भी आ रही है, पहले भी थी जब इलाज नहीं था और इलाज के बाद में भी हैं। यही हमारा हीमोफीलिया में भी एक्सपीरियंस था और यही काफ़ी लोगों का रहा है। गुरु जी, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल के हम लोगों का ज्ञान बढ़ाएं। डिसेबिलिटी जैसे कहा, बाहर कहते हैं बाहर मुखी, आउटर वर्ल्ड, दैट विच वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच एंड स्मेल। तो इसको हम कहते हैं बाहर के संसार की जो है, कहीं जो हमारी सेंसेस हैं जो ग्रहण करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये सारी परिभाषा रख दी। एबिलिटी, डिसेबिलिटी, जो भी चीज़ें हैं ये बाहर, डिक्शनरी जो है ये बाहर इस शरीर से, इस इंस्ट्रूमेंट को खेलने के लिए बनाई गई। अब इसमें जो अगर हम डिसेबिलिटी और एबिलिटी जो कह रहे हैं, इसी के ऊपर जो खोज की जिन्होंने, स्पिरिचुअलिटी जिसको कहा, जिसको स्पिरिचुअल मास्टर्स कहा हमने, बुद्ध, महावीर, जीसस, राम परमांस, साईं बाबा, मीरा, सहजुल्लाह, पीछे रामा, कृष्णा, उपनिषद जो भी, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ी डिसेबिलिटी जो है वो तेरी पीड़ा है, तेरा दुख है, ब्रेन में जो दुखी हो रहा है, सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है। क्योंकि आज हम देखें कि आए दिन कहते हैं हर सेकंड के अंदर कोई सुसाइड की कोशिश करता है। तो कौन सुखी है संसार में? मुझे तो 17 साल में कोई सुखी मिला नहीं अभी तक एक भी। तो ये डिसेबिलिटी जो कही कि जब तू दुखी है, तू परेशान है, तू अशांत है, सबसे बड़ी डिसेबिलिटी ये है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। और सबसे बड़ी जो सी एबिलिटी ये है, मौज ये है कि तू रिलैक्स में है, खुश है। तो फिजिकली वट एवर द पार्ट्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, और जो भी तेरे साथ जीवन में होता है, जो शरीर में बीमारियां आती हैं, सड़क पर चल रहे हैं, सडनली कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हुआ, एम्पुटेट हो गई लेग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, समथिंग इज गोइंग ऑल द टाइम, बाहर एक्सटर्नली और इंटरनली। तो लास्ट जो जिसको डेथ कहते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस बॉडी, देखो उसी पार्ट्स को पूरा डिसेबल कर देते हैं। उसको कोई पार्ट काम करेंगे, जलाई दो, इसको राख ही कर दो। सो एक्चुअली द मेन इज, वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, कि जो डैडी है उसको जो अंदर एनर्जी आने के बाद, स्पिरिट जिसको कहा, सोल एनर्जी आने के बाद जो चल रहा है, तो इन पार्ट्स का जो तू यूज कर रहा है, मान लीजिए मैं कहता हूं यार मैं ब्लाइंड हूं, तो भाई इस आंख से तू देख क्या रहा है? तू इस आंख से जो भी देखता है तुझे रिलैक्स आ रहा है? आंखें ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। अब शरीर से कहते हैं यार मेरी लेग फिट चल रही है, अच्छा तू जितना दौड़ रहा है रिलैक्स आ रहा है? तो हम किसको कहें कि आंख जिसकी ब्लाइंड है वो मौज में है, जिसकी आंख है वो सही है, जिसके लेग जो से हैं काम नहीं कर रहे, जो चल नहीं पा रहा घर से बाहर, वो ठीक है, जो दौड़ रहा है। तो मेन क्या है कि ये सब पार्ट्स जो बाहर फिजिकल बॉडी हमें प्ले करने के लिए मिल गेम, तो हम देखते हैं कि मूवीज के अंदर कभी कोई रोल कर रहा है, शाहरुख खान अपाइज का रोल भी करता है, करिश्मा कपूर भी कभी ब्लाइंड का रोल कर लेती है। तो जो रोल करते हैं तो दे रिमेन इन रिलैक्स, उनको पता है कि कैमरे के आगे जो शूट हो रहा है, आई एम नॉट ब्लाइंड, आई एम नॉट समवेयर हैंडीकैप, कुछ भी नहीं हूं भाई, मैं तो रोल कर रहा हूं, आई नो स्क्रिप्ट है ये। तो ऐसे ही जब यू अंडरस्टैंड योर रोल, कि इस बॉडी से रोल मिला भाई, रोल थोड़ा लंबा है हमें लगता है, पर ये रोल है नहीं इतना लंबा। अगर हम कहें भाई जिंदगी का पता लगा, बाल कब सफेद हो गए, क्या पता ही नहीं यार, मौत खड़ी हो गई आकर। तो दिस लाइफ यू हैव द रोल, वंस यू अंडरस्टैंड द लाइफ इज कंप्लीटली हैप्पी इन ऑल द मोमेंट्स। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम देखें जिन्होंने स्पिरिचुअल मास्टर जिसको कहा हमने, बुद्ध, महावीर, जीसस, अब देखो बुद्ध ने क्या कहा, तथाता, दैट्स ऑल एक्सेप्ट। जीसस की बाइबल का जो पूरा थीम सार है जिसको कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी।
कृष्ण भगवान की गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। पीछे रामचरितमानस कहा तो कहा रजा में राजी रहो। महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो। गुरु नानक देव भी कह रहे हैं हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई, हुक्म रजाई चलना। कहने करते कि सबने वही कहा है कि रजा में रहो भाई, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो क्यों जन्म क्यों हुआ तेरा, तुझे मालूम है? मृत्यु क्यों, आगे क्या? कहता तेरा जन्म ही श्राप है, योर बर्थ इटसेल्फ इज अ कर्स, व्हाई यू कम हियर। अगर हम कहते हैं मैं तो हिंदू हूं, भाई तू यहाँ क्यों है? तो कृष्ण भगवान के साथ क्यों नहीं बैठा हुआ? राम जी के साथ क्यों नहीं बैठा हुआ? अगर तू सिख है तो गुरु नानक देव के साथ क्यों नहीं बैठा हुआ? महावीर जैन है तो महावीर स्वामी के साथ क्यों नहीं बैठा हुआ? कितने तेरे जन्म हो गए भाई, तो मर मर कर लौट रहा है। यू नो व्हाई यू आर कमिंग बैक, दिस बर्थ इटसेल्फ इज द कर्स। बच्चा जन्म से आखिरी तक देखो, आज हम देखें दुखी और सकल संसार, गुरु नानक देव कहते हैं। बुद्ध 25 साल कहते हैं संसार दुख है, 17 साल में मैं भी कह रहा हूं सब दुखी दुख है, कोई सुखी है ही नहीं। अब सुखी कैसे हुआ? अब यहां भी देखो मेरे साथ जो मेरे 100-150 लोग आए हुए हैं कि ये भी दुखी थे, अब जीवन का ज्ञान मिल गया। क्या मिला? अगेन आई एम सेइंग ओनली ए लेक्चर, वाणी, ये वाणी नहीं है, मेरे प्राण है, मेरा अनुभव है। तभी सारे ग्रंथ कह रहे हैं किसी तत्वदर्शी ज्ञानी से जाकर ज्ञान लियो। तत्वदर्शी ज्ञानी जिसके जीवन में खुद अनुभव होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो ऑलवेज मौज में रहता है, ब्लिस में रहता है। तो अगर जो से आपको जीवन का ज्ञान मिल जाता है, अगेन यू आर ऑलवेज इन द हैप्पी मोड, ऑलवेज इन द हैप्पी मोड। क्या हो रहा है यार, तेरे शरीर का कोई अंग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? जिनके कर रहे हैं वो ऐसे दुखी ज़्यादा है, जिनके नहीं कर रहे हैं वो तो दुखी हैं, जिनके कर रहे हैं और ज़्यादा दुखी हैं। वो सुसाइड क्यों हो रहा है भाई, डिप्रेशन क्यों हो रहा है? आज साइकेट्रिस्ट पर लाइन लगी हुई है, यूथ को देखो। तो ये जो गेम है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस गेम, जो अगर इसको हम समझ लें, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, देन यू आर इन रिलैक्स हैप्पी। मैं क्यों कह रहा हूँ फिर अगेन, अंदर से कंकाल थोड़ी फर्स्ट क्लास है, 20 से 22 घंटे रोज बोलता हूँ, और आज तक एक बार भी चद्दर मुंह पे डाली कि आज तबीयत खराब है मेरी। कैसे चल रहा हूँ? बॉडी जो सी है अंदर से नहीं है, इनसाइड, इनसाइड वही खेल है, बट आउटसाइड। और बीच में जो लेयर है ना, लेयर बिटवीन दिस एक्सटर्नल बॉडी एंड द इनर बॉडी, एनर्जी बॉडी, लेयर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, एक्सेप्टेंस है। हाँ यार ये तो होना ही था ना, ऐसा थोड़ी है, मेरे बच्चे हैं बिजनेस करते थे, सब कुछ है, प्लस माइनस होता है, घर में भी होता है, रिस्पेक्ट डिस्पेक्ट सब कुछ होता है। अंदर नो एंट्री बोर्ड लगा दिया, तो जब आप अंदर नो एंट्री बोर्ड लगा देते हैं, आउटसाइड सेंसेस को जाने नहीं देते, जैसे कि करेक्टर रोल करता है कैमरे के आगे, तो फिर ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी जो है वो नहीं रहती, पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी फिर वही जैसे स्टार, एक एक्टर एक्सेप्ट करता है, यू एक्सेप्ट द लाइफ एंड देन लाइफ इज ब्लिसफुल, हैप्पीफुल। सो जस्ट टू नो अबाउट योरसेल्फ, लाइफ इज हैप्पी। सिर्फ जानना है अपने इस इंस्ट्रूमेंट के जीवन के ज्ञान को, एंड यू कैन प्ले द लाइफ वेरी ब्लिसफुली। थैंक यू। Thank you, Guruji, for these precious words, the wisdom, and I think the crux is acceptance and faith. Thank you, sir, and thank you, panelists. We'll have to wind it up because Dr. Sunita, over to you. Master Ji, Professor Suman, Dr. Harish Gupta, Dr. Sanjay, Dr. Amrinder Singh Mali, and Dr. Smriti Singh. And thank you for a wonderful insights on how spirituality fosters empathy, can be a transformative force in the lives of differently abled individuals, offering them strength, purpose, and a sense of inner peace. It's now time to honor and felicitate the distinguished members on the dais. May I request our Honorable Director, Dr. Srinivas Sir, and we'll be honored to have you, sir. Thank you, sir. We also welcome our Chief Guest, sir, Dr. Shantanu. Sir, you're welcome, sir. So we thank it was an extremely inciting, and that the kind of, Dr. Smriti took it forward. The unwavering dedication, immense expertise, and an inspiring contributions. Sir, please, we would be honored, आप आगे आ जाइए। हाँ जी सर, मैम प्लीज, कोच मैम प्लीज. And we thank you, sir, for giving this opportunity to us to
have this session. Smriti ma'am ka, हाँ जी. So we request you to kindly felicitate our panelist, Dr. Smriti ma'am. She's a professor at Maitri College. Yeah. Thank you so much, Dr. Smriti. You have been wonderful, and the kind of insights you gave, it was like so touching to our hearts, and thank you very much for this. And thank you for being with us, Dr. Smriti, and thank you, Srinivas, sir, for doing this honors. Thank you. Thank you. Now, we request the director, sir, to kindly felicitate Dr. Professor Suman, ma'am. Master ji, along with, she has been extremely instrumental for bringing the details to us and chairing the session. Thank you, ma'am. She's co-chairperson of AIMS Humanities Initiative as well as the Spiritual Policy. Wow, she's also a co-chair along with Vadhva sir to humanities and spirituality aspects at AIMS. Wonderful. And we wish to bring this to the global level as the memento suggests. So thank you, ma'am. Thank you so much. Now I request Vadhva sir to kindly step forward, and Master Ji and Srinivas sir felicitating Dr. Vadhva for such a lovely, aspects that he brought forward to. Thank you so much, Vadhva sir, for taking us time and being with us. Indeed honored, sir. Can we have a big round of applause for the entire panel? That was such a wonderful energies which was being dissipated at the same time. Thank you, sir. Now I request Dr. Professor Naresh Gupta, sir, to kindly step forward and have the felicitations. Wonderfully articulated, wonderfully conducted the entire panel discussion on. Thank you so much, sir. Thank you. Enhancing the lives of differently able through spirituality. A big round of applause for the moderator, Professor Dr. Naresh Gupta, sir. Thank you, Shantanu, sir. Thank you, Srinivas, sir. And thank you, Master Ji, for this. हाँ ठीक है फेलिसिटेट पहले करते हैं बाद में होगा. Now can I request Amrinder sir? Thank you so much for the wonderful, your examples, the little small shairi that you shared across along with us, and the wisdom which says, देने से ही बढ़ता है, which is like,
your unwavering dedication, expertise, and inspiring contributions, sir. Thank you very much, Amrinder sir, for being with us. A big round of applause for the entire panel team that we have. Kocher ma'am, this would have been complete, and thank you for having Kocher ma'am has been a backbone, and of course Srinivas sir. Now, can I request the panelists to step and be seated at the front rows, and I would request Vivek Dikshit sir to take it forward, the inauguration. Yes, ma'am. Thank you. Now, subsequent to the inauguration, we have a very interesting panel discussion subsequent to this. And this is about overcoming suicidal thoughts and achieving mental well-being through spirituality. Adhyatam द्वारा कैसे suicidal thoughts पर काबू पाया जा सकता है. And we would like to have a lamp lighting. But Vivek Dikshit, sir? Yes, sir, please. Thank you. पहले करा दे. Thank you, Namaskar to all of you. What a wonderful day and the event. मास्टर जी, जब हम यहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप करते हैं ना, गिने चुने मिलते हैं. अब तो आपने भर दिया पूरा इसको. गिव अ बिग हैंड टू हिम. ओनली इन कॉन्वोकेशन हमारा इतना भरा रहता है. साइंटिफिक एकेडमिक प्रोग्राम में लोग भी कम होते हैं ऑफ कोर्स, बट पार्टिसिपेंट्स भी कम होते हैं. बट ये तो सिर्फ कॉन्वोकेशन के टाइम में हमारा इतना भरा होता है. ऊपर भी भरा है, नीचे भी भरा हुआ है. Dignitaries on the dais, off the dais, and everybody. Ladies and gentlemen, AIMS has taken the role, and we are very happy that organizations, the NGOs, people, spiritual giants are visiting this place, because this is a place where we need spirituality also. Because by definition, health means physical health, mental health, social health, and also spiritual health. And this is a component which, as a doctor, as a teacher, as a medical educationist, we may not be in a position to fill up that gap. And we are here, the doyens who are here,
and the Master Ji here, who is filling up that gap and making a truly holistic health for all of us. आप भी जानते हैं कि हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट में, इस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस पेशेंट के पास भी होता है, स्ट्रेस डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के पास भी होता है, क्योंकि हमारा ह्यूज वर्कलोड है. वर्कलोड ज़्यादा होता है. वी आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डेथ्स भी होते हैं. बहुत सारे लोग अच्छे भी हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, बट वो उसमें जो वर्क प्रेशर जो लगता है वो सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर लगता है. और जब तक हम, जैसे मास्टर जी ने कहा, जो पॉजिटिविटी और वाइब्स हम नहीं लगा सकते, हम पेशेंट को भी नहीं दे पाएंगे. सो दिस इज एन अटेम्प्ट विच दी ऑर्गेनाइजर्स हैव टेकन अप दिस इनिशिएटिव ऑफ ब्रिंगिंग द पीपल, and every Wednesday we are working on that, and today it's a houseful day, and nice lectures and lot of blessings from the people who are here, not only here but also on the other side of the dais. And definitely sir, we look forward for the support which you are giving us. हम आपके थ्रू, आपका जो सपोर्ट मिलता है, स्पिरिचुअल हेल्थ मिलता है, सिंपैथी एम्पैथी बढ़ जाती है, हमारा काउंसलिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हमारा रेजिलियंस बढ़ जाता है, हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो हम भी हेल्दी रहेंगे, हमारा पेशेंट्स को भी हम हेल्दी करेंगे. एंड दिस इज समथिंग विच वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, big thank you to you and the organizers who have done. Thank you very much. धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय. मैं रेवरेंड श्रद्धेय मास्टर जी, आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने कर कमलों से आदरणीय निदेशक महोदय को सम्मान दें. Sir, Master Ji has a vision for to reach to 800 crores, sir. So it symbolizes. Director sir has been extremely busy, but still he took out time. So we are so grateful for being with us for this period, sir. Thank you very much, sir. Can I have the next panelist to be with us as Sujata ma'am? Yeah. Dr. Siddharth as the third panelist. आप सभी को नमस्कार. श्रद्धेय मास्टर जी और इस सभागार में उपस्थित आत्मीय स्वजनों, मंच पर विराजमान मैं डॉक्टर राजपाल सर, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस सेशन को को चेयर करें. आप कृपया मंच की तरफ आए. सम्मानित मंच, केंद्र में श्रद्धेय मास्टर जी, सबसे पहले शिष्टाचारवश और औपचारिकतावश भी ये जो सेशन 3 है, चूंकि निदेशक महोदय को
इस कार्यक्रम में वे आए और उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। उन्हें कहीं जाना था और मैं समझता हूं कि संस्थान के प्रमुख होने के नाते उन्होंने ही हैज़ टेकन ए ट्रबल कि वो कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के लिए भी समय निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो आए। और मैं समझता हूं संस्थान के निदेशक महोदय का आज के इस कार्यक्रम में थोड़े ही समय के लिए आना इस कार्यक्रम की प्राण प्रतिष्ठा को करने जैसा है। एक कुंभ 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में लगा है, जिसमें सब आस्था में अपनी डुबकी लगाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति की आकांक्षा लेकर के विश्व के हर कोने से लोग दौड़े चले जाते हैं, जिसमें कोई निमंत्रण कोई आमंत्रण नहीं है। मैं समझता हूं एक कुंभ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आज लगा है। इस कुंभ में ज्ञान के सागर में अपना बौद्धिक चेतना का स्तर ऊंचा करने के लिए किसी को गुरु मान करके, किसी को मास्टर मान करके, किसी को मां मान करके आज हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। इनफैक्ट हम एम्स के परिवार वाले बधाई के पात्र हैं कि जीवन की इस आपाधापी में हम अपने मूल उद्गम मूल स्रोत को कभी नहीं समझते और ये मानते हैं कि जीवन में 90% तो जीविकोपार्जन में चला जाता है, वोकेशनल लाइफ में चला जाता है। और अंत में समझ में आया कि जो कुछ किया वो तो जीविकोपार्जन के लिए किया, लेकिन ये जीवन किसके लिए था, ऐसा समझने का कभी समय नहीं मिला। और ये समय ईश्वर की कृपा से ही आता है। स्वयं के बौद्धिक चेतना अगर अच्छे जहां सुमति होती है वहां पर ऐसे हम अच्छे शिष्य बनते हैं तो हमें अच्छे गुरु मिल जाते हैं। हमारे अंदर अच्छा शिष्यत्व आया तो हमें ऐसे गुरु मिल गए। घर में मां सबको मिलती है जो सबकी पहली टीचर है, हमें तो मां भी मिल गए और स्कूल की तरह मास्टर भी मिल गए। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री शांतनु मुखर्जी जी, आप वरिष्ठ आईपीएस हैं, 1976 बैच के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने जीवन काल में अनेक पदों का दायित्वों का निर्वहन करते हुए, उसमें अगर मैं पढ़ना मुख्यतः शुरू करूं, आप प्रयागराज में आपका जन्म हुआ 1950 में और उसके बाद आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में, यहां तक कि आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बहुत विशिष्ट पदों पर रहे। आप उसके बाद मॉरिशस में स्पेशल ग्रुप ऑफ एडवाइजरीज में रहे। आपको भारत सरकार से पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 1989 में मिला, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल में मिला, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अवार्ड इन 99 मिला, पोस्ट रिटायरमेंट आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस 2010 से 2015 आप रहे, सिक्योरिटी एनालिस्ट रहे, जियोपॉलिटिकल जो कार्यक्रम है उसके लिए पैन इंडिया और पूरे विश्व में आप भ्रमण करके बहुत सारे, मतलब मैं अगर उसको पढ़ना शुरू करूंगा तो शायद वो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। आप इसको कल्पना के रूप में मानिए, एक जीवन में एक व्यक्ति इतने सारे भौतिक अचीवमेंट्स कैसे कर सकता है और अपना उत्कृष्ट सेवा दे सकता है। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में आपको म्यूजिक सुनना, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल सुनना आपको पसंद है, आपको कहानियां कहनी बहुत पसंद है और आप इस समय नोएडा में आपका निवास है और आप नेट स्टार्ट प्रोफेशनल थिंक टैंक जो जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी पर है उसके आप परामर्शदाता हैं। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज का तो सबसे पहले मैं आपसे कार्यक्रम की रचना योजना में सबसे पहले, इससे पहले कि हम सेशन 3 में प्रवेश करें, मैं शांतनु सर आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपना पाथेय और मार्गदर्शन इस सेशन के लिए हमें प्रदान करें। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मार्गदर्शन करने के उपयुक्त तो हूँ नहीं, इतने सब डिस्टिंग्विश्ड लोग, प्रतिष्ठित लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने को सिद्ध कर चुके हैं, जो कर्म योगी हैं। इस बात का आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि आज एम्स में और इस सानिध्य में
मैं आपसे बोल पा रहा हूँ। और ऐसे टॉपिक में जो मेरा नहीं है, मेरे बायोडाटा के बारे में आपको बताया गया, तो पुलिसमैन हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्पिरिचुअलिज्म, मेडिसिन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें हमसे बहुत दूर है। लेकिन हिम्मत बटोरा और कहा कि ये ईश्वर एक मौका दे रहा है मकर संक्रांति के एक दिन बाद, पौष के महीने में, और प्रयागराज में हमारा जन्म हुआ जैसा बताया गया, यहाँ उपस्थित होने का, जो मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर का मामला है, फेलिसिटेशन का है, जो शायद मैं डिज़र्व नहीं करता। मास्टर जी, आपका बहुत आभारी हूँ। ये नाम गूंजता है मास्टर जी, और मुखर्जी से थोड़ा मिलता जुलता है, जी लगा है। मैं स्वयं एक मास्टर का बेटा हूँ और ज़िंदगी भर सन 50 से सुनता आया हूँ, जब तक वो थे, कि ये मास्टर जी के बेटे हैं। तो अभी भी मैं उसी रिलेशनशिप पे आपको अपना श्रद्धा देता हूँ। और पिता ही नहीं, मेरे दादाजी भी मास्टर थे यहीं पे चंदौसी में शिक्षा पे। उसके सानिध्य में आना ये हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास एक पैदा करती है, बहुत प्रोत्साहन देती है। डॉक्टर श्रीनिवास का भी आभारी हूँ, यहाँ पर बुलाया। एम्स तो बियॉन्ड रीच एक होता था, इनएक्सेसिबल जगह। बेस्ट ऑफ ब्रेन्स आते हैं और बेस्ट ऑफ ब्रेन्स उनको पढ़ाते हैं और बेस्ट ब्रेन्स बन के देश और मैनकाइंड की सेवा करते हैं। और उनके बीच में आना सभागार में, जितना भी आपका बायोडाटा इंप्रेसिव हो, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि आप रियली ब्लेस्ड हैं। और संभवतः मकर संक्रांति के बाद वाले दिन में अब मैं आता हूं कि ये स्पिरिचुअलिज्म और जो मास्टर जी का प्रवचन थोड़ा हमने सुना, पढ़ा, और नकुल वैद यहाँ हैं, हमारे पूर्व सहकर्मी और अच्छे शुभाकांक्षी, जिनसे जानता रहता हूँ इसके बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में। समय के अभाव में उतनी गहराई तक नहीं जा पाता हूँ, लेकिन तब भी जितना कुछ है उससे तो लगता है कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और अभी भी आने के बाद से भी हो रहा है। डॉक्टर श्रीनिवास के साथ हमने मंच शेयर किया था रामकृष्ण मिशन में, पिछले वर्ल्ड यूथ डे में जाता रहता हूँ। ये सब मिला करके तो जब बड़ा होने लगा तो बड़ा कंफ्यूज माइंड था कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, मेडिसिन एक अच्छी चीज़ है जो सर्वोपरि है। स्पिरिचुअलिज्म जितना पढ़ते थे पास के लाइब्रेरी में जाके आध्यात्मिक किताबें, उतना कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाता था। फिर और बड़े हुए, कुछ वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ी, कुछ के संपर्क में आए, डॉक्टर राजा रमन्ना, भौतिक शास्त्री, फिजिसिस्ट, और अभी बताया कि संगीत में वो पियानो बजाते थे और वो ईश्वर का नाम भी लेते थे, करते थे, और कहते थे आध्यात्मिक जीवन से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है अपने विज्ञान के योगदान में। वो अपील कर गई। उसके बाद पढ़ा डॉक्टर सत्येन बोस, जो लगभग नोबेल प्राइज मिल चुका था, एसराज बजाते थे। संगीत को मैं साथ में ला रहा हूँ उसके लिए, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल पार्ट के लिए। वो भी कहते थे कि ये मेरा माध्यम है, आध्यात्मिक माध्यम के द्वारा ईश्वर तक पहुँचने का, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का। इसी प्रकार गुरुदेव के जीवनी में भी है। आपको मालूम होगा कि वो ब्राह्मो थे, हिंदू ही बट ब्राह्मो, जिसमें कि हिंदुओं की कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधारक वाले वो लाइन पे। लेकिन वो भी उनकी रचनाओं में उसमें देखते हैं कि एक फ्यूजन, एक सिनर्जी, एक मिलन बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड एकेडमिक्स ये था। तो मेडिकल साइंसेस उसके खिलाफ नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कुछ योगीज के कांटेक्ट में आया, देश और विदेश बहुत रहा हूँ, अच्छे, और उसमें मैंने बड़े नज़दीक से देखा कि काफ़ी डॉक्टर्स यूरोप में, इंडिया में, और ये सूथसेयर्स कह सकते हैं, ये हीलर्स कह सकते हैं, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिज्म और मेडिसिन उसको मिलाने का कर रहे हैं। इसमें आपका प्रयास सर बहुत सराहनीय है और हम देख रहे हैं। वो कोई फोर्स ऐसा है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आपको खींच लाई। कितनी व्यस्तता के बावजूद भी नहीं, जाएं, देखें।
इसमें जरा डुबकी मारें और उसमें हम तब रियलाइज करेंगे। ये बात बहुत आउटडेटेड है कि अरे भाई ये साइंस नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म इसमें तो नहीं है, मेडिसिन अपनी जगह पर है। डॉक्टर मणि भौमिक फिजिसिस्ट, उनकी किताब पदार्थ विज्ञान पर है, उसमें वो लिखते हैं कि कई चीजें हैं जो हमको मालूम नहीं है, हम अनभिज्ञ हैं, और शायद मालूम चले कि उसके अंदर भी कितनी साइंस है। और जितने साइंटिस्ट और मेडिसिन एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स रहे हैं, उनका भी यही कहना है। और ये हम जब चरक की जीवनी पढ़ते हैं, जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, 300 BC, ईसा से 300 साल लगभग पूर्व, 2500-3000 साल पहले, उसमें भी आप देखते हैं कि एथिक्स, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स, फिजियोलॉजी, उन सब का है। चरक संहिता में भी मिलता है। तो इसको बगैर जाने, बगैर रीजनिंग लाए ठुकरा देना कि स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता और मेडिसिन या हेल्थ के फ्यूजन संभव नहीं है, वो हमारे ख्याल से प्रीमेच्योर होगा, गलत होगा। उसी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो हम कोई बुद्धिजीवी नहीं है, इस चीज़ पे हमारी कोई पकड़ ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट दूसरा है जैसा आपको मालूम चला। लेकिन तब भी एट दिस एज, एट 75, मैं ट्राई कर रहा हूँ, और मास्टर जी के मार्गदर्शन में, मैं मार्गदर्शन लायक नहीं हूँ, डॉक्टर श्रीनिवास और आप जैसे इतने लोग यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, सब एक से एक डिस्टिंग्विश्ड हैं, अपने फील्ड के माहिर हैं, इनका अनुकरण करने की मैं प्रयत्न करता रहता हूँ हमेशा, और प्रोत्साहन लेता रहता हूँ। उम्मीद है जो आपके पैनल डिस्कशंस आज हो रहे हैं, उससे कुछ न कुछ रिजल्ट ही नहीं, निष्कर्ष ही नहीं, कुछ इस प्रकार ऊर्जा की उपलब्धि होगी जिससे सभी लाभान्वित होंगे और उनको मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। एक ठोस, एक कॉन्क्रीट, एक स्पेसिफिक रोड मैप मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और सिर्फ आपको ही नहीं, जो दर्शकगण यहाँ पर है, मैं अपने आप को भी बड़ा भाग्यशाली बनता हूँ कि मुझको भी समय के अभाव में जरा जल्दी जाना पड़ेगा कहीं से, एक कोचिंग में था, वहाँ से छोड़ के आया हूँ, लेकिन इसका फॉलो अप करके आगे भी जितनी गोष्ठियाँ होती रहेंगी या ग्रुप डिस्कशन, उसमें मैं आश्वासन देता हूँ मैं आता रहूँगा और मैं मार्गदर्शन लेता रहूँगा। देने की स्थिति में मैं हूँ नहीं। हमको धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है दोबारा कभी फिर मुलाकात होगी। आप सबको बहुत सी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। आपके इस शानदार प्रबोधन से न केवल आपकी लाइफ जर्नी हमने देखी, सुनी और कल्पना की, बल्कि साथ में जो हार्डशिप के साथ में आपका एक कांस्टेंट प्रयास रहा स्पिरिचुअलिटी को समझने का, उससे भी यहाँ खासतौर से जो युवा हैं जिनका अभी कैरियर एस्पिरेशन खासतौर से सिविल सर्विसेज की तरफ है, तो निश्चित रूप से उनको कुछ न कुछ ज़रूर अपने हिस्से का मिला होगा। आज के इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी, आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कृपया मंच पर आएं। आप नेशनल रिसर्च प्रोफेसर हैं आयुष में, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर IIT खड़गपुर, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी, ठीक है, आई होप दैट सर मे बी अराउंड। और मैं अब आज का ये जो कार्यक्रम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इसका जो कार्यक्रम करने के पीछे की रचना योजना या उसकी जो जेनेसिस है वो क्या है, उसके लिए मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी प्रोफेसर कमल कोचर मैम को निवेदन करूंगा कि वे आएँ और आज के इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है इसके ऊपर प्रकाश डालें। धन्यवाद विवेक जी। तो इस आज की संगोष्ठी में बहुत अच्छे से, what you say in English, it has been very nicely curated together. So I welcome the third panel, starting from our
यंगेस्ट मेंबर्स कनिष्क यादव जी जो नर्सिंग ऑफिसर हैं एंड ही इज़ you can say one of the social secretaries of AIIMS de facto, and Professor Siddharth Sarkar, a very close friend, also an AIIMSonian through and through, and he's in psychiatry as well as the National Drug Dependence Treatment Center, a great humanist, a great scholar, and a product of AIIMS. Professor Sujata Satpathy, she is my co-chair for AIIMS Medical Humanities Initiative. She was the person, I am very bad at budgeting, and I am also very bad at, putting together projects together. I just know how to talk, and she knows, I think, how to write. So, welcome, and she's also very busy because आप सब जानते हैं कि post COVID भी और आजकल बहुत सारा तनाव अवसाद चल रहा है. So I'm thankful to Dr. Sarkar and Dr. Sujata Satpathy, and also my dear, very close friend, Dr. Lata Venkateshan, who by designation and affiliation is Principal College of Nursing. But I know she comes from a corporate background. She's a double PhD and a Six Sigma. So we should give a big hand to all of them. We are dealing with the Bhushan sir, most welcome. Thank you. So, as the program has been curated, the first panel was Budding Intellects, how we inculcate spirituality and reclaim and redeem the paradigms which we have lost in making our medical students not as humane doctors, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि in the West they may be treated as, MCH means master of chirurgery और barber, नाई की तरह काटा पीटी करते हैं, but यहाँ पर चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि और मुनि की परंपरा है. So we want to reclaim and redeem the pilgrim's progress of a medical student through the traversal in a medical institute to retain and reclaim the humanity, which was the first session. That is how we, again, put back spirituality as both the front end and the back end office of the running of the human machine while taking care of the patients. And resist the lure of just one very small element, that is Maya or the financial gains, but the gains of the smile which a patient gives us and the family of the patient gives us, ki whatever be the outcome, we may not be able to change that at times, but the process is with dignity, the process is with serenity. That is what is one of the main objectives today. The second was when we deal with people who have more accomplishments than us. I'll just give you a small example. जैसे ये तिल होता है, तो melanin is concentrated one place. So we all have different competencies. I am also differently abled in some ways. I may be having some gained competencies in other ways. And that was the second objective, that how we inculcate a tolerance for the other, how we don't have alienation. And Sujata ma'am was very, very helpful, and Lata ma'am also, that how we inculcate empathy training, diversity tolerance, okay, and use the right lexicon for people who are, we are all same, but we are all individual also. The third theme today was prevention of self-harm. Professor Vikram Patel, who is now running a chair at Harvard and is a global mental health expert, running Sangat also in Goa. And he had taught us, आज के दिन भी गूगल कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सुइसाइड यूथ में होती है, और उसका कारण है broken relationships. Whether the relationships are with siblings, with parents, with spouses, with friends, with partners, whatever.
That is because what is not taught is that intellectual maturity is gained maybe by 18, 19, but there's a phase lag with emotional maturity and emotional decision making and impulse control, and that was the theme because of which I especially requested the organizers today from our collaborators from the community which you all belong to please include how the body is also a prasad from God, and we need to take care of it, and this moment too shall pass. In the bigger universal clock, it is just a very, very Shanbangur kind of thing. So that is the theme for the third workshop or panel today. Then it's my very pleasant duty to again welcome Master Ji, and because the very nice thing was said, a teacher is a parent and a parent is a teacher, a mother is a father and a father is a mother. अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है, ये बाउंड्रीज हमने लगाई हैं। मास्टर जी आपकी बात सुनकर बस एक छोटी बात करती हूँ, फिर मैं इसको बंद कर रही हूँ कि डॉक्टर के लिए पेशेंट भगवान का रूप है, जो स्माइल पेशेंट की फैमिली पे आती है। टीचर के लिए स्टूडेंट भगवान का रूप है, स्टूडेंट के लिए टीचर भगवान का रूप है, और इसी तरह से दुकानदार के लिए उसका क्लाइंट भगवान का रूप है। इफ़ वी कंसिडर दैट काइंड ऑफ गॉड हेड एंड गॉडलीनेस, देन थिंग्स विल बी बेटर एंड वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एंड आई अगेन वेलकम शांतनु सर। आपने कहा कि आप अलग हैं हमसे। सर आप अलग नहीं हैं, आप होम सिक्योरिटी करते हैं मैक्रो कॉस्मस लेवल पर, हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी हर बंदे की करते हैं जो हमारे घर में रहता है। हमारा घर माने भारत। एंड भूषण सर, जो आप कह रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट से भी आयुर्जेनोमिक्स पे एक पीएचडी गया प्रोफेसर दीपक के साथ, भावना पराशर। अभी कुछ दिन पहले जो CIMR है वहाँ प्रकृति से पहचान प्रोग्राम हुआ है। So sir, the point is the syntax and the lexicon was different from the Western literature. We are 5,000 centuries legacy, and that is just modern science is 350. So that is what we tell our students also. Who do they of medicine know? Who only medicine know? We have to know our patient inside out. And Professor Rajpal, my dear friend, who is again one of the spiritual gurus at AIIMS, very much into integral practices, lived experiences, aura generation. He is an AIIMSonian, and my husband had dragged him, I believe. So then Naresh Gupta sir is also sitting here, and he has been instrumental. He's a professor at the Rajendra Prasad Eye Center, and therefore I requested him to chair today. Thank you very much, Sunita ji. Vivek ji, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोचर मैम। सच पूछिए तो विगत लगभग 2 वर्षों से, जिसका मैं साक्षी हूँ, एम्स के अंदर स्पिरिचुअल तत्व को, जो कि हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल कंटेंट को एक तत्व मानता ही है कि वो एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी जो है, अगर आप होलिस्टिक हेल्थ की बात करें तो स्पिरिचुअल एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। परंतु स्पिरिचुअलिटी और स्वास्थ्य शिक्षा के बीच में जो गैप है उसको ब्रिजिंग करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो विगत 2 वर्षों से मैं मासिक रूप से देखता हूं कि हर बुधवार को एक स्पिरिचुअल लेक्चर होता है। उसकी अलख अगर किसी ने जगाई है तो प्रोफेसर कमलप्रीत कोचर मैम ने जगाई है। उनके लिए एक बार पुनः आप सभी करतल ध्वनि से कि वो इसमें एक लीड रोल में रही हैं, एक फ्रंट रोल में रही हैं। ऑब्वियसली ये निश्चित रूप से चूंकि हमारे माननीय निदेशक महोदय के उनका बहुत सहयोग मिला है, तो मैम आपकी जेनरोसिटी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय निदेशक महोदय और विभागाध्यक्षा महोदया का कि इस प्रकार की ये अलख जग रही है। अब ये समय है, मुझे ऐसा आदेश मिला है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम हैं, और जब ऐसी एक सुखद संयोग है कि मंच पर सभी विभूतियां विराजमान हैं,
तो हम थोड़ा आउट ऑफ टर्न चल करके एक बुक रिलीज के लिए सभी से निवेदन करेंगे कि आप कृपया सम्मानित डिस्टिंग्विश गेस्ट एंड पैनलिस्ट कृपया मंच के सम्मुख यदि आ जाएं तो हम एक बुक रिलीज का एक अवसर आपके कर कमलों से कराने की कृपा करें। डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर पंकज, आप डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे हैं और आप एकेडमिक लीडर हैं। आप ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में एज ए सीईओ हैं। आपका स्वागत है। प्रोफेसर नरेश गुप्ता सर, आपसे निवेदन है कि आप कृपया आएं। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई बिकॉज आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीनियर प्रोफेसर्स हैं। आई गॉट रियली सुप्रीमली ब्लिसफुल टू ऑल्सो बीन योर स्टूडेंट सर। प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना हाथ लगा दें। So these are the words of wisdom by Master Ji, and it has come from his heart, and so these are the message books which has been released today by the Honorable Chief Guest, Guest of Honor, and eminent professors that we have and the academicians that we have. We also request Director Medical NSG to be with us. Kindly join us, sir. Dr. K.S. Kumar, give a big round of applause to Director Medical NSG. Sir, please. Vivek, sir. We request Master Ji to kindly felicitate the chief guest. We request Master Ji to felicitate the chief guest. रेवरेंड मास्टर जी से आपसे निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर को आप अपने कर कमलों से फेलिसिटेट करें।
I now request Colonel Manoj to tell us few words about this memento, the significance of this memento. This memento signifies the mission of Masterji, the 800 crore, the spreading of this happiness which we are discussing in this gathering, to spread it to the 800 crores. And this is a step in beginning, which is a very premier medical institute of our country. So we are lucky and fortunate to be part of this August gathering. So you would have seen this memento. It has been specifically designed by Masterji himself, which signifies that he is giving his hand to the entire 800 crore people so that they are able to understand the essence of happiness. Thank you. बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने सेशन 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सेशन 3 जो पैनल है वो ओवरकमिंग सुसाइडल थॉट थ्रू अचीविंग मेंटल वेलबीइंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी। और इसके लिए एक बहुत सुंदर और जिसको हम बोलते हैं जो पर्सोनिफाई करने वाला पैनल है, जो इसके लिए बहुत मौजू है, वो हमारे मध्य में है। प्रोफेसर सुजाता मैम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री हमारे मध्य में है। डॉक्टर सिद्धार्थ एडिशनल प्रोफेसर, वो साइकेट्री डिपार्टमेंट से हमारे मध्य में है। कनिष्क यादव जी बहुत विद्वान, आप नर्सिंग अफसर हैं, वो मध्य में हैं। को चेयर डॉक्टर राजपाल सर, डॉक्टर पंकज जी गेस्ट ऑफ ऑनर, और केंद्र में श्रद्धेय मास्टर जी। आप में से कितने, चूंकि ये पैनल है, अब सारी औपचारिकताओं के बाद हम इस विषय पर, आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी अच्छे से समझते हैं? तो फिर अंग्रेजी में अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे की सारी बातें हिंदी में होंगी, क्योंकि ज्ञान की बात अगर अपनी भाषा में हो तो वो सीधे हृदय तक पहुंचती है, मस्तिष्क में। और ज्ञान की बात मैं नहीं करने जा रहा, ये प्रबुद्ध पैनल अब आने वाले समय में इस पे हम प्रश्न लेंगे। और टीवी में जैसे आपने देखा होगा, उसको बहुत कैंडिडली करेंगे कि ऊपर वाला सब देख रहा है, उसमें कोई एंकर नहीं रहता। मुझसे कहा गया कि आप इसको करिए मॉडरेट, लेकिन मैं आपसे उस बारे में, मैं अपनी भूमिका इतना ही देखता हूं कि जंगल में एक बकरी और शेर दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ ही खाना खाते थे, सुख दुख में भी साथ रहते थे। तो बंदर और बकरी ने देखा कि एक दिन शेर आ गया, तो बंदर तो अपने स्वभावगत पेड़ पर चढ़ गया, बकरी बेचारी कांपने लगी कि अब मैं क्या करूं, आज तो ये बंदर बड़ा दगाबाज निकला, जब जीवन में पहली बार संकट आया तो ये मेरा साथ छोड़ के क्यों चला गया। लेकिन बंदर ने एक काम किया, कभी ऊपर से एक डाली का कोई पत्ता फेंका, कभी कुछ कांटे फेंके, कभी शेर की पूंछ खींची और भाग गया। इस दौरान बकरी को थोड़ा समय मिला, वो कांटेदार झाड़ी में चली गई। और शेर को लगा कि अब ये कांटेदार झाड़ी में चली गई है, अब इसको तो मैं नहीं खा पाऊंगा। थोड़ी देर बाद निराश होकर के चला गया। लेकिन बकरी को बहुत गुस्सा आया, बंदर ने नीचे आके कहा, बहन बाहर आ जाओ, शेर अब चला गया है। बकरी फिर भी बहुत गुस्से में थी, और बकरी ने कहा, आज तो तुमने बड़ी दगाबाजी दिखाई, जीवन में पहली बार जब संकट आया तो तुम चले गए, भाग गए। बंदर ने जो बात कही, शायद मेरी भी भूमिका वही है। बंदर ने कहा, बहन शेर से तो मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। मेरा भी काम आज केवल उछल कूद का है। कुछ ऐसे नए प्रश्न जो समाज जीवन से आए हैं, उनको इस विद्वत सभा में शास्त्रार्थ के रूप में रख देना है। मैं चाहूंगा आज का, वैसे आज जो ये विषय तो बहुत गंभीर है कि कैसे सुसाइडल थॉट्स, और मैंने कहीं शायद सुना है कि जीवन में स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति, कोई एनेक्डोटल डेटा, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, कि शायद 3 बार आत्मघात करने का विचार आता है। इस प्रकार से आता है। वो कितना सही है वो तो अभी ये मैम बैठे हैं, मैम बताएंगे। और मैं एक परिचय भूल गया, श्री लता वेंकटेश मैम, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज, वो भी हमारे मध्य में है। तो आज सब हम ये जानना चाहेंगे, पंजाबी में तो वैसे कहावत है, मर जावा गुड़ खा के, वहां भी यही कहते हैं कि मर जावा गुड़ खा के, लेकिन जब ये विचार दूसरी तरफ चला जाता है, परवर्टेड हो जाता है,
तब उसके क्या, और ख़ास तौर से तब हम जब स्टूडेंट सुसाइड की बात करते हैं तो उसका क्या इम्प्लीकेशन। मैं चाहूँगा आज का ओपनिंग रिमार्क्स प्रोफेसर सुजाता मैम आपकी तरफ से आए, आपके इसमें क्या व्यूज़ हैं कि इस प्रकार के थॉट आते क्यों हैं, ख़ास तौर से जब हम अगर इसको मेडिकल स्टूडेंट्स या नर्सिंग स्टूडेंट्स या हेल्थ वर्कर्स के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो। आप सबको मेरी नमस्कार एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली मैम, कोचर मैम, फॉर giving me the opportunity to be here with such a dignified personalities. आपके जैसा शुद्ध हिंदी में बात करना हमारे लिए मुश्किल है, बट कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये समस्या के बारे में जितनी हो सके हिंदी में बोले। मुझे ये नहीं पता आप में से कितने एकेडमिक मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं, बट बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन मैं ये चाहूँगी कि मैं ये जो सुसाइड है, आत्महत्या वाली जो समस्या है, उसकी थोड़ी सी एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड एकेडमिक लैंग्वेज में बोलूँ। सो अगर मैं सुसाइड ग्लोबली देखती हूँ, ग्लोबली अगर 7 लाख सुसाइड पर ईयर होता है, तो अगर मैं इंडिया में आ जाऊँ, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है 2022 की डेटा सेट है, दैट सेज कि इंडिया में 1,71,000 डेथ होता है, हुआ है 2022 रिपोर्ट के हिसाब से। सो इसका मतलब ग्लोबली अगर 7 लाख है, हम ही खुद 1,71,000 में टिके हुए हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा बर्डन जो है सुसाइड की इंडिया बियर कर रहा है। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ दैट जो ग्लोबल रेट है, प्रिवेलेंस रेट है, उससे आगे जरूर हम 12.4% में है, बट अगर इसकी थोड़ी सी स्टेट वाइज और ये वाइज देखें तो हमारे कंट्री में ये जो 12.4 प्रिवेलेंस परसेंटेज है सुसाइड की, इसमें 17 स्टेट जो है उसके नीचे है, 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इसके आगे है, और सिक्किम जो पढ़ा लिखा बहुत अच्छा छोटा सा हमारा स्टेट है, ये सबसे लीडिंग रोल में है, 43% से एबव है सुसाइड रेट है। सो उसकी अगर मैं और थोड़ी सी नीचे आऊँ कि क्योंकि कंटेंट हैप्पीनेस है, सो मैं और थोड़ी सी नीचे उसको अनफोल्ड करना चाहूँ तो उसमें है कि ये जो 1,71,072 सुसाइड्स है 2022 के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, इसमें से 1,15,000 करीब है वो मैरिड लोग ही है। इसका मतलब 67% ऑफ पीपल हु complete suicide, they are in a marital relationship, and this itself is a problem and concern for all of us. मैरिज जो कि एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हुआ करता था, परहैप्स इसकी रोल जो है धीरे धीरे सीमित हुए जा रहा है, एंड वो रोल अभी तक मुझे लगता है थोड़े सीमित हो के काफ़ी हद तक वो घट गई है, क्योंकि अगर 67% ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया अमॉन्ग्स देम आई मीन ये सारे मैरिड लोग हैं, तो मैरिज का रीडिफाइन करना और उसकी बाउंड्रीज सेट करना, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी हो गया है सुसाइड बर्डन को कम करने के लिए। दैट इज़ वन। सेकेंड, अगर उसकी दूसरे एस्पेक्ट में देखूं, कारण जो ऑफिशियली मेंशन्ड है इस रिपोर्ट में, इसमें जो है 32% कारण जो जाता है, ये जाता है फैमिली प्रॉब्लम्स में, इसके वजह से सुसाइड होता है। उसमें से मैं 10% ऐड अगर कर दूं जो कि मैरिटल कन्फ्लिक्ट है और लव अफेयर है, ये बढ़ गया 42% हो गया। उसमें जो अदर रीजन्स है उसमें भी कन्फ्लिक्टिंग इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्टिंग अदर 10% में भी है। सो इसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है, जो हेल्थ की कंसेप्ट पहले हम सोच रहे थे 40s में WHO ने दे दिया है, जो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, इसमें से अभी तक भी ये जो लास्ट 3 है अभी तक कहीं एग्जिस्ट शायद नहीं कर रहा है या प्रैक्टिकली आया नहीं। क्योंकि सुसाइड अगर मैं थोड़ी सी बैक जाऊँ, अबामन काल से भी देखूँ, अगर सारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स they have already had an idea about suicide, and suicide की हमेशा एक पाप की जैसा, सिन के जैसा डिफाइंड हो रखा है,
उसके लिए रिमेडी भी ले रखा है, सब कुछ दे रखा है, बट कहीं ना कहीं हम इस बीच घूम गए हैं एंड वहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। एंड उस वजह से हमारी जो नेशनल, आपने एक्सटेंट, मैंने जैसे बोला इतना ज़्यादा एक्सटेंट है, 1,71,000 पीपल सुसाइड किए हैं 2022 में। हमारी जो सुसाइड गाइडलाइंस है वो आप देखिए 2023 में आया है। इसका मतलब हमने अभी तक प्रॉब्लम को रियलाइज़ नहीं किया। जब हम रियलाइज, ग्लोबल सुसाइड रेट धीरे धीरे घट रहा है, बट हमारा सुसाइड रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड एक्सटेंड तो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 1/6 सुसाइड्स हैपन इन इंडिया। सो कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें हम लूज़ कर रहे हैं। फैमिली वैल्यूज़ और रिलेशनशिप की वैल्यूज़ है जो कि प्रोटेक्टिव और नहीं रहा। सेकंड है कहीं ना कहीं जो सोशल कनेक्टेडनेस है, सोशल बिलोंगिंगनेस है, वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है या इरोड कर गया। और वो ये दोनों चीज़ को समझने के लिए और दोनों चीज़ को परहैप्स इंटरनलाइज करने के लिए परहैप्स देयर इज़ ए रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज रिलीजियस टेक्स्ट तो ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं, उनका प्रिवेंट करने के लिए भी मेंशन कर रहे हैं अपनी तरीके से। बट अगर हम उसके रियली सुसाइड को रिडक्शन करना चाहते हैं, ये सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हम लोग, बट हमें समझने की और रीडिफाइन करने की जरूरत डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ओपनिंग रिमार्क्स में जो आपने ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े बताए, हम में से बहुत सारे लोग आज तक यही समझते थे, क्योंकि हमारी जो एक रिजिड माइंड सेट की या फिक्स्ड माइंड सेट की अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि हम सभी लोग सोचते हैं कोटा राजस्थान में या जहां मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, आईआईटी या इंजीनियरिंग या मेडिकल में पढ़ने वाले छात्र इस प्रकार से ज़्यादा, लेकिन आज देखिए पता चल रहा है कि लगभग 67% जो सुसाइड के केसेस हैं वो तो वो लोग हैं जो कि दोज हु आर रनिंग ए वंडरफुल फैमिली। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। और मतलब विच रिमाइंड्स मी ए रीसेंट केस, आई होप एवरीबडी, शायद आपको ध्यान में होगा, एक पति पत्नी के बीच में इस प्रकार से हुआ और उसके बाद वो ऑनलाइन आया, उन्होंने 2 घंटे के आसपास का अपना वीडियो बनाया। आप सभी जानते हैं वो रिसेंट में जो केस हुआ, और मुझे लग रहा है कि वो आई कैन नाउ कोरिलेट कि व्हाट वाज हैपनिंग इन देयर माइंड और सच पीपल्स माइंड। वो पहली लाइन ये लिख रहा है कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मुझे लगता था कि मैं आपके बगैर एक क्षण नहीं जी पाऊंगा। आपसे विवाह के इतने सालों बाद आज मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके साथ एक क्षण नहीं रह पाऊंगा। कमाल की बात है। और ये बात के लिए बहुत धन्यवाद कि, और ये एक सरप्राइज पता चल रहा है कि 2023 में ये गाइडलाइंस हमारे कंट्री में आ रही हैं, तो आई थिंक हम लोग बहुत देर से ही सही। लेकिन मैं डॉक्टर सिद्धार्थ आपसे ये जानना चाहता हूं कि चूंकि आप भी एक अन्वेषण करता है, एक बहुत बड़े शोधार्थी आप रहे हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, और आपके सब टीम के नेतृत्व में अध्यात्म में क्या इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ने इसमें क्या प्रगति की है, तो मैं आपसे एक क्विक रिमार्क्स चाहता हूं। धन्यवाद। सो जैसे मैडम ने भी बताया कि सुसाइड एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है समाज में, प्रॉब्लम है, और आपने भी हाईलाइट किया कि हम देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं जी, और ये जो हो रहा है इसको टैकल करने की आवश्यकता है जी। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आज के ज़माने में मेंटल प्रॉब्लम की हेल्प लेने के लिए जो संकोच है वो धीरे धीरे बहुत कम हुआ है जी। लोग इतना कतराते नहीं हैं जितना आज से 10 साल 15 साल पहले कतराते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हम लोग कभी मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए बोलते थे आप साइकेट्री ओपीडी चले जाइए, तो वो लोग पहले ही बोलते थे आप हमें क्या समझते हो, मैं क्यों जाऊं जी। तो ये अब चीज कम हुई। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज आया है पिछले कुछ सालों में, और इस चेंज के साथ में साइकेट्री डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह भी इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि इंसान जो आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सोच विचार कैसा है, उसका बैकग्राउंड, रहन सहन, उसके सामाजिक परिस्थिति कैसी है, और उस सामाजिक परिस्थिति में उसका स्पिरिचुअल थिंकिंग क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है। तो पहले अगर हम सिर्फ ये मान के चलते थे कि इस तरह से ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट का तरीका ये दवाई है, अब लोग ये भी मान के चलते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ और अगर किसी चीज़ से सहारा मिल रहा हो, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, तो उसको हम सजेस्ट करने से, उसके बारे में कम से कम बात करने से संकोच नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एंड बिलीव, वो मेडिसिन के साथ में जहां भी चाहे वहां पे उसका सहारा ले सकते हैं जी। और ये सहारा प्रमोट करने का फायदा ये होता है कि संलग्न करके स्पिरिचुअलिटी कभी ना कभी किसी ना किसी कई लोगों में आगे
हताशा से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाती है। अच्छा, तो हमें कई बार ये पता नहीं लगता कि किस में रास्ता दिखाएगी। ठीक बात है। बट अगर किसी में भी ये रास्ता दिखा रही है जी, तो उस रास्ते का उपयोग संलग्न तरह से अगर किया जाए तो ट्रीटमेंट हमारा भी, जो साइकेट्री ओपीडी है, जो हमारा ओपीडी है दूसरी जगह, वहाँ पे लोगों की सेवा करने में, लोगों का सहारा बनने में हमें भी मदद कर। बहुत बहुत, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं दोबारा एक क्विक रिमार्क्स के लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के साथ में आपके पास दोबारा आऊंगा डॉक्टर सिद्धार्थ। लता मैम, आपने हाँ प्लीज प्लीज आप उसको बिल्कुल इंग्लिश में कहिए, मैं उसको कन्वर्ट करने के लिए हूं, मेरा वही रोल है उछल कूद का। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो आप उसमें कहें, और पब्लिक मुझे पता है कि इतनी बुद्धिमान है कि वो आपके भावों को समझ लेगी। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, अच्छी बात अगर गलत तरीके से कही जाए तो शायद बुद्धिमान से बुद्धिमान जनता भी उसे नहीं सुनती, और यदि आपने किसी भी भाषा में बहुत अच्छा कंटेंट बोला है तो लोग उसे ट्रांसलेट करके भी समझ लेंगे और सुन लेंगे। तो मुझे लगता है आप कहिए, लोग आपके भाव समझेंगे। मेरा आपसे एक व्हाट माय सबमिशन टू यू इज दैट वी हैव रिसेंटली फेस्ड एंड सीन that lot of nursing students are also struggling in day-to-day life. At least to the best of my memory, that I have seen that barely 6 months ago, a girl, which is, in recent and fresh in our memories, has committed suicide. We have seen her parents, they have come all the way from the Bihar and crying and all. And she was a first-year student. Before such events like that, what do you think that even the nursing profession, what can be the root cause of that? Their profile, their background, they are immediately jumping from their regional provisional language to the English medium or competitive environment, or the livelihood, or the struggle to accommodate and acclimatize. What's your quick remark? I just wanted to have. Actually we regret that we lost a student last year. Gee. And she was unable to accept the failure. She was continuously failing in some subjects, and she was unable to accept the failure. And she was not willing to share her failure with the parents, because she didn't want to disappoint the parents, because parents are from a very remote background and they have lot of expectations on her. So she didn't want to disappoint the. So we were also not able to recognize any signs in advance, though we have wellness program, lot of mentor-mentee program are there. Nobody was able to recognize the signs that she is planning to end her life. So it was very unfortunate. I think we need to have counseling for the students, especially the spiritual aspect is not at all been dealt with in AIMS, I would say. Though even WHO definition says health is physical, mental, social and spiritual well-being. But then how much we concentrate on the spiritual well-being and help the children to accept the failure and to face the world. There are enough number of ways, even if they fail and are not able to make. We are not able to, we did not help them spiritually. After attending this event, I thought, we are not assessing their spiritual intelligence. We assess the academic intelligence as an entry level to the course. But at least after joining, if we assess a kind of a spiritual intelligence, and where there is spiritual dryness, where we need to nurture them spiritually, I think we will be able to help them in a broad way. Thank you for your submission, ma'am. पहली बात जो ये है, वो मैम ने ये बताई कि पहली बात तो बच्चे इतना डरे हैं कि अपने माँ बाप को हम कैसे बताएं कि हम जो सपना लेके, जो ब्रीफ केस लेके, जो झोला उठा करके चले थे गांव से कि हम कुछ करके दिखाएंगे, और आज जब पहली बार जिंदगी में फेल्योर हुआ, पहला झटका लगा, तो माँ बाप को क्या कहा जाए, उनसे मैं क्या कहूं, उनके तो सपने टूट जाएंगे, मेरा तो टूटा ही है, उनके भी सपने टूटेंगे। इस पूरे डायनेमिक्स में मेरा इसमें एक छोटा सा सप्लीमेंट है। मैं डॉक्टर कोचर मैम आपसे ये जानना चाहता हूं, अब इससे जो बात निकल के आई है, पता नहीं मेरा प्रश्न कितना सही है कि गलत है, चूंकि हम लोग एक परिवार के लोग बैठे हैं तो मुझे लगता है शायद मैं कह सकता हूं, क्या हम पेरेंट्स को भी कुछ हद तक जो इतना
कांस्टेंट हैमरिंग है अपने बच्चों के ऊपर कि नहीं तुमको कुछ ना कुछ बन के ही लौटना है, और मुझे लगता है क्या उनके सपने, बच्चों के सपने पर इतने ज्यादा हावी हैं कि उसमें फेल्योर की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब इसका मतलब यह हुआ, माँ बाप कह रहे हैं कि तुम्हें गणेश बनना है, बच्चा कह रहा है नहीं मुझे गा से गोविंदा बनना है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा he or she can be turned up into a musician, a good painter, a photography? Why you are always thinking कि जिंदगी में हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, प्रवक्ता, अधिवक्ता ऐसी चीजों में जाना है? मैं कोचर मैम आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की किस हद तक जिम्मेदारी है कि वो अपने सपने अपने बच्चों पे ऐसे थोपते हैं? विवेक जी, मैं यहाँ आ रही प्लीज। सो जैसे मैंने कहा कि टीचर भी पेरेंट है, पेरेंट भी टीचर है। In continuity with what the previous panelists have said, I would like to say 3 things. जब हमारा इंटरव्यू होता है अप्रेजल के लिए, तो जब मैं छोटी थी, फ्रॉम मे बी एसोसिएट टू एडिशनल, उन्होंने पूछा आपने क्या खास किया है एम्स के लिए? आई सेड मैंने 28 बच्चों को सुइसाइड करने से बचाया है। And believe me, the senior people in the board, मैं mentorship करती हूँ। अरे वो तो हम सारा ही करते हैं, आप ये बताइए publication wise आपने खास क्या किया है? So that is one. That is what Madam has said. If this is built in our appraisal systems, that how you have contributed to the happiness quotient, Master Sir, happiness quotient को कैसे contribute किया है, right? The second thing, destigmatization जो सिद्धार्थ जी ने भी कहा, तो it is really important। और तीसरा, laughter is a big leveler। जब हम साइकेट्री, मैंने भी कुछ कोर्सेज किए हैं, चाहे मैं कहने को फिजियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैंने 10-12 तरह से ट्रेनिंग की है साइकेट्री में। पर्सनल रीज़न से की थी, फ़ायदा भी बहुत हुआ है, लेकिन जब अपना फ़ायदा होता है तो हम चाहते हैं हम दुनिया को दें। सो द सेकेंड थिंग इज़ कि हम हंसाते हैं। बेटा आलिया भट्ट कितनी जमात पढ़ी है बताओ, MCQ जवाब दो, ठीक है? सलमान खान कितनी जमात पढ़ा, आमिर खान कितनी जमात पढ़े हैं? सो वी टेल देम बिकॉज द चिल्ड्रन एट एम्स, सर, at least in the medical community I know, and to some extent we also teach nurses, first day of orientation we tell them, any problem, you have to come to us. Each one of us is differently blessed with competencies. हम में से हर बंदा काउंसलिंग शायद नहीं कर पाएगा, कुछ और बहुत अच्छा कर पाएगा. So many things we do voluntarily which हमारा SOP में नहीं लिखा होता, हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं KPIs उसमें नहीं लिखा होता. So बहुत बार ये काम voluntarily चलता है. AIMS has a wellness center, AIMS has and we always tell them. और हम लोग क्योंकि फिजियोलॉजी में हैं, हमारे को नाइट ड्यूटीज़ नहीं करना पड़ती, वार्ड ड्यूटीज़ नहीं करना पड़ती, तो हम लोग इस तरह से कंट्रीब्यूट बैक करते हैं. But madam's point is well taken. And the third thing I would like to say is, we have to train our students to be, जिस तरह से सर SSB में हमने एक वेलनेस प्रोजेक्ट किया था, वहाँ बड़ी सिस्टम होता है. And Sujata ma'am, you remember we went to Srinagar and we addressed those people. Siddharth sir was also part of that group. We went to frontier posts of SSB. For 25,000 soldiers of SSB we have taken data, क्योंकि वहाँ फ्रैगिंग चलता है. फ्रैगिंग मतलब टेंशन में वो अपने सीनियर को या अपने उसको. So teaching students psychological first aid, teaching students the first sign of distress. So our psychiatry department is doing good initiatives, wellness center, but हम लोग चाहते हैं सर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस की जगह हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराएं, प्राइमोडियल इंटरवेंशन कराएं, कि अगर कोई अटेंडेंस में कम हो रही है तो हम तो सर जाके ठक 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 करते हैं हॉस्टल में भी. एंड the students here are very good, they are very friendly. Siddharth, you will agree with me, there were 1 or 2 cases when बच्चों ने मुझे आके कहा, मैम इसको हॉस्टल से निकाल रहे हैं. डॉक्टर राजकुमार यादव सुबह थे, वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं, सो उनके पास भी इनपुट्स हैं. सो मैडम इनको घर मत भेजिएगा,
प्लीज़ किसी तरह से। मैंने कहा मेरे घर आके रह ले थोड़े दिन। क्यों? क्योंकि माँ बाप समझ नहीं पाएंगे, हम संभाल लेंगे, वहाँ गया तो जिंदा वापस शायद ना आए। दिस इज़ द लेवल ऑफ the bonhomie, and therefore whenever somebody is in administrative post, maybe that person may not be the right one, but Lata ma'am, try to choose, and I know you have been doing it, you have been doing faculty sensitization workshops, you have invited us also many times, so develop a community of teachers also and develop a community of seniors also, कि अगर किसी junior को किसी senior ने आग से बचाया है क्योंकि वो डरा हुआ था, तो उसका काम है कि आगे वो 10 और को इस तरह से बचाए, और इस तरह से ये लड़ी चलती रहेगी। सो दैट इज। ये बहुत बहुत धन्यवाद कोचर मैम आपके सबमिशन के लिए। मैं कनिष्क जी आपके पास आता हूँ, चूँकि आप नवयुवक हैं, यू आर ऑल्सो वंडरफुल फैमिली टू लुक आफ्टर। आई वॉचिंग योर सन दैट हिज स्पिरिचुअल क्वोशेंट इज वेरी वेरी हाई. You have been a wonderful father. But before that, ये जो मेरा पहला आपसे पैनलिस्ट से प्रश्न था कि क्या माँ बाप की कितनी जिम्मेदारी है कि वो हम सपनों का कितना बड़ा बोझ उनके ऊपर डालते हैं, मेरे पहले प्रश्न में आप सभी, चूंकि आप सभी परिवार के सदस्य हैं, एक बार हाथ उठाइएगा ईमानदारी से। हम में से दूसरे वाले प्रश्न पे ये इट्स अप टू यू, इट इज वॉलंटरीली, कि आप हाथ चाहे तो उठाएं चाहे तो ना उठाएं, क्योंकि उसका उत्तर जरा टफ है। पहला, आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं स्कूलों में उनके बच्चों को अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर मिले? हाथ उठाइए। ऑलमोस्ट 100%। अब आपके ऊपर है, चाहे तो हाथ उठाएं चाहे ना उठाएं। आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा बच्चा एक अच्छा शिक्षक बने? समय मिले तो सोचिएगा जरूर, डोंट बी इन हेस्ट। मैं कनिष्क जी आपसे ये चाहता हूं, चूंकि आप तो नर्सिंग अफसर हैं, बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स में लगभग 5000 के आसपास मैंने देखता हूं कि आपके सब फ्रेंड लिस्ट में भी मिलते जुलते रहते हैं, और यू हैव बीन वेरी सोशल। उनके बीच में जब एकांतिक वार्तालाप होती है, आप उनसे मिलने भी जाते हैं, क्या चल रहा होता है उनके यंग लोगों के दिमाग में? कोई रिमोट एरिया से लोग आए हैं, एम्स आए हैं, पहली बार इतना बड़ा टैबू टूटा है, गांव में बड़ी खुशी है कि बच्चा एम्स में गया है, लेकिन यहां जब आया है तो फ्रेंड्स अलग हैं, माहौल ऐसा है, इतना क्लस्ट्रोफोबिक है, इतने हाई आर्मामेंटेरियम्स को कभी देखा नहीं, इतनी फ्लुएंट बातचीत, क्या चलता है उनके दिमाग में? देखिए, मैं कुछ दिन पहले, सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलूँगा ऑर्गेनाइजिंग टीम को और मैडम कोचर को, मास्टर जी को भी, जिन्होंने मौका दिया। मैं अभी थोड़े दिन पहले कुमार विश्वास जी को सुन रहा था, आई थिंक कुछ कल्चर से रिलेटेड कुछ सेशन चल रहा था, तो उन्होंने पूछा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सफलता क्या है, सफल कौन है जीवन में? क्या मैं एम्स में नौकरी कर रहा हूं तो क्या ये मेरी सफलता का पैमाना है? क्या मैं IITian हूं, क्या ये मेरी सफलता का पैमाना है? तो उन्होंने बोला कि ये सफलता का पैमाना नहीं हो सकता, ये आपके जीवन यापन का पैमाना हो सकता है कि आप एम्स में नौकरी कर रहे हैं या कहीं पे भी आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आप अपनी सुख सुविधाएं भोग पा रहे हैं। आप सफल कैसे हैं, इसका कैसे पता लगेगा कि आपके ना होने से कितने लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं आप कितने सफल रहे अपनी जिंदगी में। दूसरी चीज, जैसे कि मैडम ने मेरे परिचय में बताया कि मैं सोशल सेक्रेटरी हूं, जबकि ये ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। मैडम ने जस्ट जो हम काम करते रहते हैं पिछले 7 सालों से, अगर आपको कह दिया है सोशल सेक्रेटरी, इसका मतलब आप आगे बनने वाले हैं। बड़े लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसको आशीर्वाद स्वरूप ले लेना चाहिए, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा तो सिंपली फंडा, जो लगा हत्थे उसको लगाओ मत्थे। जीवन में कुछ भी मिले सब बड़े लोग दें। बड़े लोग किसी के बारे में कुछ ऐसे नहीं बोलते, बहुत दूरदर्शी मैम है, आपके लिए कह दिया, काश हमारे लिए भी कुछ कह दे। बेस्ट इवेंट मैनेजर हैं आप, क्या लेंगे बताइए जी, आप कुछ कह रहे थे। गीता में एक श्लोक है, यद्यता चरति श्रेष्ठस्त तत्त्वद्वित्र जरस्य यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनु वर्तते। तो उसका मतलब ये है कि समाज में जो प्रतिभाशाली,
जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जो आपको लगता है कि इसमें कुछ है बात, वो जो व्यक्ति जो आचरण करते हैं तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं। ठीक कह रहे हैं, वो कहावत है महाजनों ये नगतो सपंथा। महाजन, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग जिस राह पर चलते हैं दुनिया उनको फॉलो करती है। जी मेरा कंसर्न हमेशा यही रहता है कि मैं जो करूंगा तो वो, चूंकि मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता हूं जिसमें आई थिंक 10,000 तक मेंबर होंगे, और मैं उसको टोटल उसका एडमिन हूं मैं, और अपने लेवल पे सारी क्वेरीज लेता हूं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं, पीछे बलवीर सिंह जी भी खड़े हैं, बीएसएफ के लाइजनिंग ऑफिसर, मतलब और भी काफी लोग हैं जो मैं देख रहा हूं, मेरे पास जो भी कॉल आती है मैं उससे यही बात पूछूं, हाँ जी बताओ मेरे को क्या करना है। मैं नहीं पूछता हूँ कि हाँ जी बताओ क्या हाल चाल है, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले ने जब मुझे कॉल किया है तो किसी काम के लिए किया होगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ मैडम कोचर का और डॉक्टर विवेक का स्पेशली, जो जिन्होंने पिछले 3 साल से मेरे साथ बातचीत की और मेरे को इस चीज़ में लेके आए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया मुझे। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर विवेक का जो क्वेश्चन था कि मैं कैसे डील करता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ है, एक तो मैं वो श्लोक याद कर लेता हूँ गीता का जी, कि मैं जैसा करूँगा तो जो मुझे सामने वाला है वो देख रहा है, वो कैसा मुझे भी फॉलो कर रहा है, तो एटलीस्ट मुझे तो अच्छा फॉलो करना चाहिए। ये प्रेशर नहीं है, ये मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये मुझे मैच्योर बनाता है कहीं ना कहीं। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप डायलॉग्स कीजिए। आप जब तक बात नहीं करेंगे तो सामने वाला, आप उसके एक्सप्रेशन रीड कर सकते हो लेकिन आप उसका मन नहीं पढ़ सकते। क्या आप पढ़ सकते हैं मन नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चल रहा है हमें कैसे पता लगेगा? मैं इसमें एक मिनट आपको रोकूंगा, आप अपनी बात खत्म कीजिएगा, लेकिन अगला क्वेश्चन मुझे जो दिमाग में आता है, बिकॉज आई मे स्किप दैट, मैं सुजाता मैम आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा इसके बाद कि लोग कहते हैं जी सुसाइड इसलिए किया, बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे थे, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, कुछ सुनने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो एजाइल और इंटेलिजेंट हैं, हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसकी व्यथा काम क्या मालूम। तो सवाल, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये लूंगा आफ्टर कनिष्क जी विल डन दैट, कि जब बोलने का मन ही नहीं कर रहा, जब बात करने का मन ही नहीं कर रहा, दुनिया में हर तरफ पतझड़ ही पतझड़ नजर आ रहा है, तब हम कैसे जानेंगे, हमें कौन अंतर्यामी ऐसे होंगे कि भैया ये बंदा ये बंदी ऐसी है, यहां प्रॉब्लम हो सकती है। कनिष्क जी आप खत्म करें, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए। जी शायद तो मैं अपना एक अनुभव बताऊंगा, और ऐसे बहुत सारे अनुभव है, और भगवान ने शायद हमें काबिल बनाया कि ऐसे अच्छे अनुभव हमें मिल रहे हैं और हम परिवर्तन ला रहे हैं जिंदगी में भी। कि मेरे पास एक फीमेल पेशेंट थी, आज से लगभग 1.5-2 साल का समय हो गया, और काफ़ी उदास। तो मैंने पूछा, भाई आप माता जी आप क्यों इतने उदास हो, आप कारण बताओ मुझे, ये जो चल रहा है कोई बात नहीं, अच्छा ये बुरा समय है, अब आगे अच्छा भी आएगा, अब बात बताइए आप चिंतित क्यों हैं। तो उन्होंने बोला मेरे रिसेंटली हस्बैंड बीमार हुए और मेरी भी सडनली पता लगी किडनी काम नहीं कर रही और मैं डायलिसिस पे हूँ, और डायलिसिस का खर्च इतना है कि मैं अपना जितना भी मेरे पास ज्वेलरी थी वो मैंने सारा बेच दिया, और अभी भी आगे पता नहीं कैसे होगा। 4 मेरे लड़कियां हैं और 1 मेरा बेटा है, आई थिंक 2 बेटे हैं, और एक की मेरी पढ़ाई छुड़ानी पड़ी घर चलाने के लिए, और एक जो है वो अभी 10th और 11th में है उस समय। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मैंने अपना जो, हालांकि एथिकली मेरे को अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए, बट कुछ चूंकि मुझे उस केस में कुछ अलग सा लगा, तो मैंने सोचा कि ठीक है जब आप ठीक हो जाओगे तो आप मुझे बताना, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक बच्चे की पढ़ाई को तो मैं अफोर्ड कर लेता हूँ, और जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी जो जितना मेरा बजट अलाउ करता है, तो मैं इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि एक बच्चे की पढ़ाई मैं देख लूँगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो ठीक है, अपने आप अपना परिवार जो संभाल लेगा। बट मुझे 10-15 दिन के बाद उसके एक बड़े बेटे का कॉल आता है कि जी मेरी मदर नहीं रही, और मैं जहाँ काम करता था रेगुलर मदर के इश्यूज के चलते मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अब यहाँ पे आता है बात कि हाउ टू स्टॉप दैट सुसाइडल वाली थॉट्स प्रोसेस है जो थॉट प्रोसेस। अब मुझे लगा कि चूंकि मैं उसके परिवार के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, मैं मिला कभी नहीं था, जस्ट सुना था उसके, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो ये बच्चा जो है गलत डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इसके पीछे इसकी 4 बहनें हैं और एक भाई है जो पढ़ाई कर रहा है, तो दैट मीन्स 5 लाइफ जो है सफर होने वाली है। तो मैंने इमीडिएटली उसको बोला कि आप मुझे 5 मिनट दो। मैंने 5 मिनट में अपने जो मेरे बड़े भाई हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ,
तो मेरे जो लिंक्स थे, मैंने नंबर डायल किया और बोला कि आपके पास एक बच्चा आएगा, आपको उसको इंटरव्यू लेके, और आपको जस्ट फॉर्मेलिटी लेनी है इंटरव्यू, आपको उसको जॉब में रखना ही रखना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 1.5 साल का समय है और आज उसकी 2 बहनों की हमने शादी भी करवाई है, और बच्चा जो है वो अपने भाई को पढ़ा भी पा रहा है और बहुत अच्छा अपनी लाइफ में भी कर पा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा कि जो इंसान का जो जीवन मिला है, हमें चूंकि बताया जाता है इंसान की पढ़ाई से पहले इंसानियत की पढ़ाई करना जरूरी है, और इंसान का जो जीवन हुआ वो सुख भोगने के लिए नहीं हुआ, वो एक अलग विषय है। हमारा जो जीवन है, पेड़ का जो जीवन है, नदियों का जो जीवन है, वो परोपकार के लिए हुआ। अगर जिस दिन हम ये बात रियलाइज कर लेंगे, आई थिंक हम अपनी लाइफ में बहुत धन्यवाद कनिष्क जी, आपने ठीक कहा, आपने बहुत सारी बातों में बहुत चीजें कही। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर टाइमली इंटरवेंशन, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, भले आप एक गिलहरी प्रयास आपने किया हो, लेकिन यू कैन फिगर इट आउट कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ एक काम ऐसा किया जिससे न केवल उस व्यक्ति की बल्कि उसके पूरे परिवार की लाइफ को आपने बचाया। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हम लोग अक्सर कहते तो रहते हैं बचपन से कि हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन बिना 2 चीज़ों के जाने, पहला कामयाबी क्या है ये पता नहीं या बताया नहीं गया, दूसरा वो एक दिन कब आएगा। डॉक्टर सुजाता मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब बात करने का मन नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा हम डीप उसमें चले जाते हैं, या जो भी जाता होगा जिसके अंदर ऐसा थॉट्स आता होगा, तो फिर कैसे, अगर उसने आइसोलेशन में ही कर रखा है, कौन सी टीचिंग्स तब काम आएंगी? उससे पहले जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑगस्ट गैदरिंग, 75% ऑफ केसेस में, मैं डेटा थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, जानबूझकर बोल रही हूँ टू कन्वे द एक्सटेंट ऑफ द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, उसमें 75% ऑफ केसेस में वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं सुसाइड से पहले जो करते हैं। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं थोड़ी सी इमोशनल रीजनिंग के हिसाब से बोलूँ तो 3 प्रकार थॉट्स लेवल में, 3 प्रकार इमोशनल लेवल में हम लोग बोलते हैं। या तो गुस्से से बोलते हैं जी, या तो दुख से बोलते हैं, या तो फिर मजाक में बोलते हैं। तो गुस्सा, दुख या मजाक, या 3 टर्म में बोलते हैं। चाहे वो इंडिकेशन पैसिव हो या मरने के जस्ट एक विश हो कि काश में मर जाता, इससे बेहतर होता, मान लो ये छोटी सी भी टर्म हो, या इससे तो अच्छा मर जाना, ये हम लोग ज्यादा सुनते हैं। जी जी जी। सो ये जो टर्मिनोलॉजी है, 3 प्रकार की इमोशन के साथ बोलते हैं लोग, एंड यही वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लीटेड सुसाइड्स लोग हैं, कभी ना कभी इन देयर सुसाइड से 15 दिन या 1 महीने पहले ये शुरू करते हैं बोलना, कहीं ना कहीं एक सिग्नल छोड़ते हैं। बट इसी वजह से फैमिली मेम्बर्स में जो सबसे क्लोज होते हैं उन लोग का गिल्ट फीलिंग बहुत होता है। गिल्ट फीलिंग इसलिए होता कि ये मुझे पता था, उसने बताया था, बट मैं सीरियसली कि काश हम इसको सीरियसली, मैं समझ नहीं पाया जी। तो वो गिल्ट फीलिंग बहुत होती है ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स या फिर जो क्लोज एसोसिएटेड लोग हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कनिष्क ने बोला, तो एक छोटी सी, अगर चाहे वो पैसिव हो, चाहे वो मजाक हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो दुख हो, अगर एक छोटी सी भी इंडिकेशन आपको लगता है, या फिर ये तीनों के बावजूद भी अगर कुछ अलग है, आपको सेंस लगता है कि ये कुछ ना कुछ गलत ना कर ले, तो अगर ये सेंस होता है एंड आप कोई ना कोई प्रिवेंटिव या कोई विजिलेंस एक्टिविटी करते हो या कोई प्रिवेंटिव मेजर करते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आप करते हो, वो सबसे बड़ा चीज़ है। सो जो एजुकेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर कि ऐसे कोई भी एक सेंटेंस अगर आता है कभी भी किसी से, तो उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि सीरियसली लेने से कोई हार्म नहीं है। कम से कम कहीं ना कहीं हम प्रिवेंशन की एक स्टेप आगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग जो बोलते हैं वो कर लेते हैं, बट हमें सीरियस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैम ने बोला, आप उसके कंटिन्यूएशन में अपनी बात कि कैसे हमने, मान लीजिए जैसे कोई आके चैम्बर में 10 दिन पहले कह के गया कि साहब इससे अच्छा तो मैं ऐसा कर लेता। अब सवाल ये है कि उसकी हम रेकी कैसे करें, कैसे उनको सॉफ्टली अप्रोच करें ताकि उनकी ईगो पे भी बात ना है। सवाल तो ये है कि हम लोग चले तो जाएं कि देखो भैया उस दिन आपने ऐसा बोल दिया था, लेकिन कोई गलत स्टेप मत ले लेना। तो उन्होंने कहा कि अब मान लीजिए उन्होंने कभी मजाक में भी बोला हो, तो सॉफ्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप इसको नॉन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, एज ए पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन। जी जी, इससे पहले मैं जरा पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए डिप्रेशन का अवलोकन करना चाहूँगा। जो डिप्रेशन एक बीमारी है और जो कुछ समय के लिए रहती है इंसान में,
कई बार हफ्तों तक, महीनों तक रहती है, पर जिसका ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है कि किसी चीज़ में आनंद नहीं आ रहा, जो नेगेटिव थॉट हैं वो उसी में घुसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जी। जिसमें ऐसा लग सकता है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ों से सुसाइडल थॉट्स चले जाएं पर आप उसमें एंगेज नहीं हो पा रहे हैं। जी। और जब डिप्रेशन होता है तो साथ में लोगों की भूख कम हो जाती है, बिल्कुल और ठीक बात। नींद कम हो जाती है। नींद कम होती तो अगर ये सारे लक्षण एक साथ दिख रहे हैं तब डिप्रेशन के बारे में सोचना चाहिए और उसका एक अच्छा इलाज अवेलेबल है। उस सिचुएशन में पहली चीज़ जो करी जाती है वो है सेफ्टी इंश्योर करना। जी। अगर किसी के मन में डिप्रेशन के विचार इतने चले जा रहे हैं जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हो सकता है उस समय रिस्क ज़्यादा है सुसाइड करने का। तो उस समय पहली चीज़ जो करी जानी चाहिए वो है कि उसको अकेला ना छोड़ा जाए, अकेला इंसान ना को छोड़ा अकेला जाए। ना छोड़ा जाए और किसी ना किसी सहारे तक ले लिया जाए, फॉर्मल ट्रीटमेंट तक ठीक बात उस है। समय ले लिया जाए। तो धन्यवाद ये सवाल लाने के लिए और ये मौका देने के लिए, ये बताने के नहीं, और एक आपसे और इसमें मैं जब आपसे बात हो रही है तो मैं ये भी चाहूंगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में क्या कुछ रेजर शार्प फर्क है, ये कैसे हम डिस्टिंग्विश करें? जी, डिप्रेशन का मतलब हुआ उदासी। उदासी। उदासी, मन बुरा, मन में आगे के लिए आशाएं कम। ठीक। आशा की कमी। एंजाइटी है चिंता। एंजाइटी का मतलब सिर्फ चिंता। चिंता जी। चिंता हर किसी को होती है, ऐसा शायद कोई ना हो जिसको चिंता नहीं बिल्कुल होती। ठीक बात। जब ये चिंता इतनी बढ़ जाए कि आपको अपनी जिंदगी जीने से रोकने लग जाए, सो मीन दैट मतलब डिप्रेशन इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉन्ग एंजाइटी। डिप्रेशन हाँ ये नॉर्मल इमोशन है, बट जब नॉर्मल इमोशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और इंसान को अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करने से रोकने लगे, तब हम कहते हैं कि बीमारी हो गई। अच्छा, मैंने कहीं डॉक्टर साहब सुना है कि थोड़ी चिंता करना भी जरूरी है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात बताई आपने। थोड़ी चिंता, थोड़ा स्ट्रेस हर किसी के लिए फायदेमंद है। अगर मैं चिंता करूं कि भाई नंबर अच्छे कैसे आए, तभी मैं पढ़ाई करूंगा और तभी नंबर आएंगे जो मैं चाहता तो हूं। उतनी बेफिक्री भी नहीं होनी चाहिए कि हम अगर सीरियस नहीं होंगे, चिंता नहीं करेंगे। जी, जैसे ब्रेकअप हो जाए तो थोड़ा दुख होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस इंसान को। सही बात है। तो नॉर्मली इमोशंस होने चाहिए, नहीं तो हम रोबोट बन जाएंगे। पर इमोशन अगर हमारे काबू से ही बाहर हो गए, जो हमारे लिए परेशानियां उत्पत्ति कर रहे हैं, तब वो समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल समाधान। क्योंकि कई बार इन समस्याओं का स्पिरिचुअल एंगल से बहुत अच्छा समाधान निकलता है। फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी की बात करूं कि अगर एंग्जाइटी में इंसान खो गया है कि नंबर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो थोड़ी देर अगर वो जब भी करे, अगर आध्यात्म में घुसे, तो उसको एक ब्रेक मिलेगा। उसको ब्रेक मिलेगा तो फिर वो अपनी जिंदगी को अपने बिल्कुल ठीक बात है, बहुत धन्यवाद। मैं अब हम एक्चुअली ऐसा करेंगे कि टाइम के लिए बाकी पैनलिस्ट से भी क्विक कमेंट्स लेंगे। उसके साथ में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पंकज जी, मैं आपसे इस पे एक व्यू चाहता हूं इन जनरल, कि जैसे ये रिलेशनशिप्स को लेकर के, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ा ब्रेकअप होने के बाद थोड़ा तो शो करना है। शो क्या करना है, जो है उसको बताना है। अब आजकल तो ये सब इतना ज्यादा हो गया, इतना रैम्पट है कि लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। चीजें इतनी कि इतना मतलब हर चीज इतनी इंस्टेंट है। फूड इंस्टेंट है, कपड़ा इंस्टेंट है, शादी भी इंस्टेंट है, मैंने सुना, तो फिर डिवोर्स भी इंस्टेंट है। मैंने सुना अमेरिका में एक आदमी ने 28 शादियां की, लेकिन जो 28वीं शादी उसने की तब उसे पता चला है कि एक बार इससे पहले भी शादी हो चुकी है। शादी की आपाधापी में ये भूल ही गए कि साहब पार्टनर जो है वो रिपीट हो रहा है। एनीवे, तो मैं डॉक्टर पंकज जी, ये मेरा प्रयास केवल इतना है कि इसको बहुत सीरियसली मत लीजिए। सारे डिस्कशन का ज्ञान अपने दिमाग में रखिए, केवल बगुले और हंस की तरह जो आपके काम का उसको लीजिए। ये मत सोचिए कि सारा ज्ञान आपके लिए है। आप यहां पे बैठे हुए एम्बेसडर्स हैं जिनको ये अलग समाज में लेकर के जानी है। तो डॉक्टर पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाज में क्या चल रहा है इन सब बातों को लेकर के। आपका एक क्विक कमेंट और उसके बाद फिर मैं सबके प्रश्नों का एक पिरो करके सबसे एक रैपिड फायर, ताकि सबके उसके बाद फिर हम आगे भी बढ़ना है हमको। जी, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? Yes, you are well audible, sir. First of all, heartiest gratitude to Master Ji for inviting
श्रुति जी, सुनीता जी, कोचर मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू यू। देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि जो हमारा ये विषय है सुसाइड वाला, उसके ऊपर मास्टर जी की अभी पॉडकास्ट आई थी कि अतुल सुभाष तुम कहाँ चले गए। तो एक तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूँगा कि हर व्यक्ति जो है उस पॉडकास्ट को जरूर देखे, चाहे वो पोटेंशियल सुसाइड उसके मन में विचार चल रहा हो ना चल रहा हो, और ऐसा भी अगर आप मास्टर जी की वाणी सुनेंगे तो भी इट इज़ अ प्रोटेक्शन फॉर यू। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि सामने एकदम अंधकार छा गया जी, लेकिन फिर आप देखते हो नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जैसे हमारे पास अभी एक स्पीकर मैम थी हु वाज नॉट हैविंग द आईज, बट शी हैज़ ब्यूटी आईज ऑफ द हार्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स शी हैड। तो हम लोग वही बैठे थे, सर से मैं यही बात कर रहा था कि जो हमारे पास दिया हुआ है, कई बार उसकी कीमत तभी पता चलती है जब हम और देखते हैं कि अरे भाई, और लोगों के पास जैसे आंखें नहीं हैं या किसी को और क्षमता नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना और एहसास होना कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसके प्रति हम ग्रेटफुलनेस के भाव से भर जाएं और रहें। तो अभी जो समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि आपने शादी वाली बात कही, मैं हालांकि इस विषय में बहुत खास कोई एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ। ये था कि हाँ, नहीं, फिर भी मैं थोड़ी सी 2-4 बात तो बताऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारे यूथ से जुड़ा हूँ और क्योंकि आप वाइस चांसलर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आपने हेड किया है जी, तो सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिपोर्ट करता ही रहा होगा, तो उसलिए आपसे आपके ध्यान में आता था? नहीं सर, बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए, हर तरह अगर आप सोचो, जैसे कई बार एक स्ट्रेस का सुसाइड में जाने का कारण ये भी होता है कि मान लो कोई बड़ा खड़ूस सा बॉस मिल गया, और खड़ूस बॉस कैसे मिलता है, जो व्यक्ति खुद अंदर से खाली, तो अहंकारी हो जाता है, उसको खुद अपना है नहीं तो कहता ये ही रिपोर्ट टू मी और शी रिपोर्ट टू मी, मैं उसका जीना हराम कर सकता हूँ। तो ऐसे जो इस तरह के खतरनाक बॉस मिल जाए, उनको डील करने के अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन पहले हम अपनी जो आंतरिक, हमारे जो अंदर का जो प्रेम है, जो हमारे अंदर डिविनिटी बैठी, जो आई थिंक मास्टर जी भी समझाएंगे आपको, उसके प्रति अगर हम सजग हैं तो हमारा कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। एक बात तो ये हो गई जी। उसके अलावा हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो भी हमें मिल रहा है, मान लो जो भी हम आनंद की हमने डेफिनेशन रखी है, हमने सक्सेस की डेफिनेशन रखी है, उसमें ये समझना आवश्यक है कि जैसे हम देखते हैं कि मून की लाइट आ रही है, लवर बैठे हैं बढ़िया मून लाइट में, लेकिन क्या वो लाइट मून की है? वो लाइट क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ किसकी है? सन की लाइट है। इन द सेम वे जो भी हम आनंद समझ रहे हैं, वो सारे आनंद जो है आत्मा के आनंद हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सेल्फ। ये जब हम समझ जाएंगे तो हमारे पास किसी को दोष देने का, ये करने का, ये सब आइटम बहुत सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम जो चल रही है, जिसमें पेरेंट भी हैं, पेरेंट समझते हैं ये मेरा बच्चा है, ही हैज टू डू दिस। जी भाई, जिंदगी में तुम तो आईएएस नहीं बन पाए, माई डॉटर विल बिकम आईएएस, क्योंकि मैं दिखाऊंगा मैं फलाने आईएएस का बाप हूं। सही बात है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं गलत पेरेंटिंग से। खलील जिब्रान ने बड़े अच्छे से कहा है, वो कहता है चिल्ड्रन आर नॉट योर्स, दे हैव ओनली कम थ्रू यू। वो केवल तुम्हारे द्वारा आए हैं। क्या बात। उनके ऊपर आप फालतू का अधिकार मत करो। और जो वैल्यूज की बात होती है, वैल्यूज उनको अपनी लेने दो। हम अपनी सड़ी गली पुरानी वैल्यू उनके ऊपर क्यों थोप रहे फालतू में? बहुत अच्छी बात आपने कही, हमें अपने आप को एक फैसिलिटेटर की भूमिका में देखना है। बन जाए तो बहुत बढ़िया। मैं तो जैसे देखता हूं कि बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा विजडम है, इनेट विजडम भरी हुई है, हम उनके साथ अगर रहें, जस्ट उनके साथ खेलते कूदते हुए जी, और उनको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ओरिएंटेड ना बनाएं। प्रोडक्शन जैसे आजकल देखने नहीं कि कोई कह रहा है जी 90 घंटे काम करो, ये करो जी, और बल्कि काम में मजा भी नहीं आ रहा, तब भी थके हुए उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि वो देख रहा है भाई हम पैसा दे रहे हैं, हम इसका पैसे का मैक्सिमम आउटपुट में कैसे निकाल लूं। तो इसलिए कह रहे नहीं जी 90 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो। सही बात। लेकिन उस काम में जो आनंद है वो आ रहा है कि नहीं? वो काम में आनंद आ नहीं रहा है, पैसे के लिए फालतू में काम कर रहे हो, तो क्या होगा? स्ट्रेस पैदा होगा, रेट रेस में हम उन्हें डाल देते हैं। स्ट्रेस पैदा होगा, फिर फालतू का कोई खड़ूस सा बॉस होगा, वो परेशान करेगा। घर में मालूम बीवी भी परेशान कर रही है, पति परेशान कर रहा है, तो सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर के ठीक बात है, एक ऐसी पोजीशन सी बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि स्कूल में मैंने एक बार पूछा कि बच्चों ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया कि भाई मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ। मैंने ऐसे रैंडमली किसी से बच्चे से पूछ लिया, बेटा हु एल्स इज इन योर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन है? तो बोला मैं, मम्मी और पापा।
तो मैंने कहा बेटा ये जॉइंट फैमिली तो नहीं हुई। बोले नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा साथ ही रहते हैं इसलिए वो जॉइंट फैमिली है। बहुत अब देखिए उसकी जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट क्या है उसको पता नहीं, वो ये सोच रहा माँ पापा झगड़ नहीं रहे, साथ में रह रहे हैं, भाई यही जॉइंट फैमिली है। अब बच्चों से पूछो दूध कहाँ से आ रहा है, वो कहेंगे जी मदर डेयरी से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, सोर्स को हम भूल गए। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया सर जी। तो बस मैं एक दो बात अगर आप जी अनुमति दें जी, तो मैं जी बता दूं। आपके बाद फिर जी, तो मैं क्योंकि खाली- मास्टर जी को सुनने का समय जी, जी, रहेगा, बिल्कुल। आपकी बात नहीं, नहीं, एक दो प्रश्न जनता से लेकर के सारे प्रश्नों को हम डायरेक्ट कर देंगे मास्टर जी की तरफ। जी जी। तो देखिए मैं जो छोटी सी बातें कहना चाहूंगा कि अधिकतर लोग कहाँ रह रहे हैं, वो रहे हैं अभाव में या प्रभाव में, क्या बात। बट नॉट लिविंग इन स्वभाव एंड स्वाधर्मा। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है। मान लो एप्पल का बीज है तो भैया कश्मीर में लगो, कोकोनट वाले हो केरल में लगो, यस और नो। एप्पल के बीज को तुमने लगा दिया केरल में, वहां बेकार हो रहा है, कोकोनट वाले को कश्मीर में लगा दिया, वहां वो जमा जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए बच्चे को अपने आप उसके टैलेंट को डेवलप करने दो, और जिस तरह का उसकी नर्चरिंग है उस तरीके से हम उसको आगे ले चलें जी। और उनको पूरी सुविधा रहे कि यू नो व्हाट दे हैव टू डू। और जब सुसाइड वाली बात आती है तो उसमें एक बात होती है कि कैन यू जस्ट होल्ड ऑन फॉर 5 more minutes। क्या बात। और जैसे सर ने भी, सारे हमारे एक्सपर्ट सर लोगों ने मेंशन किया कि उस समय कैसे आपको स्ट्रोक मिल रहे हैं, पॉजिटिव स्ट्रोक हैं, नेगेटिव हैं या अपैथी के स्ट्रोक हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एक इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। कई बार होता है आदमी चला जाता है मीना कुमारी एटीट्यूड में। मीना कुमारी एक थी नहीं पुरानी फिल्मों की, वो ट्रेजेडी क्वीन होती थी, वो कहती थी मैं दुखिया बेचारी दुनिया की मारी, देखो लोगों ने कितना सताया है। आर यू गेटिंग मी? तो अगर ये विक्टिम रस में आदमी चला गया, जिसको आनंद आ रहा है दूसरों को बताने में, देखो मेरे साथ ये हो रहा है जी, मेरे साथ वो हो रहा है, मतलब प्लीज़ डोंट माइंड, मैंने खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को शेयर किया है। हेलो, आर यू देयर? शैल आई कैरी ऑन? तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम इस तरह के एटीट्यूड में रखेंगे तो हमारा ही नुकसान है। इसका उल्टा होता है एकलव्य एटीट्यूड, कि जहाँ पे हम कहते हैं आई विल डू वट एवर इट टेक्स एंड देन एक्स्ट्रा 5 minutes। तो दीज आर समथिंग विच आई वॉन्टेड टू से। एंड अबाउट द फैमिली थिंग इज ऑल्सो कंसर्न। फैमिली में जब तक बिजनेस मेंटेलिटी चल रही है, देखो मैंने तुम्हें सिक्योरिटी दी, मैंने घर दिया, प्रोवाइडिंग फॉर किया, तुम मुझे खाना दो, सेक्स दो, जब तक ये बिजनेस टाइप का हिसाब किताब है, फैमिलीज में हमेशा स्ट्रगल रहेगी। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनकंडीशनल लव, कि जहाँ पे आप खाली इस भाव से नहीं दे रहे हो कि मैं दे रहा हूँ, बल्कि आप एक उस तरह, जैसे अगेन दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम मास्टर जी ओनली इन द लास्ट पॉडकास्ट, उन्होंने कहा कि तुम एक निमित्त बन जाओ, कि भाई तुम्हारे माध्यम से कोई रिसोर्स आ रहे हैं विच आर गोइंग फॉर योर वाइफ ऑल्सो और फॉर समबडी एल्स, और तुम अपना शांति से रहो। और उसमें जो आ रहा है, जैसे सर कहते हैं रजा में रजाई, मतलब गो विद द फ्लो। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट यू नो स्पिरिचुअल विजडम विच कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आजकल हमारी पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में बहुत ज़्यादा अविद्या पे फोकस हो रहा है। अविद्या मतलब लर्निंग फॉर लिविंग, कि जी अकाउंटिंग पढ़ लो, ब्लॉकचेन, वोकेशनल, हाँ वो कर लो, पैसा मिलेगा, पैसा पैसा, पोजीशन, सम्मान, लड़की लड़का, बट क्या वो रियल गोल हैं, ये समझने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से रियल चीज़ वो नहीं हो सकती है जो चीज़ छीनी जा सकती हो। पैसा, पोजीशन, लड़की लड़का सब चला जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा अंदर महान चीज़ बैठी हुई है, जो तुम्हारा अपना स्वा है, क्योंकि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वा में स्थित, वो स्वस्थ होता है। लेकिन हम स्वा में स्थित ना होकर के कहाँ चले गए हैं, अभाव और प्रभाव में चले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सी एक विडंबना है। और उसके साथ हमें आंतरिक वेल्थ को डेवलप करना है। मास्टर जी की वाणी सुनिए बढ़िया, उससे हम लोग हमेशा एक राइट माहौल में अलाइन रहेंगे। और एक आप दीपो भवा का कॉन्सेप्ट था, जो बुद्धा के लास्ट पार्टिंग वर्ड्स थे। उन्होंने कहा था आप दीपो भवा, बी अ लैम्प टू योर ओन लाइफ। और भगवत गीता में भी कृष्ण ने यही बात कही थी, रेज योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। सो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा पालन करें तो आई थिंक दिस कैन बी वेरी यूजफुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता सर। मैं चाहूंगा कि कुछ छोटे छोटे प्रश्न आप एक बार कहें, उनको सबका मैं समुच्चय करके सबको एक साथ करके फिर सब डायरेक्शन, क्योंकि अब हम मास्टर जी को सुनेंगे। तो क्या कोई प्रश्न है? प्रश्न कृपया करके लंबे मत रखिएगा, प्रश्न छोटे रखिए। जी जी, आप प्रश्न
आप वहीं से आप बोलें, मैं सुन लूंगा, फिर मैं मंच को कह दूंगा। जी आप बोलें। जी आप अपना प्रश्न पूछें। Just 10 days back, my son, 19 years old, he committed suicide. So, Dr. नरेश गुप्ता से इनको पता था, उन्होंने कहा कि आप आइए, आपके साथ जो हुआ ठीक है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, नॉट ठीक है, बट बहुत लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। आज का ये सेशन माइट बी इट्स गॉड्स विल कि हम अटेंड कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है अलॉन्ग विथ मेडिसिन, ये हमको समझने की ज़रूरत है। ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमको इस स्थान में अभी पहुंचाया कि हम बहुत लोगों की मदद कर सकें। मुझे इस मंच की तरफ से ये इट वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग, और मैं स्वयं से अभी, मुझे लगता है हम में से सभी लोग इस बात को अभी सुन करके अभी एक स्तब्ध हैं, शॉक हैं। और आदरणीय महोदय, हम ये कहना बहुत आसान होता है, आप पर क्या बीत रही होगी निश्चित रूप से ये आप ही जानते होंगे। अभी आपने बताया प्रोफेसर नरेश गुप्ता सर इस बारे में अवेयर थे। फिलहाल एट एन आउटसेट हम सभी, मैं सभागार की तरफ से, मंच से भी, केवल एक ही प्रार्थना कि आपको ईश्वर यह असीम दुख सहन करने की ये शक्ति दे। हम सभी की प्रार्थनाएं आपके सुपुत्र के साथ हैं। मुझे लगता है कि अब हम मतलब वी आर टू मच इनटू द डिफरेंट, एक साइकोलॉजिकल इम्प्रेसिपाइज में हैं या एक दूसरा सेंस आ गया। मैं आउट ऑफ टर्न सभी चीज़ों से, अब मैं सीधे चाहूँगा कि अब मास्टर जी आप इस पर अपना प्रबोधन दें, क्योंकि एक बिल्कुल ही शॉकिंग हम सब के लिए ये एक विषय सज्जन ने कहा। तो अब ओवर टू यू। देखिए, आज मंच पर, आज इस पूरे जो कार्यक्रम में द बेस्ट एंड द टॉप सेशन अभी जो हमारी बातचीत हुई, मेरा जो 16 साल का सर्वे है, 16 साल का एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस। किताबों से पढ़कर बोलना नहीं है। किताबें हमने दुनिया भर की बड़ी बड़ी पढ़ के बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली हैं, पर अपनी किताब किसी ने नहीं पढ़ी। जब मैं किसी ने नहीं कहता हूँ, आई हैव नॉट मेट एनी पर्सन टिल नाउ। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल मिले, मेरे पास जुड़े भी हुए हैं, और ये बड़े दुखद की बात होती है कि एक इंसान जो सा है ये भी नहीं जानता कि ये शरीर को मारने के बाद क्या मेरे को आगे खुशी मिलेगी। देखो कमाल की बात है ये। हम कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, जब आप किसी ज्ञानी से मिलोगे तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है भाई। क्या ज्ञानी कहते हो? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट मोबाइल मेरे पास 2 लाख रुपए पड़ा है। क्यों 2 लाख रुपए खर्चा? क्योंकि इसकी मैंने क्वालिटी देखी कि इसमें क्या है, तभी 2 लाख रुपए दिया। कॉलिंग तो 5,000 रुपए के फोन में व्हाट्सएप कर लूँ मैं। अरे ये इंस्ट्रूमेंट 50 लाख का पैकेज है, 5 करोड़ का पैकेज है। मैं ये हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मुझे सैल्यूट लग रहे हैं। ये शरीर मरता है तो देखो अभी हमारे बीच में से मनमोहन सिंह जी इतनी बड़ी ऊंची कुर्सी पर निगमबोध घाट में जलाया गया, जहाँ भिखारी भी जलता है। अभी बड़े इतने शौकार अपने रतन टाटा जी गए, वही शमशान में जला दिया। हमें इतना ही नहीं पता है। सोचो कि हु एम आई, ये जन्म क्या है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि जन्म और मौत होती नहीं है भाई। देयर इज नथिंग लाइक बर्थ और डेथ। यू आर ट्रैवलर इन दिस बॉडी। बर्थ यू से जब अंदर कॉन्शियस गई, डेथ टू यू व्हेन यू विथड्रॉ फ्रॉम दिस बॉडी। आगे कहां गए? तेरे मेरे कई जन्म हो गए, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तुझको नहीं मालूम, मैं सब जानता हूं। क्या ये मैं मेरा में अटका हुआ है? क्या है तेरा? सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है। दिमाग भी तेरा नहीं है। क्या करता है? मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं शेठ, मैं मिनिस्टर।
तो कहा कि ये शरीर में जो तेरा प्रारब्ध, भाग्य, डेस्टिनी, लक, नसीब जिसको तू कहता है, तुझे मालूम है कैसे बना है? अटैचमेंट टू द डिजायर मेक्स योर डेस्टिनी, डू यू नो इट? गीता कह रही है आसक्ति, इच्छा में आसक्ति। गुरु नानक देव कह रहे कर्म सुड़ा खेत, यार तूने जो बोया था वो तू काट, जो तूने मांगा था तुझे मिला। तू सोचता मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, कुछ नहीं है इंटेलिजेंट भाई। ब्रेन को जो सा रखा नहीं जाता, जला दिया जाता है। इसलिए जब हम जान लेंगे कि यार ये शरीर क्या है, जन्म क्या है, अपने को जाना नहीं, स्वाध्याय जैसे कहा, अपना अध्याय पढ़ा नहीं, दुनिया की मोटी मोटी किताबें पढ़ रही, और इसी कारण तो दुखी है। दैट्स वाई कहा दुखिया सकल संसार। गुरु नानक देव क्या कहे? दुखिया सकल संसार, वही सुखिया जिसका सतनाम है आधार। सत, तत्, वो आत्मा, वो स्पिरिट जो इस शरीर को चला रही है, वो बैटरी, वो एनर्जी, उसके साथ तेरा जो भाग्य है वो आया। तूने मांगा था मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरा हॉस्पिटल अपना हो, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, इसलिए मिल गया भाई। और जब मिल गया तब तो दुखी क्यों हो रहा है? तूने मांगा था ऐसी पत्नी हो मेरी, ऐसा बेटा हो मेरा, डू यू नो अबाउट इट? नो, आई डोंट नो। अरे नहीं जानते तभी तो दुखी हो भाई। गीता क्यों कह रही है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे होगा? क्यों कह रही है अशोक रहना तेरा धर्म? तो कहता मैं धार्मिक हूं, गीता कहती है अशोक रहना तेरा धर्म है। गीता में पहला श्लोक जो सा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, पहला देखो, सब गीता 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 करते हैं। सुन, जब पहले अध्याय में कह रहे हैं मैं मेरा अर्जुन का मेरे वाले हैं, कल मिलेंगे शादी ब्याह में, सफेद कपड़े पहने होगी तो बोलेगी कि क्यों मार दिया मेरे पति को, किसी का छोटा बच्चा है, कल को वो जो सा व्याभिचार में चली जाएगी तो पाप चढ़ेगा कृष्ण। तो ज्ञान क्या कह रहे हैं? पहला श्लोक भगवान वाच। ये मैं जब गीता कहता हूं, गुरु ग्रंथ साहिब भी वही कह रही है, बाइबल कुरान धम्मपद भी वही कह रही है, उपनिषद भी वही कह रहे हैं। क्या? सुन अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं, तो ज्ञानी कहता है अपने मैं ज्ञानी हूं, नॉलेज और इंटेलिजेंट हूं। सुन, वन द इंटेलिजेंट इज, जिसके प्राण चले गए हैं घर में, यानी जो घर में मर गए और जो जिंदा है, दोनों में जो भेद नहीं करता वो है ज्ञानी। ये पहला है। अशोक रहना तेरा धर्म है। अशोक है यानी शोक नहीं करता, सब खेल है, ड्रामा है। शाहरुख खान मरता है फिल्म में, कभी कल हो ना हो, मर गया क्या उसे पता नहीं मरा, रोल है मेरा। तो जब तू ये जान लेता है कि तेरा ये सब खेल, ये लीला हो रही है, शो चल रहा है, तो अशोक हो गया। शोक काहे का? और देख सारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया शोक सभा करती है। कहां लिखा है? तो जब तक आप अपने इंस्ट्रूमेंट के ज्ञान को नहीं लोगे, जो करोड़ों का पैकेज मरते ही माइनस में चला जाता, उठाने के पैसे, जलाने के पैसे, तो जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी। अब ये मेरा माइक नहीं है, अगर मेरे जेब में मोबाइल में फेंक दूं, कोई नहीं बोलने वाला मेरे को, ये माइक तोड़ दो तो अभी पकड़ लेंगे कि आपका है क्या भाई? ये शरीर में जो सिर के बाल से पांव के नखून तक आपका कुछ भी नहीं है भाई, तुम इसको मारने वाले कौन होते हो? हु आर यू? और इनवैल्यूएबल, मरने के बाद डॉक्टर्स बैठे, अगर हम कहें ना कि डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं 5 करोड़ 5 लाख लगे, नहीं 5 लाख नहीं, सारी दुनिया की दौलत देता हूं डॉक्टर साहब, 1 मिनट दे दो यार, 1 मिनट, पासवर्ड पूछना है इससे, सिर्फ नहीं मिलता 1 मिनट भी। सो दिस इज इनवैल्यूएबल बॉडी यू हैव विद यू, क्योंकि अंदर वाला बड़ा प्यारा है। तो आपने इसको मार दिया तो कहते हैं मरने के बाद एक एक घड़ी का हिसाब होगा। पंडित जी के पास जाते हैं ना, पंखा लिया, टॉर्च लिया, क्यों भाई? कहते यमपुरी जाएगा। 84 से 84 लाख कीड़ा, पंछी, जानवर, पेड़, पहाड़ बनना पड़ता है, 84 से 84 लाख। अब तो हम कह नहीं सकते हम इंटेलिजेंट हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रूव्ड कि 99% डीएनए बंदर बंदरी का हमसे मैच करता, वी आर ऑल मंकीज। तो फिर इफ वी आर मंकीज इट मीन्स सब बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, जो भी आए संसार में, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्ला, जो जितने भी उपनिषद हैं सच कह रहे थे। वी आर ऑल मंकी। नहीं समझेंगे तो फिर मंकी हो जाएंगे। अब इस शरीर को मार देंगे तो क्या तू बंदर बनकर डाल पे नाचेगा? तू सोचेगा यार वो कहते हैं रिलेशनशिप, ये मेरे को प्यार नहीं किया, क्या आगे क्या मरने के बाद नया प्रिंस मिलेगा तेरे को या प्रिंसेस मिलेगी? नौकरी लगी तो चलते क्या कहेंगे, आइए वेलकम, आपको नौकरी मिल गई। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर बॉडी, और तुम इसे मार कर तुम्हें पता लगा घर के बाहरी कुत्ता बनकर खड़े हो गए। दिस इज वॉट ऑल द स्पिरिचुअल एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड सेज।
और हमने अपना ही ज्ञान नहीं लिया। यही ज्ञान दिया गीता में कृष्ण ने, यही ज्ञान दिया बुद्ध ने धम्मपद में, यही महावीर ने दिया जिनवाणी में, यही जीसस ने बाइबल में कहा, यही मोहम्मद सब कुरान में कह रहे हैं, यही उपनिषद कह रहे हैं। कोई समझता ही नहीं। बाहर सरकमफ्रेंस, रिलीजन, पाठ, पूजा, पूजा पाठ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कबीर ने कहा। ज्ञानी हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी होए। यार एक मोबाइल, सुबह हम उठे अखबार के साथ 2 लाख का आ जाए, लिखो गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, हम कहते किसने दिया यार, ये हु इज ए जेंटलमैन, ढूंढते रहेंगे। ये जिसको लाखों करोड़ों का पैकेज मिला, कभी सोचा किसने बनाया, कहां से आया, थैंक यू कर दे उसको भी ना। कहा जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। ये ऊपर की किताबों में नहीं है कि हम सोचे नकल मारने का खेल नहीं है। यू हैव टू रिसर्च फॉर इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि आज एम्स के अंदर आया, इंडिया मेन सेंटर फॉर रिसर्च। आई हैव कम फॉर द रिसर्च, आई हैव थाउजेंड्स टू द लाख पीपल नाउ फॉर योर रिसर्च। 17 साल के अंदर नो कैजुअलिटी। मैं कहता हूं सुसाइड करना है, 5 मिनट सुन, उसको सुसाइड करके दिखा। नो कैजुअलिटी टिल नाउ, नो कैजुअलिटी। एंड 100 ऑफ केसेस जो सुसाइड करने वाले थे, आज मौज में डांसिंग है। क्या हुआ? डिप्रेशन, गोलियां कम हो गई, छूट गई। हाउ द लाइफ इज यार, रोल है तो माइंड को ओवर थिंकिंग क्यों ले जा रहा है? आज बच्चे नौजवान जिस हालात में, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट दैट फोरकास्ट, बट आई हैव सीन एंड गॉन थ्रू द थाउजेंड्स, कि अगर यही हालात रहे जो आज चल रहे हैं, नेक्स्ट 25 to 50 years होल कंट्री विल गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज वी विल डिपार्ट। आज बच्चे जिस राह पे चल रहे हैं उनको कहीं है ही नहीं, मल्टीपल गाइड्स, इतना मोबाइल, लाइक ज्वाइंट फैमिली टूट गई। पहले 2-3 गुरु होते थे, 40 साल पहले वाले हम जानते हैं, 30 साल पहले बुआ जी से पूछ जाता हूँ, चाचा जी से पूछ जाता हूँ, तो 2 से आज इसको भी लाइक कर, उसको सारा दिन। और नॉन लिविंग टेकिंग द लिविंग, लिविंग कॉन्शियस है, ब्रेन है, एनर्जी नॉन लिविंग पे सारी जा रही है, डेड के ऊपर। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, क्योंकि समय कम है। जैसे कहा, पंकज जी आए थे मेरे पास पीछे, मैं जब सडनली आया इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल के, मैंने कहा जैसे 1 साल से मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, 16 साल आई नॉट शेयर। तो वहाँ से आया, रात को 12:30 मुझे कहते हैं मास्टर जी मुझे पॉडकास्ट करना है। मुझे पता भी नहीं, मैं तो वहाँ 2 दिन बिजी था कि पीछे क्या हो गया, कि अतुल, उन्होंने पूछा तो मैंने जवाब दिए, तो उन्होंने फिर पॉडकास्ट करा, तो वो जो है अपना डाल दिया यूट्यूब पर, ये बता रहे हैं। तो एक जना सोचिए, आज इंटेलेक्चुअल पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, इंटेलिजेंस ही है। और जो हालात हैं, जिसको कहा डॉक्टर, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हेन एंजाइटी कंटिन्यू मेक्स द डिप्रेशन। जैसे चिंता, कहा कि चिंता बिना जीवन कैसा। हियर आई एम सिटिंग फॉर मेक द रिसर्च, 0 टेंशन, 0 एंजाइटी, 0 नथिंग, लास्ट 17 years, फ्रेश, ऑलवेज। And not only me, experimented on the thousands to the lakh. मैं यह कह सकता हूं क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूं जहां से दुनिया तक रिजल्ट जाता। वीवर विश्व गुरु कहा था ना, विश्व गुरु क्यों थे भाई? डेवलपमेंट थी, कोई विकास था उस समय, कुछ भी नहीं था। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लॉज, इन सब में 75% क्योंकि इस धरती पर जन्म लिए थे। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया। बाहर का विकास हुआ पर अंदर का विनाश हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, अगर हम इस जीवन के ज्ञान को समझेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे। हैप्पीनेस गारंटीड दी मैंने, यहाँ तो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, क्योंकि क्वेश्चन मैम ने कहा गारंटीड मत करो क्योंकि आप साथ में लगा रहे हो हमारे। मैं ओके, बट आई गिव द गारंटी फॉर हैप्पीनेस। मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा किसी भी हालात में। तो सिर्फ यही है कि आप सुनिएगा और आप देखिए, ट्रायल करिए। और मैं एम्स में, क्योंकि टॉप क्रीम ऑफ इंडिया, एंड आई नो बहुत ही हार्टली है, स्पिरिचुअली जो लोग ये सब बैठे हैं और जितने यहाँ हैं, एंड डेफिनेटली दे विल गो इनटू रिसर्च। वी हैव 1000 ऑफ रिजल्ट्स, एंड देन everyone will be happy in this country, and then go to the world making all happy. We all are one family. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मास्टर जी। आपने अपने सुंदर प्रबोधन से कैसे हाउ टू बी स्टे हाई फॉर एवर, कैसे वो जो सुख है, जो आनंद है, उसमें कैसे स्थित रहना है, उसके बहुत अच्छे न्यूएंसेस, उसकी बारीकियां वैज्ञानिकता के साथ में सरल भाषा में सबको समझ में आने वाले तरीके से बताई। अभी तक क्या हो रहा था, जब तक आपका प्रबोधन नहीं मिला था, हम मेरे जैसे लोग यही समझते थे कि गांव में तो हमारा नाम था सुखिया, और शहर में जब हम आए तो हमने अपना नाम रख लिया हैप्पी। गांव में नाम था गुलाबो, शहर में आके हो गई पिंकी।
तो बस इस प्रकार की एक तरीके की लीपापोती थी, लेकिन आपने असल में बताया कि किस प्रकार से वो हमारे विद इन दी आए, हमारा थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो, हमारे एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज किस प्रकार से आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम उस पड़ाव पर हैं, आप अपने स्थान पर विराजमान रहें। एक सुंदर सा सम्चुअस लंच भी सर्व होगा, आपको यहीं मिलेगा। लेकिन औपचारिकतावश मैं अब जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने इतना अपना बेशकीमती समय दिया है, मैं चाहूंगा कि उनका फेलिसिटेशन, उनका सम्मान हो और वो भी आदरणीय मास्टर जी के कर कमलों से हो। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि क्या हम सभी मंच के सम्मुख आ सकते हैं ताकि अपने पैनलिस्ट का हम सम्मान कर सकें। उसके बाद यहां वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं श्री नकुल जी से निवेदन करूंगा। पहले वोट ऑफ थैंक्स जी सर आइए। अरे Can we also request Shri Baljit Singh ji and Kanojia sir? To, yeah. Yes, ma'am. जस्ट फॉर ए मिनट मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो हस्ती को देख रहे हैं, मैं पहले बताऊं, इनका इंट्रोडक्शन अभी तक किसी ने ना ही दिया है, ना ही कोई दे सकता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, मैं वैसे आई सर्जन ऑप्थेमोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत अपनी ध्यान के द्वारा अंदर की आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैं एनर्जी लेवल परखता हूं। तो हमारी 3 लेवल की एनर्जी होती है, क्षर, अक्षर, अक्षरातीत। तो ये मास्टर जी की आप बाहर की कवरिंग देख रहे हैं, लेकिन इनका जो अंदर का सॉफ्टवेयर है वो कनेक्ट हो चुका है ऊपर से। जो वाणी है ना, ये वाणी ऊपर से है, व्यक्ति की नहीं है। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो वन ऑफ दी बुद्ध, आज गौतम बुद्ध कबीर आते तो आप उनके पीछे लाइन में लग जाते, लेकिन बाहर की आपकी आंखें नहीं है कि कोहिनूर के ही कुछ जौहर ही पहचान सकता है। मेरे को थोड़ी बहुत 25-30 साल मेहनत से मेरे को पता चला, मैं इनसे मिला एनर्जी लेवल पे। मैंने शरीर नहीं देखा, मैं आरपी सेंटर में था, मेरे को कोई एनर्जी खींच के ला रही थी। तो फिर मैं डायरेक्टर ऑफिस में इनके पास सुना, तो इनको ये व्यक्ति नहीं है, ये वाणी क्या होती है, परमात्मा से उतरती है थ्रू बॉडी के थ्रू, जैसे गीता उतरी, कुरान उतरी। तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे परम तत्व के ज्ञानी से मिल रहे हो। ज्ञाता नहीं है, इनका ज्ञान बाहर का नहीं है, ये सिर्फ उनके रेफरेंस ले रहे हैं, बस जो भी आ रहा है अंदर से आ रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और ये सब इनके दिल से निकली हुई बातें हैं, इनके अपने भाव हैं। And I thank the panelists and I request the esteemed Master Ji and Bhushan sir to kindly felicitate our panelists. It was a wonderful, wonderful session. लग रहा था ख़त्म ही ना करें, continue करें करके, but I think time is always a constraint. So spirituality emphasizes that challenges, while difficult, are temporary and can lead to personal growth and transformation if taken care at the right time. Ma'am, thank you so much for being with us. Satyati ma'am, thank you. Thank you, Lata ma'am. She came specifically for this session. She was on leave and then she said, we are really honored that, she is the principal of the Nursing College at AIIMS. Thank you, ma'am. Baljit sir, please आइएगा आप भी. Thank you so much, Dr. Siddharth. Additional Professor Psychiatry, and he gave his very, very valid and very constructive inputs. Dr. Siddharth, thank you so much. Thank you. Your explanation to anxiety versus depression was amazing. Thank you, sir.
Kanish sir, nursing officer, और उनका तो बिल्कुल first hand experience था, and it's such a win-win situation for the society, and of course the way you are taking it forward. Thank you so much, Kanish, for being with us and being an inspiration to many of us in terms like how to take it forward. Thank you. I think the entire panel needs a big round of applause, yes. And specifically Dr. Vivek conducted it so well. So, Dr. Abhi aage aiyega. Thank you so much, Ajay sir. He's a professor of ophthalmology, and he's been really, put a lot of things into place while he spoke about the role of Vani that has, transformed. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Rajpal, sir. We have Dr. Pankaj Gupta, an eminent panelist with us, and he's been with the Jindal Society as CSCM. Thank you so much, Dr. Pankaj. And your podcast also is extremely doing well. Thank you, which is pertaining to the suicidal aspects. A big round of applause for Dr. Pankaj Gupta. He's at Sonipat, and he drove this morning. Just because of the fog thing, he could not be in the first panel. We are really honored that you are with us, Dr. Pankaj. Thank you. Dr. Vivek has been the backbone, a wonderful moderator at the same time, और पूरे panel में 4 चांद लगा देते हैं. Thank you, Dr. Vivek, for being with us all throughout. So, thank you. Thank you, Baljit sir, for being with us, and we are honored that you graced this, the symposium with us. Thank you very much. May I request all the panelists to have a group photograph, please? Dr. Vivek, can you join them? Sure. Rajpal sir, आगे आ जाइएगा अभी. A group photograph, please. A big round of applause. I think we can always do this. So, sensitizing us, overcoming suicidal thoughts and achieving mental well-being, Adhyatam Dwara. कैसे suicidal thoughts पर काबू पाया जा सकता है. It was a wonderful, wonderful session, and hope you had a great time with all the 3 sessions that we had. And thank you very much. Nakul sir. सर थैंक यू सो मच. तो अब आइए, ये कार्यक्रम अपने शबाब पर है और अब लंच का भी समय है. उससे पहले वोट ऑफ थैंक्स होगा. लंच मल्टीपर्पज़ हॉल में है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताया गया है कि आपको अपने स्थान पे ही लंच मिलेगा. और ये सेशन जो आप सबने हैप्पीनेस का, डिसेबल्ड पीपल्स के लिए, और किस प्रकार से नकारात्मक सुसाइडल थॉट ना आए, ये सब आपने प्रबुद्ध जनों के पैनल से सीखा. और इसका जो लब्बो लुबाब है वो सबको समझ में आया. मैं एक छोटे से शेर के रूप में आपके बीच में एक बात कहना चाहूँगा जो सब मास्टर जी के एज प्रबोधन से सीखी. दिल्ली में आपने देखा होगा कुछ औरतों के पहलवान लोग बैठे रहते हैं, वो हड्डियाँ और मोच को जोड़ देते हैं.
देखा है कि नहीं देखा है? तो मेरे ए दुश्मन मुझसे जरा मोहब्बत से पेश आ, मेरे ए दुश्मन मुझसे जरा मोहब्बत से पेश आ, सुना है गर सलीके से बैठाओ तो हड्डी बैठ जाती है। वो सलीका आज मास्टर जी ने हमें बताया है कि कहां प्रेशर लगाना, कहां रिलीज करना। और बाकी आप सभी विद्वज्जन हैं, बहुत सारे युवाओं चेहरों को मैं देख रहा हूं, और आप सबके लिए कि खूब जोश, खूब उत्साह के साथ में आज इस कार्यक्रम में आप सभी आए। नकुल जी को मैं माइक दूं, उससे पहले एक अपने युवा साथियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब आपके पास ऐसे मास्टर हैं तो समाज में आप ऐसी अलख जगाइए कि युवाओं के बीच में ऐसा संचार हो कि कोई दुखी, कोई उदास, कोई परेशान ना हो। यदि हो तो उसको पता रहे कि मेरे पास ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर है। तो युवाओं को मैं कह रहा हूं कि है अगर तुम में हिम्मत तो अपना मुकद्दर बदल डालो, है अगर तुम में हिम्मत तो अपना मुकद्दर बदल डालो, वरना जहां मां बाप कहें वहां शादी कर डालो। नकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। Before Nakul sir takes up the vote of thanks, I just have to make one announcement. So we are going to present a musical called What is Life, which questions the true purpose of life with exciting storytelling. And this is singers by Master Ji Community, Gurashi Singh, Alpita Kamra. Along with that, before that, we are going to present to you a short film, Anubhav, by the young creative minds of Master Ji Community. It is directed by Osho Kamra, acted by Garima Borana and Rushan Soni. It's a very interesting short film, and I'm sure the message is, it's very intense. So sure you will enjoy that while we have a lunch at the same time. Thank you. Nakul sir, over to you. Thank you, Dr. Sunita Didi. Hari Om, Master Ji. It's a privilege and honor to extend the vote of thanks on behalf of God Home Journey Trust and Team Master Ji. At the conclusion of this wonderful event, this is continuing and the process goes on and so on. First and foremost, I would like to thank all the esteemed and distinguished guests for being here and sharing their mission 800 crore journey to the last man on the planet. A big thank you to the AIMS faculty and the organizing committee, led by Director AIMS himself and his team, particularly Dr. Kochar ma'am, Dr. Amrinder sir, and our dear Dr. Vivek Dikshit. But for this team and their tireless efforts and hard work in planning and executing this event flawlessly, and without your dedication, the event would not have been such a success. And to all the speakers and the volunteers, thank you for your amazing contributions. Your presence have been so much contributing to the value of this event, and you have kept us all engaged throughout. And my sincere thanks to the media partners who are here and who have supported us in making this event possible. And your generosity is deeply appreciated. Finally, a heartfelt thanks to all the attendees who joined us today. Your presence and enthusiasm have made this event all the more special. Now, lunch will be served here inside the auditorium to the esteemed attendees, and all the distinguished guests and panelists are requested to just have a bite of lunch. Thank you so much. मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, बाकी कंप्लीट करना। हाँ, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना बच्चों संभाल के। हमारी जो 25 साल की मेहनत है वो ये है कि हम लोगों ने पर्सनली रिसर्च की है
और हम चाहते हैं कि कोई भी आत्महत्या ना करे। इसके लिए रेगुलरली हमारे पास डॉक्टर रीमा दादा चली गई, वो भी लोगों को मोटिवेट करती हैं, हम लोग रेगुलरली मोटिवेट करते हैं। तो हमारा आशा है कि एम्स के अंदर सब लोग मिलके इनकी वाणी सुने और बाकी ग्रंथ सुने या मेडिटेशन करें, योगा करें, लेकिन कभी सुसाइड के बारे में थॉट भी ना। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Dr. Rajpal sir. Now over to the audience engagement, and the stage is clear for Colonel Manoj and his team. Thank you so much. Thank you very much for your patience hearing. The essence which one is taking from here is the happiness, which is the ultimate goal of our life. जो हमने सबने देखा यहाँ पे around 4 hours का 5 hours का जो session attend किया, the ultimate aim of life is to be happy, and the best way, as it is being conducted in one of the most premier medical institute of our country. So you, in your own time, now the journey is on your own. You can listen to the lectures of Masterji, which is by the name of Masterji on the YouTube, which will bring you the true essence and happiness of life. Now, in the meanwhile, while the lunch is being offered, there is a small play, as mentioned, a short film Anubhav, which is has been made by a young creative minds of the Masterji community, directed by Osho Kamra. So I would request Aman to kindly play the script.